When you're out fighting for the things that we want, be the rock you lean on, with you by my side. Baby, when we fall, together we'll rise. 'Cause I've traveled so far just to get to where you are. And I know that you're broken, but that makes you who you are. So pick up the pieces and show me you mean it tonight. I know what you're feeling, I see that look in your eyes. So pick up the pieces and show me you mean it tonight. 'Cause what I've been dreaming is giving you my paradise. So pick up the pieces, pick up the pieces, so pick up the pieces, pick up the pieces. Show me you mean it tonight. DOTA in the city, rushing to me. Down upstream, are you with me? Round the rainbow, DOTA in the city, rushing to me. Down upstream, are you with me? Feel it.
this on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not breathing, but I'm still alive. Whoa, whoa. But I think I'll be alright, 'cause I'm not giving up, I'm not giving up yet. I feel that it's my time, so I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. So I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. Still have hope. So many days have passed. I wait around for things to change, but change has not come fast. I'm asking all the questions, but then I question them. Like, what's the point of living, existing when you can't see your God in flesh? I'm looking for the answers, they say to pray instead. I think I'll find them one day, but with a helping hand. I know that it's not easy, but I believe I will. Yeah, I'll get over all my fears and really conquer everything. I think I'll be alright, 'cause I'm not giving up, I'm not giving up yet. I feel that it's my time, so I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. So I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. Well, this one is a knocker. Step in on the dance and I just my dance. Everything scatter. Right? Right? Come cross. Right now, man, active. Down with the game like a bandit. Me bring the flame like a matches. Test me no, without the slackness, active style and pattern, that's how my there. Active. Active. One live like massive. Talking up and off the brandish. Touch road and hold the world hostage. When I start the bumper glad mash pit. When me step out to the place, get active. 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 Style now. Clocks on the east side. Bad bitch on each side. Big splits chillin' on the beach side. Run things where you feel like. Cake big, have a carve out a piece line. Freestyle now, millions for each line. Too cool, man, I need ice in my beverage. Test this bigger, please find the exit. Right now, man, active. Gone with the game like a bandit. We bring the flame like a matches. Let's me know, but don't the slackness, active style and pattern, that's a man there. Active. 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 One live like massive. Talking up and off the brandish. Touch road and hold the world hostage. When I start the bumper clad mash pit. When me step out to the place, get active. 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 Everything you want, but you can't have.
just that's payback. Payback, yeah, you better take that. You could call me selfish and critical, I could take the blame. Just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't want that. This might hurt, but that's just karma. Better take that. Call it payback. Don't say I didn't want ya. Stay mad, I know you wanna. This might hurt, but that's just karma. That's just That's just karma. Go and play the part, play the victim. Throw a pity party with your demons. Blaming everybody and you're screaming, screaming. But I'm the one bleeding. You're the one that's selfish and critical, you could take the blame. Just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't warn you. This might hurt, that's just karma. Better take that. Call it payback. Don't say I didn't want ya. Stay mad, I know you wanna. This might hurt, but that's just karma. That's just I'm craving hope in this darkness. You say I'm just a joke, just a joke. Shivers my spine so bad. Swimming in the river stinks too much. We try to let go of us, but the truth is what's really your one.
Hello, it's been a long, long time. Can't get you off my tired mind. Shadow, let the tape rewind and finally ease my anxious eyes. Oh no, I feel you creeping in, my body bleeding sin. I'm drowning. Heaven, could you save me now from these thoughts inside my head? Yeah, you are the devil, running through my mind. I can't get on your level. I swear to God I tried. I am not under your spell. Turn around and turn ahead. You cannot be anymore. Oh my God, you are the devil. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अस्सलामुअलैकुम तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। मेरा नाम अज़ूज़ है और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त टर्टस एंड वी आर कास्टिंग एंड बेसिकली होस्टिंग यहाँ पे हमारे अरीना ई स्पोर्ट्स का जो टूर्नामेंट है। इट्स बीन पावर्ड बाय एतिसलात एंड ई एंड गेमिंग। एडी गेमिंग आर द स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स एंड प्लेथोरा ई स्पोर्ट्स आर द ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स। तहला आई थिंक एक दफ़ा फिर से हम डोटा तो कास्ट करने आ गए हैं, लेकिन असल सवाल है कि काफ़ी कुछ डोटा की दुनिया थोड़ी सी हिल गई है बिकॉज 7.35 नया पैच रिलीज़ किया गया है। तो ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से अफेक्ट करेगा सारे गेम प्ले को। लेकिन तला आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के दिन? डू यू थिंक कि पैच की वजह से ज़्यादा फ़र्क आया होगा या डू यू थिंक इतना बड़ा डिफरेंस नहीं पड़ना चाहिए मेटा पे? क्या तासुरात हैं? बिल्कुल अली, जैसे कि आपने मेंशन किया कि पूरी डोटा की दुनिया जैसे नया पैच आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हिल जाती है। और मेरे ख्याल में वक्त आ गया था नया पैच आने का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टेल हो गया था। सेम वही हीरोज़ हम देख रहे थे बैन हो रहे हैं, वही हीरोज़ हम देख रहे थे पिक हो रहे हैं, वही सेम स्ट्रेटजी देख रहे थे, वही सेम आइटम्स। जी बिल्कुल। तो मतलब ये मज़े की बात है कि बीच टूर्नामेंट में जो कि ये टूर्नामेंट के बीच में अरीना ई-स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट के बीच में एक नया पैच रिलीज़ हुआ है। तो टीम्स किस तरह एडजस्ट करेंगी, डेफिनेटली उसमें बहुत सारी डिफरेंट मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिर्फ उन्होंने हीरोज़ पे रीवर्क नहीं किया, उन्होंने न्यूट्रल आइटम्स जो होते हैं वो ऐड किए हैं। काफ़ी सारे न्यूट्रल आइटम्स उन्होंने रोटेशन से निकाले हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यू आइटम्स भी ऐड किए हैं। एंड डेफिनेटली जो काफ़ी ज़्यादा न्यू, जैसे मैं बोलूँगा ना, हीरो पूल जो अवेलेबल होता है उसको भी वापस कंपटीशन में वो लेकर आए हैं। डिफरेंट कैरीज अब रोटेट हमें नज़र आएंगे रोटेट होते हुए। डिफरेंट हीरोज़ को उन्होंने नर्फ किया है, तो वो जो हम बोलते थे स्पिरिट ब्रेकर और जो बाकी सारे सेंटर वॉर टाइर, स्पेशली कुंका को एक मैसिव नर्फ मिला है, तो उसकी जो सेप्टर अपग्रेड था इट्स नॉट एज मतलब इतना ज़्यादा इफेक्टिव वो नहीं है। डेफिनेटली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ तो अपनानी पड़ेंगी। आई थिंक जहाँ तक बात है कैरीज़ की, डेफिनेटली वो जो हम बात करते थे मेड्यूसा या फिर वो जो लेट गेम फार्मिंग कैरीज़, उनको भी थोड़ा बहुत बफ मिला है। बाकी जो मिड लेन के हम हीरोज़ बोलेंगे, जो हमारे पास स्पिरिट्स जो होते थे, अर्थ स्पिरिट हो गया, स्टॉर्म स्पिरिट हो गया, इवन एम्बर स्पिरिट को भी काफ़ी अच्छा बफ मिला है। Tala, I think I'll get your thoughts on Ember Spirit's buff as well in a moment. लेकिन I think प्राइस पूल अभी हम टूर्नामेंट के लिए देखने लगे हैं और
वो ये तला $1,200 का प्राइस पूल है आपके पास, और फर्स्ट प्लेस 650, सेकंड इज 300, एंड देन कॉन्सिक्वेंटली इट ड्रॉप्स। और कुछ तो अरीना ई स्पोर्ट्स के पॉइंट्स की भी सूरत में है। और साथ साथ अगर टूर्नामेंट रोड मैप की बात की जाए तो थर्ड मंथली क्वालिफायर आज तला खेला जाएगा। हमारे पास 2 मंथली क्वालिफायर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। प्लेऑफ्स के लिए 2 टीम्स देव बिन ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं, और आफ्टर दीज 2 मंथली क्वालिफायर्स विल हैव द रेस्ट ऑफ द 2 टीम्स। 4 टीम्स compete करते हुए नजर आएंगी प्लेऑफ में, और फिर फाइनलिस्ट हमारी 2 टीम्स होंगी, और फाइनली किसी ना किसी टीम को हम चैम्पियन क्राउन करते हुए नजर आएंगे इस टूर्नामेंट के। स्पेशली ज़रा टूर्नामेंट का फॉर्मेट इस तरीके से, जिस तरीके से हम मल्टीपल मंथ्स के ऊपर खेल रहे हैं, तो इट फील्स लाइक कि काफ़ी टाइम से अब टूर्नामेंट चल रहा है, राइट, अरीना स्पोर्ट्स का। सो सही, इट्स अ डेफिनेटली बिग टूर्नामेंट लाइक दैट। काफ़ी टाइम से चल रहा है। एंड स्पेशली अली मैं ये मेंशन करूँगा कि जो टीम्स जैसे कि हम अभी इस रोड मैप पे भी नज़र आ रहा है, जो टीम्स पहले एलिमिनेट हो गई थी, जो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपटीशन, काफ़ी अच्छी लड़ाई उन्होंने खेली थी, बिल्कुल। तो उनको वापस मौका मिल रहा है वापस आने का। तो जो भी प्लेऑफ्स में जाएगा, ऑब्वियसली एक दूसरी टीम्स को भी जान लेंगे। MENA रीजन जो है वो बहुत बड़ा रीजन होगा मेरे ख्याल से। आई थिंक डोटा का सबसे बड़ा रीजन ही MENA रीजन होगा, बिकॉज वो एक दो मिडिल ईस्ट का भी हो गया, और फिर साउथ ईस्ट एशिया भी हो गया, और फिर नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ भी इसमें आ जाती हैं। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा रीजन है, बहुत सारी टीम्स हैं और बहुत केपेबल टीम्स हैं। एंड डेफिनेटली आई थिंक आप किसी से भी पूछोगे तो जो नेक्स्ट Tier 1 टीम्स हम बोलेंगे, या Tier 2 टीम्स बोलेंगे, या एटलीस्ट प्लेयर्स जो होते हैं Tier 1 Tier 2 प्लेयर्स, तो वो इसी रीजन से आने चाहिए अगले चंद साल में। बट जहाँ तक बात इस टूर्नामेंट की रही है, टीम शाइनिंग ग्राउंड हमने देखा था, उन्होंने बहुत अच्छा खेला था। बाकी जो टीम है उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला था। एंड आई बिलीव जहाँ तक मुझे पता है, हमारी एक पाकिस्तानी भी टीम भी है जो कि इस अच्छा। टूर्नामेंट में कम्पीट कर रही है, जो कि आई थिंक जो अभी हमारे पास नेशनल टूर्नामेंट होगा ड्यू वालों का, तो उसमें भी वो क्वालिफाई कर गए हैं। तो डेफिनेटली हाई लेवल कंपटीशन, उसमें भी इमॉर्टल लेवल प्लेयर्स हैं जो हमने देखे हैं, उसमें भी और इमॉर्टल लेवल प्लेयर्स हैं, तो डेफिनेटली देखा जाएगा। तो इन समरी बात को छोटा करते हुए या शॉर्ट करते हुए, मैं तो यही बोलूँगा कि प्लेऑफ्स के आने तक क्रीम ऑफ द क्रॉप हमें नज़र आएंगे, और वो जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जा रहे हैं वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल सारा, और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर वही टॉप लेवल पे जो टीम्स हैं उनको compete करते हुए देख के। और जिस तरीके से टूर्नामेंट बढ़ रहा है, द इंटायर फॉर्मेट, अगर आपकी टीम इफ़ यू लॉस्ट एक दफ़ा पहले वाले क्वालिफायर में, तो आप आगे आके फिर से compete कर सकते हैं। तो दैट्स जस्ट वेरी गुड मेरे ख्याल से फॉर द इंटायर रीजन एंड फॉर द कॉम्पिटिशन हियर, एंड दैट्स वाई वी अप्रिशिएट टूर्नामेंट्स लाइक दीज फ्रॉम अरीना ई स्पोर्ट्स, राइट। हिस्टोरिकली तो थोड़ा सा हमारे रीजन में उस तरीके से वो चीज़ कम रही है, लेकिन अगर हम टीम्स की तरफ तलब नज़र लगाएं जो कि आज के दिन compete करते हुए नज़र आएंगे, इट्स गोइंग टू बी टीम Gamax वर्सेस Woofer फैंस। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरे ख्याल से Woofer फैंस को हमने पहले भी compete करते हुए आई देखा था थिंक उन्होंने पिछले लोगो चेंज क्वालिफायर। कर दिया था। उनका लोगो पिछली दफ़ा थोड़ा सा क्यूट सा था, अब अच्छा। काफ़ी स्पॉन्सर्ड लोगो लग रहा है मुझे। अब उनका लग रहा है कि ये टीम एक्चुअली अब खेलने के लिए आए हैं। बट टीम Gamax देखना पड़ेगा कि इनमें जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, हो सकता है हमने पहले भी इनको देखा हो, बिकॉज आई डोंट बिलीव टीम Gamax ने अभी इस टूर्नामेंट में कम्पीट किया है। बट रिगार्डलेस, जैसे कि हमने टीम वुफर को देखा था, उन्होंने भी अच्छा खेल खेला था, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत और काफ़ी ज़्यादा टीम वर्क का देखा था। और हम जहाँ तक मुझे याद है टीम वुफर का, तो टीम वुफर ने जो खेला था वो सर्टनली उनकी कोऑर्डिनेशन शुरू के वक्त में अच्छी थी, टीम फाइट भी वो अच्छे ले रहे थे। एंड इनफैक्ट एक गेम के अंदर, एक बेस्ट ऑफ 3 के अंदर, आई थिंक गेम नंबर 2 था, तो उसमें वो काफ़ी करीब भी आए थे जीतने के, बस क्लोजिंग ऑफ द मैच के अंदर वो चीज़ चली गई थी। बट अगेन जहाँ तक उस बात की है, इस पैच में कमबैक मैकेनिक जो उन्होंने पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया है, तो हाई ग्राउंड जाना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। जिस तरह उन्होंने रोशान को चेंज कर दिया है कि रिफ्रेशर शॉट और चीज़ दोनों ऑपोजिट टीम्स को मिलेगा, तो इट डजंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब थोड़ा ऑब्वियसली एजेस तो जो रोशान को, जो टीम रोशान को मार रही है उसी को पास जाएगी, लेकिन जो टीम रोशान को मार नहीं पा रही उनको भी एगनिम्स ब्लेसिंग या फिर रिफ्रेशर शॉट उनकी तरफ भी जाता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस साइड रेडियंट पे हो या फिर डायर पे खेल रहे हो। तो ये सारे जो मैं बोलूँगा ना इक्वलाइजेशन मैकेनिक्स, के जो टीम
डेफिसिट पे या जो टीम हार रही है, तो अभी डोटा में काफ़ी ज़्यादा मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस किए हैं कि उस टीम को कैसे बैलेंस रखना है कि हारने वाली टीम भी ऑलवेज कम बैक पोटेंशियल हमें नज़र आए। एंड आई थिंक डोटा की सबसे मज़ेदार बात यही है। आई होप कि जो लोग देख रहे हैं वो भी इससे अग्री करेंगे कि जो टीम्स में कम बैक होता है वो मैचेस बहुत मज़ेदार दिलचस्प होते हैं। बिल्कुल ताला, आई थिंक डोटा के बारे में सबसे मज़े की चीज़ मुझे यही लगती थी, और इवन एज अ पर्सन एक किस्म का आउटसाइडर इनटू द डोटा कम्युनिटी, जब मैंने आकर डोटा की गेम्स देखी तो वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग्स अबाउट डोटा वाज के दैट कम बैक मैकेनिक, राइट? इवन वाइल्डेस्ट वन साइडेड मैचेस में जहाँ पे अब तो प्रोबेबिलिटी भी इंट्रोड्यूस हो गई, वो तो एज अ स्टीम की अपनी प्रोबेबिलिटी, राइट, व्हेन दे आर टेलिंग अस अबाउट अ गेम, Yeah. लेकिन जहाँ आपको बिल्कुल नज़र आता था कि देयर इज़ नो चांस, नहीं हो सकता, वहाँ पे भी समहाउ सम वे कुछ टीम्स उस तरीके से कम बैक करने में कामयाब होती हैं। दैट्स ऑलवेज वेरी एक्साइटिंग टू सी इन डोटा, एंड दैट्स व्हाट ड्रॉज अ लॉट ऑफ पीपल टू डोटा एज वेल, राइट? तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि अब यहाँ पे विद द चेंज इन पैच कंपेटिटिव लेवल पे भी हमें नज़र आ रहा है, वही आप बता रहे थे, नए किस्म के कैरीज देखने को मिल रहे हैं और जो न्यू मैकेनिक्स ऐड किए गए हैं, तो इट्स ऑलवेज थोड़ा सा शेकी टाइम होता है फॉर एनी टीम। तो जो टीम बेहतर तरीके से अडॉप्ट कर जाती है वो डेफिनेटली वहाँ पे एक एडवांटेज उनके पास होता है मैसिव किस्म का। सो अब देखना पड़ेगा कि ये दोनों टीम्स आपस में किस तरीके से अडेप्ट करती हैं। टीम गेमैक्स वर्सेस वूफर फैंस, आई होप कि वी आर गेटिंग इनटू द गेम सून। वहाँ पे मुकाबले पे ये दोनों टीम्स नज़र आएंगी। तला, और आपके नज़दीक विद द न्यू पैच ज़्यादा इम्पैक्ट वाले आप कहेंगे मैकेनिक्स क्या नए ऐड हुए, what has been removed that you think might have an impact on things now? अली आई थिंक जो इनने काफ़ी सारे हीरो के चेंजेस किए हैं, इनने आई थिंक इसेंशली डोटा इस स्टेज पर आ गई, जैसे आप पहले के भी पैचेस देखेंगे, इनने इसेंशली क्योंकि इतने ज़्यादा हीरोज़ हैं, इतनी ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बनती हैं, तो आई थिंक डोटा के पैचेस की स्ट्रैटेजी अब ये बन गई है कि वो हीरोज़ को इसेंशली साइकिल इन और साइकिल आउट करते रह रहे हैं विद चेंजेस दैट दे ब्रिंग। तो वो पहले से डिसाइड हो जाता है कि ये हीरोज़ को हम बफ करेंगे, ये हीरोज़ को हम नर्फ करेंगे, एंड ऑब्वियसली इक्वलाइज करने का वो और होता है। जैसे कि एम्बर स्पिरिट की तीनों स्पेल्स को उन्होंने बफ किया है, उसके सेयरिंग चेन्स को भी, स्लाइट ऑफ फिस्ट को भी, और उसने फ्लेम गार्ड के रेडियस को भी बफ कर दिया, स्टॉर्म स्पिरिट को भी थोड़ा सा बफ मिला है, एंड इनफैक्ट सपोर्ट हीरोज़ को भी बफ मिला है। जैसे कि हम देख रहे थे कि पिछले पैच के अंदर वॉरलॉक, नेचर्स प्रॉफिट, इन सब हीरोज़ को बफ मिला था। अब लायन इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हीरो मिल गया। जैसे लायन का पहले हम देखते थे ना कि लेवल 25 का टैलेंट होता था कि मैना ड्रेन से डैमेज भी होगा, अब उसको शुरू से लेवल 1 मैना ड्रेन से उसको मिलता है कि वो 100% ऑफ द मैना ड्रेन का डैमेज उसको रिलीज़ करेगा। तो वो आई थिंक एक काफ़ी ज़्यादा पोटेंट एबिलिटी है, बिकॉज लेवल 3 मैना ड्रेन पे इतना ज़्यादा मैना होता है। शार्ड अगर आप बना लो लायन के ऊपर तो उसको तीन हीरोज़ को वो 400-500 मैजिकल डैमेज डिस्पर्स कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आई थिंक हीरोज़ हैं। क्या मैंने देखा था, मेरे ख्याल से शायद डिवाइन रेपियर अब मैजिक एम्प भी देता है विद द न्यू पैच। Was that बिल्कुल मैजिक was the मैजिक change? एम्प्लीफिकेशन भी था। एंड मीनवाइल उन्होंने, जैसे मैं बोलूँगा ना, इन्वायरमेंटल चेंजेस, तो वो काफ़ी उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। जैसे हम रून्स को देखेंगे, जैसे इनविजिबिलिटी रून जो होता है, या तकरीबन सारे रून्स आप देख लें, डबल डैमेज रून, रीजनरेशन रून, इनविजिबिलिटी, हेस्ट रून, तो एज टाइम गोज़ ऑन, जैसे वक्त इंक्रीज़ होता है, हर रूम की जो साइकिल आती है हर 2 मिनट पे, तो उस वक्त रून्स को भी अब बफ मिलता है, राइट? जैसे कि हम अगर इनविजिबिलिटी रून की बात करें तो 5% डैमेज रिडक्शन वाइल इनविजिबल मिलता है, और ये हर 2 मिनट बाद ये 5% इंक्रीज़ होते रहता है, एम्पलीफाई होते रहता है। डबल डैमेज का भी अब जैसे कि आपने बोला कि डिवाइन रेपियर से मैजिक एम्प मिलता है, अब डबल डैमेज रून से भी मैजिक एम्पलीफिकेशन मिलता है, राइट? सो हीरोज़ जिनको जो मैजिक डैमेज फोकस हीरो होते हैं, अब वो भी प्ले में आ जाते हैं, उनके लिए भी रून होता है, और वही डैमेज एम्प्लीफिकेशन इंक्रीज़ होते रहता है, हेस्ट रून का भी इंक्रीज़ होते रहता है। तो ये सारी चीज़ें, रोशान का फॉर एग्जांपल, रोशान का आई थिंक सबसे मज़ेदार जो मुझे लगता है बफ मिलता है कि बहुत ही टीम फाइट ओरिएंटेड कर दिया है। फॉर एग्जांपल रोशान की 80% जब HP आएगी तो ग्लोबल
रोड निकलता है रोशान का, जिससे आवाज़ दोनों टीम्स को चली जाती है कि ओह रोशान या पर एक अटेम्प्ट हो रहा है। अटेम्प्ट हो रहा है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा रोशान फाइट्स फोर्स होंगी, बिकॉज 80% तो काफ़ी ज़्यादा एचपी होती है, पर्टिकुलरली अगर अगर आपके पास ऐसी लाइनअप नहीं है कि रोशान को बहुत जल्दी मार सके मार हाँ। पाए। एग्जैक्टली। मीनवाइल जो पहले के हीरोज थे उनको थोड़ा सा नर्फ मिला है, बाकी ज़्यादा हीरोज को, जैसे नेक्स्ट असैसिन हो गया उसको बफ मिला है, काफ़ी ज़्यादा टैलेंट्स रीवर्क किए हैं, ओमनी नाइट का भी रीवर्क किया है। आई थिंक ओमनी नाइट का काफ़ी आई वुड से एक तरह से बफ मिला है उसको, राइट। अच्छा बाकी सारे हीरोज़ के फैंटम असैसिन को और ज़्यादा नर्फ मिला है, बट नर्फ आई कर दिया। थिंक इनने तला काफ़ी वैसे मेरे ख्याल से लाइक यू वर एब्सोल्युटली राइट कि डोटा की अब बैलेंसिंग थोड़ी सी इस तरीके से ही हो गई है कि हीरोज़ को साइकिल इन साइकिल आउट करना पड़ता है, राइट। और विद हीरोज़ हम कन्वेंशनली तो देखते रहे हैं कि with a lot of heroes in Dota, either there's usually a physical build that you can go or there's a magical build, right? Even with Ember Spirit, जैसे आप बता रहे हैं कि उसको वापस किया तो फिजिकल बिल्ड भी उसके ऊपर होती थी यूजली। तो अब एक किस्म का आई थिंक मैंने ये भी देखा है कि बैलेंस के अंदर डोटा के साइकिल्स में फिजिकल डैमेज हीरोज एंड मैजिकल डैमेज हीरोज की भी एक डिस्टिंक्शन आ जाती है कि मैजिकल डैमेज कुछ मेटाज में फिर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। जिस तरीके से आई फील है कि अब इस मेटा में एटलीस्ट थोड़ा सा हमें मैजिकल डैमेज कैरीज शायद नज़र आए, जो कि पिछले मेटा में थोड़ा सा नहीं थे, राइट। यू सी हैव दोस फैंटम असैसिन्स, दोस फिजिकल कैरीज, तो वहाँ पे भी उस साइड पे भी बफ हुआ है। और थोड़ा सा मैं कहूँगा वो साइक्लिक चेंज आया कि आई थिंक मैजिकल डैमेज हैज़ बिकम मोर वायबल नाउ फिर से। एग्जैक्टली। मैजिकल डैमेज एंड देन बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आई हैं। आई वुडंट से कि बहुत ज़्यादा मेजर बफ मिला है किसी हीरो को या बहुत ज़्यादा मेजर नर्फ मिला है। आई वुड से कि जैसे छोटे छोटे चेंजेस, लाइक स्टॉर्म स्पिरिट का अगर हम आप देखें तो उसका रेमनेंट जो एक्टिव होता था तो उसको 1 सेकंड से 0.75 सेकंड कर दिया है, विच मतलब इसका एसेंशियली मकसद ये है कि पहले स्टॉर्म स्पिरिट को लेवल 1 वॉर्टेक्स पे लेनिंग फेज के अंदर एक रेमनेंट पुल ऑफ करना थोड़ा सा मुश्किल होता था अनलेस डिस्टेंस बहुत कम हो, लेकिन बहुत कम अब है। वो आसानी से वॉर्टेक्स करके रेमनेंट कर सकता है। तो ये लेनिंग फेज में एक चेंज आ गया। क्वीन ऑफ पेन का भी चेंजेस आए हैं, टेम्पलर असैसिन के चेंजेस आए हैं, एंड मीनवाइल कैरीज को भी बफ मिला है, टेरर ब्लेड को बफ मिला है, राइट, टिम्बर सॉ को बफ मिला है। तो ये सारे हीरोज़ को बफ मिले हैं। आई वुडंट से कि किसी कोई स्पेसिफिक हीरो को बहुत ही ज़्यादा उन्होंने बफ कर दिया है, किसी हीरो को बहुत ही ज़्यादा नर्फ कर दिया है। इवन द हीरोज़ लास्ट पैच के अंदर आई वुड से टोटल ओवरऑल चेंजेस इस तरह किए गए हैं कि और मज़ीद हीरोज़ ऐड कर दिए गए हैं पूल में। एंड थैंक्स टू द न्यूट्रल आइटम्स की हमने बात नहीं की, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल आइटम्स भी रिमूव हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा आइटम्स रीवर्क भी हुए हैं। जैसे विच ब्लेड से आप एक और नया आइटम बना सकते हैं, राइट। जैसे सिल्वर एज हो गया, सिल्वर एज अब नो लॉन्गर, अब वो क्रिटिकल स्ट्राइक नहीं देता पैसिव सिल्वर एज अब, लेकिन उसको इनविजिबिलिटी जब आप ब्रेक करते हो तो उसकी ज़्यादा डैमेज आपको मिल जाता है, राइट। तो इट्स नॉट इट्स अ गुड आइटम फॉर हीरोज़ फॉर दैट बर्स्ट पोटेंशियल। लेकिन उसके अलावा इट्स एक जगह से उन्होंने चीज़ों को रीवर्क इस तरह किया कि एक कम पावरफुल भी किया है और मज़ीद पावरफुल भी दूसरे एस्पेक्ट्स से कर दिया। सो सॉर्ट ऑफ प्ले स्टाइल उन्होंने चेंज किया है, लेकिन हीरोज़ तो आई थिंक वैसे ही रहे हैं पिछले पैच के। बस ये है कि उन्होंने और मज़ीद हीरोज़ ऐड कर दिए हैं, सेव फॉर आई थिंक कुंका को कि जो सेप्टर उनने कम्प्लीटली नेगेट कर दिया है। व्हेन आई थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन, क्योंकि तला कुंका का मेरे ख्याल से थोड़ा-सा काफ़ी अननोइंग किस्म की एबिलिटी थी एंड यूज्ड टू कॉज अ लॉट ऑफ chaos। लेकिन खैर आई थिंक विल कम बैक टू दिस डिस्कशन इन अ बिट। थोड़ा सा वी आर गोइंग टू पुश फॉर अ ब्रेक राइट नाउ, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। Let's do this, Abu Dhabi!
Let's do this, Abu Dhabi! Let's do this, Abu Dhabi! Let's do this, Abu Dhabi! Let's do this, Abu Dhabi! अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। तहला मेरे ख़्याल से गेम स्टार्ट होने लगी है। हमारे पास आज एक काफ़ी टफ़ मुकाबला होने लगा है इन 2 टीम्स के बीच में, बेस्ट ऑफ 3 में। और उसके साथ ही साथ सिर्फ मुकाबला ही टफ़ नहीं है, बल्कि साथ-साथ एक नया पैच भी है जो कि सारे की सारी सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। टीम गेमैक्स वर्सेस वूफर फैंस। और क्योंकि एक टीम जो हमारे पास पहले भी इन्विटेशनल खेल चुके हैं, तो थोड़ा-सा वो एक्सपीरियंस भी साथ लेकर चलेंगे। लेकिन आई थिंक इन द सर्वर, इन द बेस्ट ऑफ 3, इट जस्ट मैटर्स बिटवीन द 2 टीम्स के आज के दिन कौन सी टीम कैसे खेलती है, और उसके साथ-साथ कौन सी टीम ने पैच को थोड़ा-सा बेहतर पढ़ लिया है, और या तो उनके प्लेयर्स के हीरोज़ के साथ अलाइन करता है पैच कि जो द हीरोज़ आर रियली गुड ऑन, वो अच्छे हो गए, एंड दैट सॉर्ट ऑफ वर्क्स विद देयर मेटा एज़ वेल। तो थोड़ा-सा वो बायस भी आ जाता है कॉम्पिटिशन के अंदर, राइट? लेकिन मेरे ख्याल से गेम हमारे पास लाइव हो चुकी है। तला विल बी ट्रांजिशनिंग टू दैट राइट नाउ। Definitely, and I think Chen ban, I think Chen को I think buff and nerf दोनों हुआ था, but overall buff उसको मिला था, तो इसलिए वो ban नजर आते हुए देख रहे हैं। IO and Visage का I'm not exactly, मुझे इतना ज़्यादा नहीं आइडिया वो क्यों बैन हुआ है, बिकॉज इतना ज़्यादा चेंज तो नहीं हुआ था उसका। बट डेफिनेटली आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अली ये ही रहेगी कि वो किस हीरोज़ को पिक करते हैं रादर देन वो कौन से हीरोज़ को बैन करते हैं, बिकॉज बैन आर नॉट दैट रेलिवेंट। लेकिन जैसे कि हमने बात की थी लायन की, तो हम लायन आई डोंट थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं हो सकता है गलत हूँ, लेकिन लायन इन द हिस्ट्री ऑफ डोटा
किसी ने बैन करने की ज़हमत नहीं समझी। लेकिन जैसे उसको बफ मिला है, तो आई थिंक लायन अब आजकल इवन इन द कंपेटिटिव टियर 1 स्टेज लायन को बैन होते हुए नज़र आएगा। आई थिंक लायन को नर्फ भी मिलेगा, 100% ऑफ द डैमेज ऑफ मैन ऑफ ड्रेन ये थोड़ा ज़्यादा है, उसको आई थिंक 50% कर देना चाहिए। बिल्कुल, और थोड़ा सा ये हमेशा होता है कि नए पैचेस के अंदर थोड़ी सी एक्सट्रीम वैल्यूज़ के साथ वैल्व यूजुअली बैलेंसिंग के अराउंड एक्सपेरिमेंट करते हुए नज़र आती है। शुड थिंक कि थोड़ा सा ग्रेजुअली चेंज करना शायद एक बेहतर अप्रोच हो, लेकिन वैल्व डज व्हाट वैल्व डज। शैडो डीमन पिक किया जाता है गेमएक्स ई स्पोर्ट्स की तरफ से। तला, इज दिस हीरो more along the theme of magical damage amplification? डेफिनेटली आई थिंक शैडो डी में तो हमेशा मैजिक डैमेज एम्पलीफिकेशन की तरफ ही रहा था। ट्रेन प्रोटेक्टर अगेन वो पहले भी स्ट्रॉन्ग था, अभी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट शैडो डीमन की आई थिंक ये ख़ास बात है कि अब उसकी जो इल्यूजन्स हैं वो उनको बोनस बेस डैमेज मिला हुआ है, तो उससे थोड़ा बहुत डैमेज इंक्रीज हो गया है, लेकिन जो ओवरऑल डैमेज वो कर रहे हैं तो डेफिनेटली फेवर्स पुशिंग लाइनअप्स मोर। ट्रेन प्रोटेक्टर आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नर्फ्स उनको मिले हैं। ट्रेन प्रोटेक्टर पहले भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट्स है, अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट्स हैं, एंड डेफिनेटली हमने जो कि इसी टूर्नामेंट में हमने देखा है ट्रेन प्रोटेक्टर की जो विजन के साथ आप टीम फाइट्स लेने की आपकी जो एबिलिटी होती है वो अनपैरेलल्ड होती है, उससे आप काफ़ी हद तक गेम भी जीत सकते हो। बिल्कुल, तलहा सपोर्ट्स उस तरीके से यूटिलिटी प्रोवाइड करते हुए विजन एक टफ बिग फैक्टर होता है डोटा के एक गेम के अंदर, और जोन सा सपोर्ट यूजुअली उसको बेहतर तरीके से उस रोल को फुलफिल करता है। वॉर्ड्स के थ्रू भी मैकेनिक है, बट ट्रिएंट तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट मैकेनिक भी, राइट? वही आप बिहाइंड एनिमी लाइंस खेल रहे हो सकते हैं और अपनी टीम को वो विजन फेच करके दे रहे होते हैं। सो ड्रॉ और टेरर ब्लेड इन टर्म्स ऑफ जो कोर हीरोज बैन किए गए हैं, विसाज टीम वूफर फैंस तो अभी शुरू में सपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, लेकिन गेमएक्स पक बैन किया जाता है और साथ ही साथ हुडविंक को पिक करते हैं। दैट इज़ थोड़ा सा सरप्राइजिंग परहैप्स ये हुडविंक सपोर्ट है, क्योंकि हुडविंक को आई मीन डैमेज थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, लेकिन उससे हुडविंक की जो सर्वाइवेबिलिटी है वो चेंज नहीं होती। परहैप्स ट्रेन प्रोटेक्टर एंड हुडविंक की कॉम्बिनेशन जो है वो इतनी ज़्यादा पोर्टेंट है, दोनों दरख्त से ही खेलेंगे। तला यही सोच रहा था कि वो शायद जो वुड की विजन वुड के थ्रू खेलना चाह रहे हैं, या जंगल के थ्रू बेसिकली दे ट्राइंग टू प्ले फ्रॉम देयर, बट उसके अलावा मुझे कोई खास सिनर्जी नहीं समझ आई दोनों के अंदर। मे बी रूट इनटू Hoodwink's ultimate, or Hoodwink's route into something that Trian does, but not something we've seen that often being paired up. Draw Ranger. Definitely, देखते हैं हम कोर्स ये क्या पिक करते हैं, तो डेफिनेटली इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा देखने के लिए। एंड मीनवाइल वाइपर प्लस शैडो डीमन डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन। आप वाइपर का सेटअप भी कर सकते हो शैडो डीमन के लिए, उसके ऑर्ब्स भी उसको काफ़ी ज़्यादा स्लो करते हैं, प्लस वाइपर के इल्यूजन्स भी अगर आप बनाते हो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बट आई वुड से कि हुडविंक की जो अल्टीमेट है उसको शैडो डीमन एक तरह से तो काउंटर डेफिनेटली कर सकता है, अगर वो इम्प्रिजन कर दे अपने किसी एलाई को डिस्पर्शन एबिलिटी के साथ, तो वो उससे आई थिंक आप हुडविंक की एबिलिटी को डॉज कर सकते हो। इवन ट्रेन प्रोटेक्टर की अल्टीमेट अगर किसी हीरो पे अनलीश हो गई, बहुत रेयरली होता है कि वो 5 हीरो कॉट आउट हो गए या 4 हीरो कॉट आउट हो गए, नॉर्मली तो वो 1-2 हीरो ही होते हैं। तो शैडो डीमन बचाने के लिहाज से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इनकी लाइनअप में। वाइपर प्लस टस्कर हमेशा से एक बहुत पोर्टेंट कॉम्बिनेशन रही है, एंड आई एम श्योर रहेगी, बिकॉज वाइपर एंड टस्कर ऑफ लेन की तरफ पर्टिकुलरली अगर ये वाइपर ऑफ लेन जाएगा तो उस लेन में काफ़ी ज़्यादा डेडली फोर्स होते हैं। आई डोंट थिंक कोई ऐसा एक कैरी है जो वाइपर और टस्कर की लेन को सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल, तला वाइपर और टस्क के काफ़ी डेडली लेन बन जाती है। आई थिंक स्लो एंड द आर्मर रिडक्शन, द मैजिकल ग्रोसिव के ऊपर भी डैमेज आपको ओवर टाइम, तो इट कैन ऑल गेट अ लिटिल ओवरवेलमिंग। लेकिन अब टीम वूफर दे आर टेकिंग देयर टाइम, 1 minute 16 seconds ट्राइंग टू पिक। I guess अपने off laner के लिए they should be going for right now. They could probably do their mid laner as well.
but डेफिनेटली उनको आई थिंक सेव मैकेनिज्म की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग इनिशिएटर, बट अगेन वो एक स्वेन की तरफ जाएंगे जो कि अगेन मतलब अली जैसे कि हमने बात कर रहे थे, इतने ज़्यादा बफ्स रिसीव्ड किसी ही स्पेसिफिक हीरो को नहीं हुए हैं, छोटे मोटे बफ्स ही हुए हैं। स्वेन जिसकी हम बात करें तो मूवमेंट स्पीड इंक्रीज स्वेन को मिली है, स्टॉर्म हैमर का डैमेज इंक्रीज हो गया अगर स्वेन ने सेप्टर बनाया हुआ है। टैलेंट के थोड़े से चेंजेस हैं, तो ओवरऑल नॉट इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं है। मीनवाइल स्वेन के अगेंस्ट अगर आप देखें तो एक वाइपर भी होगा। स्वेन डेफिनेटली वाइपर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, पर्टिकुलरली क्योंकि जब वाइपर अपनी अल्टीमेट खोलेगा तो उससे जो इनिशियल स्लो मिलता है, एंड हाँ, स्पेशली लेकिन वो जो काउंटर आ वाइपर गया का था डिसआर्म ना। एबिलिटी, उसका भी काउंटर आ गया। सेंटोर वार्नर को काफ़ी अच्छा बफ मिला, उसका ओवरऑल आउटगोइंग डैमेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया गया है। Because तो Alan, the slows डेफिनेटली that you were talking about, जो Viper inflict करता है टस, so I guess उसकी ultimate से heroes should be able to get away from that. थोड़ा सा distance ज़रूर create कर पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ Centaur, Sven also could be using that ultimate to initiate, to go back in and to start the fight, right? तो ये I guess थोड़ा सा magical damage, physical damage को favor कर रही है fans right now with the Sven and the combination that they have right now. जबकि दूसरी साइड पे Gamax Esports, डेफिनेटली आई थिंक दी ओनली आई थिंक एक चीज़ को वॉफर फैंस को ऊपर ख्याल रखना पड़ेगा, इज़ बिकॉज उनकी पूरी लाइनअप एक स्वेन के फिजिकल डैमेज पर पे रिलाई कर रहे हैं। और वाइपर का डिसआर्म एबिलिटी बहुत ज़्यादा, जो शार्ड से उनको नोज डाइव एबिलिटी जो वाइपर की है उससे उनको डेफिनेटली बचना पड़ेगा। बट मीनवाइल गैमैक्स लाइफ स्टीलर की तरफ, तो उनका भी कैरी अब डिस्प्ले पर आ गया है। लाइफ स्टीलर के कैरी के साथ स्वेन का तो अच्छा काउंटर है। अब लाइफ स्टीलर की इस लाइनअप में बहुत एक खास बात है कि जो तमाम के तमाम वूफर फैंस की एबिलिटीज़ हैं वो रेज के अगेंस्ट काम नहीं करेंगी, और काफ़ी आसान डॉज मैकेनिज्म है लाइफ स्टीलर के पास। सारी एबिलिटीज़, हुडविंग की इतनी स्लो एबिलिटी होती है, स्वेन का स्टॉर्म हैमर इतना स्लो होता है, सेंटोर वॉर्नर चलन वो ब्लिंक डैगर जब उसका बनेगा तो वो इंस्टेंट हुस्टॉर्म मिल जाता है। लेकिन ट्रेन प्रोटेक्टर भी ओवर ग्रोथ उसको अब वेट करना पड़ेगा कि लाइफ स्टीलर रेज इस्तेमाल करे बिफोर ओवर ग्रोथ यूज़ करने से पहले, वरना वो ओवर ग्रोथ यूज़ नहीं कर पाएगा। एक स्टॉर्म स्पिरिट को भी बैन होते हुए हम देख रहे हैं। स्टॉर्म स्पिरिट अगेन जैसे हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा मिड लेन पे उसको बफ मिला था, और अब दोनों हीरोज़ के लिए मिड लेनर बाकी है। कौन सा मिड लेनर ये लेंगे, डेफिनेटली आई थिंक एक और वजह स्टॉर्म स्पिरिट को बैन करने की वाज कि वो इन्फेस्ट बॉम्ब अवॉइड करें, लेकिन अभी भी इन्फेस्ट बॉम्ब के लिए कुछ हीरोज़ बाकी हैं। सवाल ये है कि एम्बर स्पिरिट को कोई पिकअप करेगा, या हो सकता है क्वीन ऑफ पेन या अर्थ स्पिरिट को भी, तो ये हम अभी देखेंगे। आई थिंक क्वीन ऑफ पेन फॉर गैमैक्स ई स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीरो मिलेगा, पर्टिकुलरली बिकॉज रून्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, रून्स को भी बहुत ज़्यादा बफ मिले। इवन अगर फॉर एग्जांपल आप डबल डैमेज रून का देखें तो क्वीन ऑफ पेन का अर्ली गेम पे, इवन मिड गेम पे फिजिकल डैमेज इज़ इक्वली एज गुड एज द मैजिकल डैमेज क्वीन ऑफ पेन का जो आ रहा होता है। तो विद हीरोज़ लाइक दैट तो रून्स से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, गैंकिंग पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, एंड ऑल्सो इन्फेस्ट बॉम्ब की वो कैपेबिलिटी हमेशा रहती है। बट देखते हैं कि गैमैक्स किस हीरो की तरफ जाते हैं। 16 सेकंड सिर्फ बाकी हैं गैमैक्स के लिए। वूफर फैंस को डेफिनेटली देखना पड़ेगा। एटलीस्ट वूफर फैंस के पास ये एडवांटेज होगा कि वो गैमैक्स का पहले मिड लेन हीरो देख लेंगे, तो उस लिहाज से एडजस्ट कर लेंगे। एंड मीनवाइल अब गैमैक्स हीरोज़ को देखते हैं। मैग्नस एक हमें नज़र आते हुए दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली एक मैग्नस, आई थिंक ये मिड लेन मैग्नस होगा लाइफ स्टीलर के लिए। वो स्पेस एंड डेफिनेटली एम्पावर एबिलिटी, फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, और मैग्नस को डेफिनेटली काउंटर करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मैकेनिज़म्स हैं। एनी सॉर्ट ऑफ, जैसे कि रेंज हीरो हम बोल दें, या फिर इवन अगर वो मेले हीरो की तरफ जाएं, ऑब्वियसली मेले हीरो तो मैग्नस के अगेंस्ट लूज़ कर जाएगा मिड लेन पे, लेकिन रेंज हीरो की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक उनको एक मिड लेनर लेना चाहिए जिसके पास एक एस्केप मैकेनिज्म मौजूद हो, बिकॉज अगर आप गैमैक्स की लाइनअप को देखें तो
कोई भी हीरो जो कि मैग्नस के स्क्यूअर में कॉट आउट हो जाएगा वो तो फौरन फॉल करेगा, उसके बचने के चांसेस बहुत कम होंगे, पर्टिकुलरली क्योंकि वोफर फैंस के पास कोई सेव मैकेनिज्म मौजूद नहीं है किसी भी हीरो के पास। ट्रेन प्रोटेक्टर का लिविंग आर्मर तो ज़रूर है, लेकिन लिविंग आर्मर अगेंस्ट वाइपर शैडो डीमन टस्कार तो ये इससे बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। गैमैक्स ऑन द अदर हैंड उनके पास सेव मैकेनिज्म काफ़ी ज़्यादा हैं टू काउंटर द सेंटोर वॉर रनर, या फिर स्वेन की भी इनिशिएशन, शैडो डीमन भी है, टस्कार भी है, एंड वाइपर, और ये वाइपर और लाइफ सीरीज तो वैसे भी नेचुरली काफ़ी ज़्यादा टैंकी हीरोज़ हैं। बट मीनवाइल वोफर फैंस वही जैसे कि हम सोच रहे थे क्वीन ऑफ पेन पिक करते हुए रेंज्ड हीरो अगेंस्ट द मैग्नस। क्वीन ऑफ पेन डेफिनेटली थोड़ा सा नर्फ तो उनको मिला है, स्पेशली सेप्टर का थोड़ा सा नर्फ, शैडो स्ट्राइक की एओई रिड्यूस हो गई है, एंड थोड़ा सा चेंजेस आए हैं, जैसे कि लेवल 10 के टैलेंट पे उनको 10 हील पर टिक मिल रहा है, जो कि इन माई ओपिनियन +8 स्ट्रेंथ से थोड़ा सा बेहतर रहता है, क्योंकि वो सस्टेनेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है क्वीन ऑफ पेन को। इंस्टेड ऑफ 200 HP ना उसको 300 HP लेवल 4 शैडो स्ट्राइक पे वो निकाल सकते हैं। तो क्वीन ऑफ पेन अगेंस्ट मैग्नस, तो डेफिनेटली आई थिंक क्वीन ऑफ पेन अगर शैडो स्ट्राइक मैक्स करें वो डेफिनेटली कर सकते हैं, तो शैडो क्वीन ऑफ पेन विल डेफिनेटली उस लेन को तो उनको जीतना चाहिए। गैंकिंग पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, एस्केप मैकेनिज्म भी मौजूद है, जो कि जिस चीज़ की सख्त ज़रूरत थी वोफर फैंस को। अब गेम कुछ होते हुए देखते हैं कि लेन्स वैसी ही वो रखेंगे जैसे कि हमने प्रिडिक्ट किया है। मीनवाइल तो 5 मैन का स्मोक दोनों तरफ से नज़र आ रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक वोफर फैंस लेवल 1 पर कंटेस्ट करना चाहेंगे, वो अपने डायर साइड के जंगल की तरफ जा रहे हैं, एंड मीनवाइल जो गैमैक्स हैं वो रेडियंट साइड पर ही मौजूद रहेंगे। सो अर्ली गेम क्लैश 5v5 क्लैश लग नहीं रहा कि हो पाएगा इसमें, अनलेस दोनों टीम्स एक दूसरे की तरफ रोटेट करें। सो इवन दो 2-2 बाउंटी रून्स दोनों साइड्स को मिलते हुए नज़र आएंगे। जहाँ तक बात हम करें, अगर फ़र्ज़ करें लेनिंग फ़ेज़ की, तो लेनिंग फ़ेज़ में आई थिंक ये जहाँ पे भी वाइपर जाएगा मोस्ट लाइकली टॉप लेन, या हो सकता है वो स्विच आउट भी कर दें। वाइपर मिड लेन में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज़ है, सबसे ताकतवर हीरो है, क्वीन ऑफ पेन के अगेंस्ट आराम से डील कर सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेन शैडो स्ट्राइक लैंड ही नहीं कर सकता वाइपर पे, और जस्ट अबाउट एनी स्पेल श्योर वो लैंड तो कर लेंगे, लेकिन इन दी एंड क्वीन ऑफ पेन को उतना HP इतनी ज़्यादा नहीं होती, और वाइपर के जो टॉक्सिन लेवल 3 पैसिव से क्वीन ऑफ पेन को उतना ही डैमेज इन दी एंड रिसीव होता है। लास्ट हिट्स भी कंटेस्ट नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली वाइपर को वो मिड लेन भेज सकते हैं, लेकिन आई थिंक दे आर गोइंग टू कंटिन्यू कि वो मैग्नस को ही मिड लेन पे रखेंगे, डिस्पाइट कि मैग्नस टॉप लेन पे भी एक वायबल हीरो रहता। लेकिन जैसे कि हमने सोचा था वाइपर प्लस टस्कार टॉप लेन की तरफ जाएंगे, और इस स्वेन को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी कंटेस्ट करते हुए, क्योंकि वाइपर के अगेंस्ट अर्ली फेज़ में तो कोई बचने के इम्कान नहीं होते। बॉटम लेन की अगर तरफ हम देखें, लाइफ स्टीलर प्लस शैडो डीमन अगेंस्ट सेंटोर वॉर रनर, एंड उनका सपोर्ट अभी गया नहीं है, परहैप्स वो टॉप पे गैंग करेंगे हुडविंग, बट बॉटम लेन काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक नज़र आ रही है, दोनों साइड्स को अपना अपना फार्म मिल ही जाएगा। मीनवाइल मिड लेन पे आई थिंक एज सून एज क्वीन ऑफ पेन के ऊपर लेवल्स आना शुरू होंगे, तो ये मैग्नस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी मैग्नस को। क्वीन ऑफ पेन ने अपना सादा मैना एक्सपेंड कर दिया है, हाउएवर अपना स्क्रीम ऑफ पेन को पहले एबिलिटी लेके मुझे हमेशा लगता है कि स्ट्रेस और श्योर शैडो स्ट्राइक लेवल 1 पे इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती, लेकिन वो टिक डैमेज और वो हील जो मिल रहा होता है वो लेवल 1 पे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, पर्टिकुलरली बिकॉज क्लैश होता है। और मीनवाइल फर्स्ट ब्लड हमें नज़र आता हुआ देखेगा ऑन टू शैडो डीमन बाय द हुडविंक एंड प्लस द सेंटोर वॉर रनर। डेफिनेटली इस चीज़ को अवॉइड करने की तो ज़रूरत होगी, जो हुडविंक की जो ट्रैप एबिलिटी होती है, बिकॉज वंस यू आर इन द ट्रैप एबिलिटी, पर्टिकुलर अगर शैडो डीमन हो, इतनी आउट ऑफ पोजीशन अगर आप कॉट हो गए तो आप डेफिनेटली एक डेथ तो दे रहे होगे। बिल्कुल तला, और मेरे ख्याल से भी लेंस के तो सेटअप काफ़ी मज़े का नज़र आ रहा है। स्वेन अपने टावर के पीछे
प्रीफेब आई गेस थोड़ा सा पुल शेनानिगन्स चल रहे हैं दोनों साइड से। लेकिन अगर अभी फर्स्ट ब्लड भी चला हमारे पास ड्रॉ हुआ है, प्लीज फिल मी इन ऑन व्हाट हैपेंड देयर। अरे आई हैव नो आइडिया बिकॉज मैंने भी नहीं देखा, लेकिन आई आई गेस कैन ठीक है, बिल्कुल। आई कैन हाँ, वो उस वक्त हम मिड लेन का देख रहे थे, लेकिन आई कैन प्रोबेबली गेस कि शैडो डीमन थोड़ा सा आउट ऑफ पोजीशन हो गया होगा, हुडविंक ने उसको ट्रैप किया होगा, सेंटर वार्नर का स्टन। लेकिन आई थिंक उसमें ज़्यादा आउट प्लेस होने से आई थिंक शैडो डीमन इज अ हीरो जो कि बैकलाइंस पे उसको रहना चाहिए, जस्ट मेक श्योर कि उसका लाइफ स्टीलर फार्म कर रहा है। इंस्टेड आई थिंक शैडो डीमन ने कोई चीकी प्ले करने की कोशिश की होगी ज़रूर, जिसकी वजह से उन्होंने फर्स्ट ब्लड दूसरी जान टीम गवा को दे बैठे दिया होगा। because then that's the thing with the Shadow Demon, right? High amount of magical damage output, लेकिन not the tankiest hero at all. और लेकिन यहाँ पे खैर talking about that high amount of damage, Hoodwink deciding कि यहाँ से TP कर लेना इस वक्त बेहतर है, because जिस तरीके से damage output हो रहा था उनके ऊपर, बचना इतना आसान नहीं लग रहा था। तो लाइफ डेफिनेटली स्टीलर और यहाँ पे शैडो डीमन का कॉम्बिनेशन हमारे पास बॉटम लेन पे, और ये काफ़ी पावरफुल कॉम्बिनेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। जबकि दूसरी साइड पे ऊपर टस्क प्लेइंग दैट पोजीशन 5 फॉर दिस पोजीशन, सॉरी टस्क तो दूसरी साइड पे बल्कि प्लेयर पोजीशन 4 साथ साथ मैग्नेस के, तो काफ़ी एंड इंटरेस्टिंग सेटअप है यहाँ पे। वाइपर इट्स साथ में सरप्राइजिंगली थोड़ी हैरानगी की बात है कि टॉप लेन पे वाइपर स्ट्रगल कर रहा है स्वैन का फार्म रोकने में। अगर स्वैन लास्ट हिट्स में 18 लास्ट हिट और 7 ले चुके डिनाई हैं। लेकर बैठे हुए हैं, वाइपर तो 2 मीली हीरोज के अगेंस्ट फेस कर रहा है विद द टस्कार, तो ये चीज़ बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। वाइपर को बहुत आसान लेन मिली हुई है मेरे ख्याल में, और डेफिनेटली इनफैक्ट दूसरी तरफ रोटेशन हो रही है, लेकिन थोड़ी सी ओवर एक्सटेंशन हो गई डायर साइड की तरफ, और ये स्वेन तो बहुत मज़े से अपनी जान खो बैठेंगे वाइपर से। आई डोंट थिंक ये इनिशिएशन वाइपर पर करनी चाहिए, बिकॉज वाइपर को इस स्टेज पे मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आपके पास कोई ऐसी एबिलिटी है नहीं, टस्कर कैन ईजिली ट्रैप यू, और वाइपर स्ट्राइक वो स्टैक होते वंस स्टैक हो जाए, वंस आपके पास 3 वाइपर स्ट्राइक या 4 वाइपर स्ट्राइक आ जाएं और आप टावर से इतना दूर होंगे, तो उस वक्त सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। मेरे को तरह वो वाइपर स्ट्राइक के स्टैक से बच के रहना पड़ेगा। और एक चीज़ तो तला न्यू पैच एंड एवरीथिंग, तो एक चीज़ थोड़ी सी मुझे रिफ्रेशिंग लग रही है कि मुझे गेम में ब्रिसल बैक नहीं नज़र आ रहा, तो नॉट श्योर व्हाट हैपेंड देयर, नॉट इन टीम्स की ब्रिसल बैक आई थिंक कॉम्पिटिशन। उन्हें ब्रिसल बैक को भी इतना ज़्यादा नर्फ नहीं मिला है वैसे, बस उनका आई थिंक इंस्टेड ऑफ डैमेज उनको अटैक स्पीड पे ओह चेंज इज कर ही दिया डेड? है, और ओह टर्न हाँ अराउंड। डेफिनेटली डेड। और यही चीज़ शैडो डीमन को अवॉइड करनी है, क्योंकि वंस आपका कैरी इतना लो होकर बैक ऑफ कर चुका है, इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस कि आप सपोर्ट होते हुए चेस करो, बिकॉज अगर योर लाइफ स्टीलर आपके ऊपर कम्प्लीटली रिलायंट है कि बिल्कुल। आप ही उसके लिए स्पेस बनाओगे शुरू की गेम में। बट मीनवाइल क्वीन ऑफ पेन लेवल 5 हिट कर चुके हैं, एंड आई थिंक क्वीन ऑफ पेन शैडो स्ट्राइक ही मैक्स कर रहे हैं। बिल्कुल तरह, और इस तरह के मैग्नेस के जैसे मिली हीरो के अगेंस्ट शैडो स्ट्राइक डैम मैक्स करना मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। लेकिन नीचे सेंट और वॉर रनर आई गेस टावर के करीब काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ही गेट्स पनिश्ड एंड टेकन आउट। और अगर ऊपर देखा जाए तो तलहा स्वैन के ऊपर वो डेथ आ गई, और उसके बाद से वाइपर थोड़ा सा लेन के अंदर रिकवर करने में कामयाब हुए हैं। आई गेस स्वैन की लास्ट हिट से भी ज़्यादा हो गई उनकी। डेफिनेटली वाइपर रिकवर कर रहे हैं, एंड आई थिंक क्रिटिकल मास एज फार एज लेनिंग फेज में की अगर हम बात करें, क्रिटिकल मास हिट कर लिया है वाइपर ने। टस्कार भी लेवल 3 हो चुका है, होल्डिंग ऑन अभी उसने अपना स्किल एबिलिटी नहीं किया, देखते हैं कि वो स्नोबॉल की तरफ जाते हैं या नहीं। डेफिनेटली एक बहुत ही यूजफुल एबिलिटी होगी, एंड मीनवाइल ये हुडविंक ने देख लिया है कि शैडो डीमन मिड लेन की तरफ जा रहे हैं, बट टस्कार भी अब मौजूद है। वाइपर क्वीन ऑफ पेन बहुत लो है, स्नोबॉल को भी स्किल अप कर लिया, एंड दिस क्वीन ऑफ पेन भी अपनी जान खो बैठेंगे, एंड मीवा हुडविंक कुछ भी नहीं कर पाए, उसको भी शॉकवेव लगी, लेकिन आई डोंट थिंक हुडविंक को ये फॉलो करेंगे। बट बहुत ही बढ़िया टस्कार का प्ले हमने देखा, क्वीन ऑफ पेन को फोर्स किया उनने ब्लिंक आउट करने में मैग्नस ने, एंड देन टस्कार रेडी थे वहाँ पर किल सिक्योर करने में। तो डेफिनेटली वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नज़र आई हमें गैमैक्स गेमिंग की तरफ, कम बैक नज़र आया सॉर्ट ऑफ वो जो किल डेफिसिट का हम देख रहे थे।
और क्वीन ऑफ पेन पे किल हासिल करी। डेफिनेटली ये मिड लेन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी, बिकॉज आप क्वीन ऑफ पेन स्पेशली जो क्वीन ऑफ पेन शैडो स्ट्राइक मैक्स करते हैं, तो वो लेन डोमिनेशन ही एक चीज़ होती है एक्सपेक्ट करनी, बिकॉज आप अपना गैंकिंग पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा खो बैठते हैं। एंड मीनवाइल शैडो डीमन थर्ड डेथ मेरे ख्याल से हम अभी नज़र आएगी, अनलेस वो एंशिएंट से डिनाई नहीं होंगे एक्चुअली। बिल्कुल तला वो विजडम रून स्नाइप करने की कोशिश की जा रही थी, 7 मिनट पे स्पॉन होगी, लेकिन दूसरी साइड पे वूफर्स गेमिंग कम्प्लीटली रेडी फॉर दैट मूव, राइट। काफ़ी स्टैंडर्ड टाइमिंग वहाँ पे है, लेकिन मिडिल के ऊपर वापस स्कॉप आकर अब लेवल 6 भी हिट हो चुकी हैं। एंड दैट मैग्नस की HP काफ़ी लो लग रही है यहाँ पे। रेन ड्रॉप ज़रूर मौजूद है, आई थिंक बॉटल भी रिफ्रेश हो जाएगी यहाँ पे, तो शुड बी एबल टू गो बैक एंड नॉट इन लॉट ऑफ ट्रबल। टॉप पे अगर शैडो देखा जाए डीमन भी तो देखो मौजूद है वहां पर। शैडो डीमन डिस्पर्शन करेगा, टस्कार भी आ रहे हैं, क्वीन ऑफ पेन ओ और अल्टीमेट आरपी इस्तेमाल, विल आल्सो बी यूज्ड इन सिंक, कॉम्बो। और क्वीन ऑफ पेन मर जाएंगे। डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी यूज ऑफ द आरपी, एंड आई डू नॉट थिंक क्वीन ऑफ पेन इसको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वॉर्ड नहीं था, एंड डेफिनेटली थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन का मिसप्ले तो हुआ होगा टीम वुफर्स की तरफ से, बिकॉज दो सपोर्ट्स अगर मिसिंग हैं तो डेफिनेटली मिड लेनर को अवेयरनेस तो होनी चाहिए इस चीज़ की। यू नो अगर बॉटम लेन से शैडो डीमन गायब हुआ हुआ है और टॉप लेन से टस्कर गायब हुआ हुआ है, तो ये डेथ तो नहीं बनती, थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए था क्वीन ऑफ पेन को। एंड मीनवाइल एक और किल हमें नजर आएगी, सेंटर वॉर ने अल्टीमेट यूज कर दिया है, मीनवाइल क्वीन ऑफ पेन आती है अपनी अल्टीमेट यूज करते हुए, एंड देन मैग्नस भी उड़ टर्न जाएंगे अराउंड, एंड शैडो डीमन की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेन की एक और शैडो स्ट्राइक आएगी, एंड दिस विल बी द फोर्थ, चौथी डेथ शैडो डीमन की तरफ से। तो हमें भी क्वीन ऑफ पेन का एक कमबैक नज़र आ रहा है थैंक्स रोटेशंस की वजह से, एंड होडविंग भी जिंदा बच जाते हैं, सो डेफिनेटली वापस इन फेवर जा रहे हैं। बट मीन वाइज स्वेन का फ्री फार्म हम देखते हुए नजर आ रहे हैं। 52 लास्ट हिट्स, 50 लास्ट हिट्स स्वेन ने हासिल कर रही हैं। ऑब्जर्वर वॉर्ड भी प्लेस डाउन हो गई है, अब वो देख रहे हैं कि स्वेन सारे न्यूट्रल स्टैक्स उखा रहे हैं, बट कुछ वो कर पाएंगे या नहीं। ट्रीएन प्रोटेक्टर की तरफ जा रहे हैं वाइपर, दिस विल बी अ वेरी डेड ट्रीएन प्रोटेक्टर, लेकिन जस्ट अ ट्रीएन प्रोटेक्टर एंड स्वेन, ओ एक्चुअली नहीं, स्वेन अल्टीमेट ने यूज है। गलती की है, लेकिन उसको आई डोंट थिंक स्टन अवेलेबल होगा और वो निकल जाएंगे। तो तरह गुड कॉल, लेकिन यहाँ पे शैडो डीमन को एक दफ़ा फिर से उसकी पोजीशनिंग के लिए यहाँ पे पनिश किया जाएगा। कॉप के पास ब्लिंक मौजूद है, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज रिसीव कर जाती है। तला शी इज जस्ट डेड। या डेफिनेटली थोड़ा सा ओवर एक्सटेंशन हुई थी, बिकॉज उनके पास इन्फॉर्मेशन तो थी कि वाइपर वहाँ पर मौजूद है, परहैप्स वो सोच रहे थे कि वाइपर की अल्टीमेट यूज़ हो गई है तो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं निकल पाएगा, लेकिन उनकी कैलकुलेशन गलत साबित हुई, क्योंकि वो शैडो डीमन को इंडियन नहीं निकाल पाए। यही सेव मैकेनिज्म की अली मैं बात कर रहा था कि शैडो डीमन का इतना पोटेंट सेव मैकेनिज्म होता है, पर्टिकुलरली अगेंस्ट द होडविंग, इतना टाइम वो बना लेते हैं कि वो उनकी बाकी टीम भी रोटेट कर सकती है। और यही आगे हम देखेंगे कि उनकी टीम जैसे फोकस्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैग्नस के पास ब्लिंक डैगर अगर आ गया होगा या फिर लाइफ स्टीलर मौजूद होगा, तो क्या ही टीम वुफर्स शैडो डीमन के डिसरप्शन का वेट कर पाएंगे कि वो हीरो के ऊपर कॉन्स्टेंट टारगेट करें, क्योंकि उनके पास तो एक स्क्यूअर का डेंजर हमेशा मौजूद रहेगा। बिल्कुल स्क्यूअर का डेंजर शैडो डीमन के पास ना सिर्फ सेव के लिए तला, अगर बात बिल्कुल ठीक है कि एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी, बट दी अदर वे अराउंड लाइट इट कैन बी यूज्ड ऑफेंसिवली एज वेल, अपनी टीम को सेटअप देने के लिए। हमने मल्टीपल टाइम्स अभी मिड पे उनके गैंग्स में भी देखा कि वो अपने टस के साथ कॉम्बो करने में कामयाब, मैग की अल्टीमेट वहाँ पे आ सकती है, द ड्रैग बैक स्क्यूअर की फॉर्म में भी मौजूद है, राइट। तो वो एक काफ़ी अच्छा ऑफेंसिव सेटअप भी दे सकता है। और लेकिन अगर अभी बात की जाए तो स्वेन लाइफ स्टीलर आउट फॉर्म तो कर रहे हैं विच इज़ एक्सपेक्टेड, लेकिन द मैग एंड द लाइफ स्टीलर कॉम्बो तला डैमेज काफ़ी एम्पलीफाई हो जाएगा और लाइफ स्टीलर की फार्मिंग भी काफ़ी तेज़ हो जाएगी उससे, सो शुड बी एबल डेफिनेटली टू कीप अप आई विद दैट थिंक स्वेन, ये राइट। लेकिन स्टैक्स, ओके, 2 स्टैक्स। स्टैक्स तो देखना पड़ेगा, और आई थिंक स्टैक्स को रोकने की भी कोशिश करनी पड़ेगी टीम गैमैक्स को, और वो कर भी सकते हैं। उनके पास वाइपर मौजूद है, लाइफ स्टीलर मौजूद है, शैडो डीमन भी मौजूद है, तो डेफिनेटली स्टैक्स को वो निकाल सकते हैं। मीनवाइल अब हम देखेंगे क्वीन ऑफ पेन की रोटेशन, वो टस्कार को तो देख रहे हैं, और स्मोक एक्चुअली टस्कार ब्रेक कर देगा एंड क्वीन ऑफ पेन विल बैक ऑफ। सिग्नल्स भी जा रहे हैं, उनको पता है कि टीम वुफर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा वेस्टेड स्मोक हमें नज़र आएगा।
रॉयल जेली को तो ऑब्वियसली चेंज कर दिया है। पहले रॉयल जेली बहुत ही अच्छी आइटम होती थी, परमानेंट एचपी रीजन और मैनर रीजन देते थे, लेकिन अब उसको काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया है। एंड मीनवाइल हमें एक और अटेम्प्ट क्वीन ऑफ पेन की तरफ आएगा, आरपी यूज एज वेल, वो टस्कार भी उसको मार रहे हैं एंड क्वीन ऑफ पेन विल सेम आल्सो फॉल। कॉम्बो। होल्डविंग बचाने की कोशिश करने के लिए आए, लेकिन ओ कामयाब नहीं हुआ। होल्डविंग की तरफ भी जा रहे हैं, मैग्नस हेस्टेड, शार्ड्स मैग्नस जस्ट ऑफ। उसके ऊपर विजन भी नज़र आ रहा है, शॉकवेव जाएगी लेकिन होल्डविंग बच जाएंगे यहाँ से, लेकिन उन्होंने अपना काम तो पूरा कर दिया है। एंड आई थिंक ये टीपी भी हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ये किसका टीपी है? आई थिंक स्वेन का टीपी नहीं, ये एक्चुअली सेंटोर वॉर्डनर सेंटोर का टीपी है। वॉर्डनर का टीपी है। देखना पड़ेगा कि वो कुछ कर पाएंगे यहाँ पर या नहीं, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा डैमेज आउटपुट मेरे ख्याल से नहीं है। देखो तो आई डोंट थिंक ही हैज़ अ ब्लिंक राइट नाउ, लेकिन सेटअप की शायद ज़रूरत ना पड़े बिकॉज मैक को कैच कर लिया स्वन के स्टन से। अल्टीमेट एबिलिटी का इस्तेमाल आ जाता है, डिसरप्टर बचा तो पाते हैं, लेकिन सॉरी शैडो डीमन ना अपने टीममेट को बचा पाए और ना ही अपने आप को बचा पाएंगे वहाँ पे। तो अच्छी रोटेशन यहाँ पे मैंने नजर आई वूफर गेमिंग की तरफ से। सेंटोर शोइंग अप मेरे ख्याल से पहली दफ़ा मिड पे, और शुड बी अ टियर 1 टावर नाउ। डेफिनेटली डबल डैमेज ड्रोन कमिंग इन हैंडी सुवन के लिए। अल्टीमेट भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड देन ये बस करके वापस अपनी फार्मिंग की तरफ जा सकते हैं। मीनवाइल क्वीन ऑफ पेन पता नहीं यहाँ पर किस कोशिश में लगे हुए हैं। अल्टीमेट शायद मौजूद है उनके पास, तो टस्कार को तो मार देंगे। ओ एक्चुअली नहीं, डिनाई हो सकते हैं टस्कार, और उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेस्टेड अल्टीमेट बाय द क्वीन ऑफ पेन। नॉर्मली इतना ज़्यादा हाई डैमेज होता है क्वीन ऑफ पेन की अल्टीमेट का लेवल 1 पे, तो उनको तो आई थिंक टीम के साथ ही खेलना चाहिए, बट डेफिनेटली ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि रिटर्न किल्स तो उनको मिल गई थी, स्वेन को और सेंटर वॉर्नर को, और टियर 1 टावर भी उन्होंने हासिल कर लिया था। तो आई वुड से इतनी ज़्यादा नुकसान उनको नहीं होता इस चीज़ की वजह से। दोनों टीम्स ने रीसेट कर लिए, दोनों टीम्स काफ़ी ज़्यादा इवन जा रहे हैं। मैग्नस का ब्लिंक टैगर बहुत ज़्यादा करीब है, तो आई थिंक नेक्स्ट मार्क यही होगा। एंड मीनवाइल रेडिएंट के पास भी, गैमैक्स के पास भी अपने सारे स्टैक्स बने हुए हैं। बिकॉज दैट्स यूजुअली द एडवांटेज ऑफ शैडो डीमन एज वेल राइट। इस हीरो के लिए स्टैक्स क्रिएट करना इतना आसान हो जाता है अगर आप इल्यूजन्स के साथ थोड़ा सा माइक्रो कर सकें। ऑफ कोर्स दी सपोर्ट्स आर सो गुड, तो वहाँ पे आपको मल्टीपल स्टैक्स ज़रूर मिलेंगे। लेकिन नाउ इट बिकम सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन राइट कि क्या लाइफ स्टीलर प्लस मैग की जो फार्मिंग मशीन है विल दे बी एबल टू हिट अ बेटर टाइमिंग देन स्वेन ऑन द अदर हैंड। क्योंकि अभी स्वेन तो काफ़ी हद तक अपना फार्म उन्होंने ज़रूर अप किया हुआ है जो कि एक्सपेक्टेड है फ्रॉम स्वेन, लेकिन सेंटोर एंड स्वेन दोनों हीरोज़ हैं जो कि इस वक्त नेटवर्थ में टॉप में, और उसके साथ साथ फिर पीछे आपके पास आ जाते हैं गेमैक्स के हीरोज़ विच इज़ वाइपर, द लाइफ स्टीलर एंड द मैग्नस। तो कुछ आइटम टाइमिंग्स पे भी इंतज़ार हो रहा है, लेकिन इस वक्त एक स्मोक प्ले किया जा रहा है। मैग्नस के पास ब्लिंक आ चुका है एंड दैट्स गोइंग टू बी अ बिग रिवील हियर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेंट मौजूद हैं, मंडला रहे हैं टियर 1 टावर के नीचे, लेकिन उनके ऊपर भी विजन नहीं मिली अभी तक। डेफिनेटली, और विजन हासिल करना है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। टस्कार का तो स्मोक ब्रेक हो जाता है, ट्रेन कॉम्बिनेशन को अल्टीमेट देख लेते हैं, और स्क्यूअर नैरोली मिस कर देगा, और ट्रेन प्रोटेक्टर शायद नहीं, डिस्ट्रप्शन आ गई है उसकी। शार्ड्स में भी वो ब्लॉक हो जाते हैं। ट्रेन प्रोटेक्टर स्नोबॉल टू कैंसिल द टीपी, और वो एक आसान किल मिल जाती है, और ये मोस्ट लाइकली ट्रांजिशन होगा इनटू टियर 1 टावर लेने में। टीम गैमैक्स को टियर 1 टावर तो मिल ही जाएगा, लेकिन 4 मैन रोटेशन उस चीज़ के लिए मेरे ख्याल से ट्रेड होनी चाहिए, बिकॉज 4 हीरोज़ उन्होंने रिवील कर दिए हैं, अपने सारे कार्ड्स रिवील कर दिए हैं उनने अभी इस स्टेज पे, तो टियर 1 टावर नीचे का तो जाना चाहिए। बिल्कुल, वूफर गेमिंग जिस चीज़ उनकी तरफ से अच्छी टियर 1 को बॉटम पे प्रेशर ज़रूर किया जा रहा है, एंड दे ऑलरेडी हैव द मिड टावर, सो ऑल्दो दे लॉस्ट रेडिएंट, लेकिन इन रिस्पॉन्स बिकॉज रेडिएंट ने इतने ज़्यादा रिसोर्सेज टॉप पे कमिट किए इसके लिए, सो थोड़ा सा डैमेज ऑन द टियर 1 टावर। साथ ही साथ कैटापुल्ट वेव भी आ रही है, लेकिन सेंटोर थोड़ी सी HP लो मौजूद है, जिसकी वजह से ही डजंट वांट टू रिस्क इट हियर। निस्बत तला BKB भी आ जाएगा उनके पास, आई गेस, एंड इन 2 to 3 minutes Sven should have a BKB as well. डेफिनेटली, एंड आई थिंक BKB, देखिए BKB ज़रूरी तो है डेफिनेटली, लेकिन मैग्नस की जो RP है वो BKB को काफ़ी हद तक नलीफाई कर देती है, क्योंकि अगर आप देखें
टीम वोफर्स का पूरा डैमेज स्पेशली मिड गेम या लेट गेम में वो तो सारा स्वेन की तरफ से ही आएगा। क्वीन ऑफ पेन डेफिनेटली, क्वीन ऑफ पेन का डैमेज आउटपुट तो कोई भी निगेट नहीं कर सकता, लेकिन रेडिएंट के पास, गैमैक्स के पास इतने ज़्यादा टैंकी हीरोज़ हैं कि क्वीन ऑफ पेन क्लोज आउट नहीं कर पाएंगे। क्लोज आउट करने के लिए तो सिर्फ उनके पास स्वेन ही मौजूद है। तो डेफिनेटली ये गेम आई थिंक इन दी एंड मैग्नस के ऊपर ही आएगा कि मैग्नस किस तरह के प्लेस ओह कर सकते हैं। और जैसे प्लेस की बात की, उन्होंने एक कोशिश की है, लेकिन सेंटर और वार्डन ने अपने अल्टीमेट एक्टिवेट कर दिया। ओह, they're all थ्री मैन caught. हीरो आरपी भी Sven, यूज हो जाती है। स्वेन अभी कॉट हुआ है, अपनी अल्टीमेट एक्टिवेट नहीं की। दोनों टीम डिसएंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शैडो डीमन कॉट आउट हो चुके हैं और वो भी life फॉल steal is करने here. के सेंटर ऑफ वॉर अंदर जाते हैं। क्वीन ऑफ पेन की देयर गोज द अल्टीमेट और वाइपर विल आल्सो फॉल, 2 हीरोज डाउन। मीनवाइल वुफर्स कोई भी हीरो फॉल नहीं किया। स्वेन एक्चुअली पहला हीरो होगा जो उनकी तरफ से फॉल करेगा। वुडविंग के भी डैमेज हो रहा है। वुडविंग विल कॉट आउट, कैच आउट 3 सेंटर ऑफ वॉर, 3 मैन हुव स्टॉर्म। The टस्कार विल आल्सो गो turnaround. डाउन। Woofer comes in, लेकिन दोनों की एचपी बहुत कम है। मैग्नस विल आल्सो गो डाउन, लेकिन वो टीपी आउट कर जाएंगे मेरे ख्याल से, अनलेस डैमेज जो कि मौजूद नहीं है। इन मीनवाइल दो कोर्स जिंदा चले जाएंगे लाइफ शीडर को निकालने के लिए। अभी तो उनके पास कोई मौजूद नहीं है और वो भी टीपी आउट कर देंगे। सो ओवरऑल आई थिंक काफ़ी अच्छी फाइट टीम वुफर्स ने ली। बिल्कुल चला, और बहुत अच्छा डिसएंगेज ऑन द गेमिंग साइड ऑफ थिंग्स एज वेल। जब फाइट ज़्यादा फेवरेबल नहीं नजर आई तो वहाँ से जिंदा बचना भी एक बहुत बड़ा मरहला बन जाता है। लेकिन स्वेन wasn't able to do a lot in that fight. काफ़ी फॉर्म उनके पास मौजूद है। सो ये तरह कभी कभार हमें चीज़ नज़र आती है कि वेयर द कैरी इज़ कैरिंग दैट फार्म एंड द नेटवर्थ, लेकिन टीम फाइट्स में वो इम्पैक्ट अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं नज़र आ रहा। डेफिनेटली, एंड आई थिंक थोड़ा बहुत सेम सिनेरियो होगा। फॉर एग्जांपल अगर स्वेन के पास बीकेबी होता भी, तो इन दी एंड वो पूरी की पूरी आरपी ड्यूरेशन के अंदर तो स्टैटिक रहते हुए वो कुछ कर नहीं नहीं सकते सकते। अनलेस वो बीकेबी एक्टिवेट हुआ हुआ है और फिर वो आरपी हो जाएं। तो एक फ़ायदा ये होगा कि वो मैजिक डैमेज मजीद नहीं ले पाएंगे, लेकिन वो बीकेबी की ड्यूरेशन तो वो रन आउट कर सकते हैं। एंड जैसे कि हम देख रहे थे टीम वुफर्स का जो एक री एंगेजमेंट मैकेनिज्म था, और आई थिंक थोड़ा बहुत लक भी उसमें जाता है एंड डेफिनेटली स्किल भी जाता है कि Oh, थ्री मैन on the cop again. निकाल दिया। मीनवाइल कॉप थोड़ा सा आई थिंक कॉप ने ब्लिंक इन किया था उस पे। हो सकता था क्योंकि वुफर्स गेमिंग तो बाकी हीरो स्मोक करते हुए नजर आए। तो यहाँ पे इंगेज करते हुए सेंटर ही गेट्स द वाइपर की तो स्टन के साथ इंगेजमेंट आ चुकी है। स्वेन आ जाते हैं, लेकिन दैट सेव द स्नोबॉल सेव कमिंग इन, और उसके साथ वापस री इंगेज करते हुए भी नजर आ रहे हैं कुछ ऐसे। नॉट श्योर इफ दे वांट टू डू दैट to end ultimate. Everyone's rooted in. Centaur following up with the stun, लेकिन Sven दूसरी साइड पे काइट होते हुए नजर आ रहे हैं, isn't not able to deal that damage. Finally टस्कार को मारने में कामयाब, और अब पीछे बढ़ते हुए RP on to 2, लेकिन कॉम्बिनेशन लाइफ स्टीलर आगे हैं। फॉलो अप डैमेज क्या मौजूद है? सेंटोर स्टन करके वापस भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ ही साथ डिस्ट्रप्शन यहाँ पे इंगेज कर लिया जाता है। स्वेन has been kited the entire fight, और अब एंड पे मार भी दिए जाएंगे। टीम वुफर्स बाकी तमाम हीरो वहाँ से जिंदा बचने में कामयाब होते हैं। गेमैक्स की तरफ से तलहा क्या बेहतरीन फाइट कोऑर्डिनेशन नज़र आ रही है। डेफिनेटली, एंड जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे शैडो डीमन का जो पोटेंट सेव मैकेनिज्म, एंड डेफिनेटली स्नोबॉल का भी ये तो सेव मैकेनिज्म है। होडविंग जैसे कि आपने देखा था, उसकी अल्टीमेट किसी पे भी लैच ऑन नहीं हो पाई। ब्रेक मैकेनिज्म किसी पे भी नहीं लैच ऑन हो पाया, और सेव मैकेनिज्म की वजह से वाइपर भी जिंदा बच गया जो कि उनका प्राइमरी टारगेट था उस वक्त। तो काफ़ी ज़्यादा लॉस फेस किया टीम वुफर्स ने। ऑल्दो हम ये भी कह सकते हैं कि क्वीन ऑफ पेन मौजूद नहीं थी उस फाइट में, तो अगर वो मौजूद होती तो फाइट थोड़ी सी डिफरेंट चली जाती। परहैप्स वाइपर को मारने में पहले कामयाब हो जाते वो, तो ये चीज़ डेफिनेटली एट प्ले में होती। लेकिन बैक एंड फोर्थ जा रही है, वापस चल के जाते हुए टस्कर को ओके सेंटोर वॉर्नर भी आ गया। हाँ, देन वही मैं सोच रहा था कि ये तो हीरोज कैसे क्लोज आउट करेंगे, लेकिन आई डोंट नो सेंटोर वॉर्नर कहाँ से आया, लेकिन लग रहा था काफ़ी दूर से चलते हुए जा रहे थे उस तरफ। मतलब मोर ऑफ अ राइट प्लेस एट द राइट टाइम वाली बात वहाँ पे थोड़ी सी नज़र आई। लेकिन अब अगर मिड पे देखा जाए तो गेमैक्स दैट लाइफ स्टीलर इज अबाउट टू गेट रेडियंस एज वेल, तो उनका तो डैमेज और फॉर्म की एक्सेलरेशन ही नज़र आएगी। इस साइड पे स्वेन इज एबल टू कीप अप, लेकिन अब आइटम्स और दिस इज दैट अनकंफर्टेबल टाइम द स्वेन, राइट? 24-25 मिनट्स पे आपकी एक किस्म की पीक
मैं कहूँगा हिट हो जाती है ऑन दैट हीरो इन टर्म्स ऑफ द पावर स्पाइक, इन टर्म्स ऑफ द आइटम्स, और उसके बाद फिर स्वेन यूजुअली उस तरीके से स्केल नहीं कर पाता अगेंस्ट द अदर हीरोज। सो द लाइफ स्टीलर डेफिनेटली, एंड अभी वंस वंस उनके पास जो डिसेबलिंग आइटम्स जो बनाएंगे वो बनना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आई एम श्योर कि वो एक हेक्स की तरफ भी जाएंगे टीम गैमैक्स जो हैं, तो उसके बाद स्वेन का जो आउटपुट रहेगा उससे वो कैसे डील करेंगे वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर्टिकुलरली जब मैग्नस की आरपी के अगेंस्ट आप खेल रहे होते हैं। तो आरपी तो एक ऐसी एबिलिटी है, पर्टिकुलर स्क्यूअर तो एक ऐसी एबिलिटी है कि वो एक अच्छा मैग्नस खेल रहे हैं और डैमेज आउटपुट भी अगर आपके पास है तो आपके पास कोई ऐसा हीरो नहीं है जो कि सर्वाइव कर पाएगा। तो डेफिनेटली पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बट मीनवाइल हम बॉटम लाइन पे देखेंगे वो एक सेंटर वार्नर की तरफ जाएंगे, फोर स्टार अवे हो जाता है, लेकिन कॉप मीनवाइल बैक लाइंस पे कंप्लीट बर्स्ट होते हुए नजर आएंगे। सेंटर वार्नर ने अपनी अल्टीमेट एक्टिवेट कर ली है ब्लड और वो गिरने ब्लिंक आउट एक्चुअली वुड हैव स्टॉप्ड द वो चले ब्लिंक राइट जाएंगे। तला। इट वुड हैव स्टॉप द ब्लिंक, लेकिन आई थिंक ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो गया, राइट। क्वीन ऑफ पेन को तो निकाल दिया, टियर 1 टावर पे भी वो आराम से पुश कर सकते हैं। श्योर आरपी यूज हो, लेकिन ये काफ़ी अच्छी अली मेरे ख्याल से टैक्टिक है। श्योर आरपी हम सब देखना चाहते हैं वो 4 मैन आरपी या 5 मैन आरपी, लेकिन अगर आप एक आरपी यूज़ करके एक कोर हीरो को क्वीन ऑफ पेन को डिसेबल कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक ये रुशान का हम देखेंगे, एंड आई थिंक वी आर गोइंग टू सी कि वो जो रोर इफेक्ट होता है तो डेफिनेटली टीम वोफर्स को नज़र आ जाएगा कि वो रोशान अटेम्प्ट कर रहे हैं। बिल्कुल तला, लेकिन आई डिड नॉट थिंक दे वुड बी इंटरेस्टेड इन कंटेस्टिंग दिस, लेकिन 3 मैन स्मोक हो चुका है, पुश करते हुए आ रहे हैं। आई थिंक एक डबल डैमेज ड्रोन भी मिल चुकी है पॉप को, सो दिस वुड बी परफेक्ट। रोश फॉल डाउन कर जाता है, लेकिन क्या वे फॉलो अप करना चाहेंगे? लाइफ स्टीलर, टीपीज एंड एवरीवन गेट्स आउट। द स्मार्ट मूव गेमैक्स की तरफ से, नॉट रिस्किंग इट एट ऑल, go in, get the Roshan, and then leave there from very clearly. फिर उसके बाद पीछे आई थिंक एजिस ऑन द लाइफ स्टीलर थोड़ा सा आई वुड से अननेसेसरी परहैप्स एजिस मैग्नस या वाइपर को दे देते, बिकॉज लाइफ स्टीलर का मरना अभी काफ़ी ज़्यादा नामुमकिन है जहाँ तक मुझे अंदाज़ा, अनलेस लाइफ स्टीलर समहाउ वो चेन डिसेबल के अंदर फंस जाए, जो कि अगेन बहुत मुश्किल है बिकॉज उनके पास एक शैडो डीमन और एक टस्कर मौजूद है। लेकिन मीनवाइल वो अब शैडो डीमन की तरफ जाएंगे। हम डिस्पर्शन अभी नजर आ रही है, सेंटर ऑफ वार्ड की अल्टीमेट भी एक्टिवेट हो रही है, तो सारी चीज़ अपनी अल्टीमेट एक्टिवेट करते हुए नजर आ रही हैं। शैडो डीमन इंस्टेंटली फॉल करेंगे और टस्कर भी अब मर जाएंगे। मीनवाइल क्वीन ऑफ पेन अपनी अल्टीमेट एक्टिवेट कर दी है, वाइपर बहुत लो फॉल कर रहे हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे यहाँ पर। एंड 3 हीरोज़ जाते हुए हमें नजर आएंगे। बहुत ही अच्छी टीम फाइट टीम वोफर्स ने ली, डिस्पाइट द फैक्ट कि एजिस गैमैक्स के पास ही परहैप्स वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एजिस के अगेंस्ट टीम वोफर्स जो हैं वो नहीं लड़ेंगे, और काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड पोजीशन में टीम गैमैक्स पकड़े गए। बिल्कुल तला, नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू बी देयर उस तरीके से, और साथ ही साथ चेन प्रोटेक्टर को भी टेक डाउन कर लेते हैं मैग्नस। सो यहाँ पर वापस रिस्पॉन्ड करते हुए स्वैन को टीपी आउट करना पड़ेगा, बिकॉज लाइफ स्टीलर स्टार्टिंग टू पैक अ पंच नाउ। रेडियंस उनके पास मौजूद है और उसके साथ साथ याशा भी मौजूद है, सो a lot of damage and a lot of good rate that it deals that damage on. TPS isn't that bad. साथ साथ जब बफ भी मिलेगा उन्हें मांटा बनाया हुआ है। बिल्कुल, मैं गोइंग फॉर दैट कैरी बिल्ड एज वेल कुछ हद तक, और साथ ही साथ यहाँ पे सेंटर वॉर रनर इनको मिल जाते हैं। अगर उनको कैच कर सकते हैं अल्टीमेट के साथ तो कुड हैव लेड टू हिट दैट। लेकिन दूसरी साइड पे टीम वोफर्स रिस्पॉन्ड करते हुए मिडिल के ऊपर सेंटर, दे गॉट द मैग्नस। ओह लुक एट दैट सेव, टस्क का स्नोबॉल अल्टीमेट से बचाते हुए। एंड इफ यू आर होल्डिंग राइट नाउ इट्स वेरी हार्ड टू हिट एन अल्टीमेट, लेकिन द रेस्ट ऑफ द कैवलरी जॉइंस इन। स्वैन अपनी अल्टीमेट के साथ आते हैं और एक हीरो को तो फ़ौरन ख़त्म कर देते हैं, दूसरे को काफ़ी लो एचपी वहाँ पे भागने की कोशिश की जा रही है। लेकिन स्वैन बीके के बावजूद उनके ऊपर लाइफ स्टीलर और अली आई डोंट थिंक आपने देखा तभी लाइफ स्टीलर ने कैसा बढ़िया सेव शैडो डीमन पे, और इंस्टेंटली वो निकल गए शैडो डीमन से। क्वीन ऑफ पेन की अल्टीमेट शैडो डीमन पर लग गई थी, लेकिन जैसे कि हमने देखा अभी स्वैन के ऊपर जो डैमेज लाइफ स्टीलर निकाल रहे थे
वो बहुत ही ज़्यादा है। एंड आई डोंट थिंक स्वेन अल्टीमेट भी खोली हुई है, उन्होंने बीकेबी भी खोला हुआ है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा लाइफ स्टीलर को। वो सिर्फ अपनी हिट्स करा रहे हैं, उनके पास एजेस भी मौजूद है, उनके पास रेज भी मौजूद है, तो स्वेन बस सिंपली कुछ कर नहीं सकते। पर्टिकुलरली जो लाइफ वाइपर की स्टैक्स जो स्वेन के ऊपर मौजूद है, तो डेफिनेटली जैसे कि हम देख रहे हैं टीम वोफर्स फाइट तो ले सकते हैं, डैमेज भी है उनके पास फाइट्स लेने का, लेकिन उनके पास एक प्योर बर्स्ट पोटेंशियल अभी इस वक्त मौजूद है। उस बर्स्ट पोटेंशियल के आगे सस्टेन टीम फाइट, पर्टिकुलरली जब गैमैक्स के कोर्स मौजूद होते हैं, उसकी कैपेबिलिटी नहीं नज़र आ रही और दूर दूर तक नहीं दिख रही कि वो आगे आ सकती भी है या नहीं। बिल्कुल तला ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि उन्हें कुछ ना कुछ सस्टेनेबिलिटी की ज़रूरत है, लेकिन कॉप वहाँ से ब्लैंक आउट करते हुए, बिकॉज द शैडो डीमन वाज नॉट टू फार अवे। गेमैक्स द इम्पॉर्टेंट टू इम्पॉर्टेंट किल्स, और अब उसके साथ साथ एजेस भी मौजूद है जिसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं अब रहना चाहिए। सो आई गेस दिस वुड बी द गुड टाइम टू अटैक दैट टियर 2 टावर मिड के ऊपर। साथ ही साथ 10 के पास भी ब्लिंक डैगर मौजूद है। तला स्नोबॉल सेव हमें नज़र आ रहा है, जिस तरीके से जो हुडविंक है उनके अल्टीमेट से बचने के लिए, सेंटर की इनिशिएशन इवन स्वेन को काइट आउट करने के लिए। तो ये यहाँ पे बेहतरीन, लेकिन अभी लाइफ स्टील इन्वेस्ट कर लेते हैं। टस्क स्नोबॉल रेडी है, as soon as he catches someone he's going to jump on them, और साथ ही साथ उन्हें लाइफ, oh my god, hoodwink, oh they're going for a different target। वहाँ पे मौजूद सेंटर और काफ़ी लो एचपी के ऊपर वहाँ से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन द लाइफ स्टीलर हैज़ caught up, he's going to put that hero down, और साथ ही साथ होडविंग वहाँ पे जंगलों में गायब हो जाते हैं, आंखों से ओझल हो जाते हैं। अली लाइफ स्टीलर के अगेंस्ट किसी को लाइफ स्टीलर का आई डोंट थिंक देयर इज एनी हीरो टीम वोफर्स के पास जो लाइफ स्टीलर को फेस कर सकते हैं। एम्पावर भी उनको मिला हुआ है, उनको 300 डैमेज मौजूद है, मांटा स्टाइल भी बना हुआ है, तो लाइफ स्टीलर को तो अभी शैडो डीमन और टस्कर की ज़रूरत भी नहीं है सर्वाइव करने की। 1 मिनट ऑन द एजेस, डेफिनेटली इस टियर 2 टावर पर वो एजेस इस्तेमाल हो जाएगी। सो टीम वोफर्स अगर चाहें अब कोशिश कर सकते हैं लाइफ स्टीलर के अगेंस्ट फेस करने की, जो कि वो उनको अभी तक अवॉइड कर रहे थे, लेकिन फेस करेंगे भी तो वो कैसे फेस करेंगे? स्वेन ने अभी तक इतना ज़्यादा डैमेज बनाया हुआ नहीं है, डेडलेस उसकी अभी बन ही रही है। बिल्कुल तला, लेकिन डेडलेस के बावजूद आई डू नॉट सी दैट स्वेन किलिंग अ लाइफ स्टीलर, राइट? जितना टैंकी वो लाइफ स्टीलर अभी इस वक्त हुए में स्वेन कोई डेडलेस क्रिस्टलिस उनके पास कंप्लीट हो गया, जस्ट वेटिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डेडलेस, लेकिन इट्स लुकिंग अ लिटिल टफ, राइट? गेमैक्स का जो लाइनअप जिस तरीके से स्केल कर रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, आई डू नॉट सी दे डोंट हैव द आंसर्स फॉर इट राइट नाउ। और वही बात है कि आई even down the line, right, there might be some items if they're able to prolong the fights, take them a little smartly, तो शायद there's a chance, right, कुछ items के साथ वो scale करके deal कर पाएं। And I mean, लेकिन they'll have to play very टस्कर तो smartly। एक सेप्टर की तरफ जा रहे हैं, तो एक एसेंशियली डबल स्क्यूअर मैकेनिज्म हो जाएगा। एंड आई डोंट थिंक एनी हीरो जो वॉलरस किक हो जाता है अंदर वो सर्वाइव कर पाएंगे। आई मीन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है, पर्टिकुलरली अगेंस्ट अगर आप ट्रेन प्रोटेक्टर हैं या हुडविंग हैं और आप दरख्तों के अंदर छुपे हुए हैं और और वो वॉलरस किक किसी तरह आप हो जाते हैं, क्योंकि आपको आई शॉट्स तो विजन प्रोवाइड करते हैं, तो आप कॉन्स्टेंटली आई शॉट स्पैम कर सकते हैं। न सुना आपको कोई नज़र आए आप उसको वॉलरस किक आउटसाइड कर सकते हैं। तो ये सारे मैकेनिज्म, एंड पर्टिकुलरली स्वेन, राइट, वॉलरस किक जो होती है वो मैजिक इम्यूनिटी को पियर्स करता है, तो स्वेन अपनी बीकेबी भी खोल ले, अपनी अल्टीमेट भी खोल ले और किसी हीरो के ऊपर जा रहा है, यू कैन सिंपली आप उसे बस फाइट के आउटसाइड वॉलर्स किक कर सकते हो। एंड आई थिंक विजडम रून्स ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है इस लेवल पे, लेकिन तो क्या आई गेस गेमैक्स पिछले 7 मिनट में टॉप अपने ही जंगल में नहीं गए। I guess that's 14 that's minutes okay. I think it's two wisdom rules, so I think 21 So minutes एक and तो 28 भी minutes 27 मिनट सही से सही स्पॉन हुई, राइट? तो फिर उससे पहले एक 21 मिनट से आई गेस दे हैव नॉट बीन देयर फॉर अ व्हाइल, so that's a bit of an interesting thing. It's a little too late guys। लेकिन खैर शाह यहाँ पे फाइट लेने के लिए वापस प्रेजेंस हाँ, शो वो की फाइट जा रही लेने के है। लिए आए हैं, लेकिन आई डोंट थिंक वोफर्स जो हैं वो फाइट लेने में इंटरेस्टेड हैं। आई थिंक नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दोनों टीम्स के लिए रोशान ही होगा, उसको कंटेस्ट करना।
इट ऑल डिपेंड्स कि स्वेन का डेडलिस्ट कंप्लीट हो जाएगा व्हेन दे जब वो जाएंगे रोशान कंप्लीट करने के लिए. कॉप नॉट गोइंग सेप्टर के लिए, परहैप्स सेप्टर सही रहता थोड़ा सा इस गेम में, क्योंकि जैसे ही आप शैडो स्ट्राइक को पर्च करते हैं तो आपसे आपके अंदर से स्क्रीन ऑफ पेन तो निकलता है. मेरे को बट तो आई थिंक Cobb going for that Shiva's card, right? Like, uh, I guess he's scared of that Lifestealer plus Magnus and the negative armor from the Tusk. हमने एक दो दफ़ा तो देखा है the Cobb does blow up very quickly. अभी जो उनकी HP और जिस तरीके से वो मौजूद हैं, तो थोड़ा सा डिफेंसिव आइटम वहाँ पे इंतखाब किया जा रहा है. लेकिन तला आई एम रियली वेरी फॉर दैट स्वेन ऑनेस्टली. आई गेस जिस तरीके से गेम स्केल होती जा रही है और आगे बढ़ती जा रही है, बट आई सी इसके गेम एक्स के प्लेयर्स दे गेट मोर काइटेबल आइटम्स ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ टस्क एंड यू नो शैडो डीमन काफ़ी ज़्यादा सेफ है, काइटेबिलिटी है. सो द स्वेन नीड्स टू जंप ऑन अ हीरो एंड ब्लो इट अप, राइट? सो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी मुझे नज़र आ रही है on the side of effects. But they do have mechanisms to be able to lock heroes down, right? ये तीनों heroes, तीनों के पास root या stun की form में कुछ ना कुछ मौजूद है. So if they can get the Sven some clean hits on some of those cores, अगर वो disabled हो तो ideal case में he's able to blow them up, and उसके बाद थोड़ी सी fight बेहतर हो जाती है वो first के लिए. डेफिनेटली. एंड आई थिंक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें विन प्रोबेबिलिटी वोफर्स की तरफ नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रिडिक्शन है, क्योंकि आइटम्स अगर हम देखें, हम मैप कंट्रोल देखें, तो अभी तक टीम वोफर्स तो कम्प्लीटली अवॉइड ही कर रहे हैं टीम गैमैक्स को. जैसी टीम गैमैक्स टीपी करती है वो वहाँ से निकल जाते हैं. ऑब्जेक्टिव्स वाइज तो दोनों टीम आई थिंक कम्प्लीटली इवन ही हैं. दोनों के पास दोनों टियर 1 टियर 2 टावर मौजूद हैं. और आई थिंक इस गेम की काफ़ी हद तक डिसाइडिंग चीज़ जो होगी वो आई थिंक नेक्स्ट रोशान ही होगा, जो कि चंद मिनटों में स्पॉन करने वाला है. मीनवाइल कोई डिसेबलिंग आइटम्स हमें नज़र नहीं आ रहे. दोनों टीम जैसे आपने मेंशन किया क्वीन ऑफ पेन शिवास की तरफ जा रहे हैं. डेफिनेटली शिवास एक बहुत अच्छा आइटम होता है, पर्टिकुलरली अगेंस्ट फिजिकल जो डैमेज हीरोज जो होते हैं, जैसे लाइफ स्टीलर हो गया या मैग्नस हो गया. लेकिन प्रायोरिटाइजेशन आई डोंट थिंक कि शिवास गार्ड अभी इस स्टेज पर नेसेसरी है. क्वीन ऑफ पेन के जैसे हम देखते हैं, क्वीन ऑफ पेन के लिए सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है. जितनी भी हमने फाइट्स देखी हैं, 6 डेथ्स, एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा टीम में डेथ्स उस क्वीन ऑफ पेन की ही हैं. तो आई थिंक यूज़ ट्रांजिशनिंग इनटू वो जो जैसे मूवमेंट वाला यूज़ होता है वो अगर बना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. उससे स्क्यूअर भी अगर हो जाएं तो वो फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं, या फिर इवन आई वुड से एऑन डिस्क बना लें कि वो आरपी से सर्वाइव कर लें. एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग डिस्पेल मिल जाए, स्टन से डिस्पेल मिल जाए उनको. लेकिन वो ये सब आइटम्स नहीं बना रहे, शिवास की तरफ जा रहे हैं. मीनवाइल सेंटोर वॉररनर भी हमें स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं. एंड उनकी तरफ तो सिर्फ एक स्वेन है जो कि फाइटिंग के केपेबल हैं. टस्कार का आई थिंक सेप्टर काफ़ी अनकरीब होगा, और सेप्टर के बाद गेम कैसे तब्दील होती है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वॉलरस की एक बहुत ही ज़्यादा पोटेंट एबिलिटी है जो कि एक हीरो कोई भी हीरो बना सकता है, जो आप इंस्टेंटली स्नोबॉल भी कर सकते हो. तो आपके पास एक इंस्टेंट एस्केप मैकेनिज्म भी मौजूद होता है. एंड मीनवाइल वो सेंटोर वॉररनर की तरफ जाएंगे, सेंटोर वॉररनर एक्टिवेट कर देंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, डिस्ट्रप्शन भी उनके ऊपर खुल जाएगी और सेंटोर वॉररनर एक फ्री किल गैमैक्स के लिए मिल जाएगी. एंड देन विद इस डेथ के बाद कोई इनिशिएशन एबिलिटी नहीं है टीम ऑफर्स के बाद, तो उनका टियर 2 टावर भी बहुत ही आसानी से फॉल कर जाएगा. क्योंकि तला टियर 2 भी यहाँ पे गिर जाना चाहिए, और थोड़ा सा लिविंग आर्मर के थ्रू रेजिस्टेंस देते हुए, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं. एंड दैट लाइफ स्टीलर तला इट्स अ वेरी स्केरी हीरो राइट नाउ. असल्ट क्यूरियस भी आई गेस 2-3 मिनट का और फार्म है फॉर द लाइफ स्टीलर, जिस तरीके से अभी सब कुछ जा रहा है. एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट मैक के बफ के साथ द लाइफ स्टीलर इज हिटिंग लाइक अ ट्रक राइट नाउ. और आई गेस कार्डी भी उन्होंने आगे के लिए सेलेक्ट की हुई है. सो नॉट टेकिंग एनी चांसेस, जस्ट गोइंग फॉर दैट ओवरऑल वेरी टैंकी वेरी हार्ड हिटिंग हीरो. लेकिन दूसरी साइड पे टीम ऑफर्स बॉटम जंगल पे मौजूद है, नॉट टेकिंग एनी रिस्क. स्वेन के पास अपने डेडलिस्ट भी कंप्लीट हो गया, सो दिस कुड बी अ टाइमिंग फॉर देम. अगर यहाँ पे टीम गेम ऐसे कोई दिस कुड बी मैसिव. और उन्हें कोई सेंट्री लगाई भी ही नहीं है.
ओह जंपिंग ऑन द टेक्स्ट गेट्स टेकन आउट देयर विजन वहाँ पे बहुत अच्छा था वुल्फैक्स के पास वार्ड ऑन द टॉप हिल is able to catch that out लेकिन the mag has an opportunity to jump on a lot of heroes jump करते हैं 3 heroes को RP के अंदर catch out कर लेते हैं लेकिन fall of damage it's a little too late वाइपर बहुत लो HP के ऊपर मौजूद और साथ ही साथ लेकिन अब उन्हें भागना पड़ेगा because लाइफ स्टीलर आ गए and then getting on that card लाइफ स्टीलर अपनी रेज की एबिलिटी का इस्तेमाल तो यहाँ पे हो चुका है मैंटा स्टाइल भी आ जाता है लेकिन साथ ही साथ दूसरी साइड पे मैग्नस काफ़ी लो एचपी पे भागने की कोशिश कर रहे थे द कॉप अल्टीमेट का इस्तेमाल लाइफ स्टीलर इज गॉटन दैट रेज अगेन ब्लॉक करने की उन्हें कोशिश की जा रही थी लेकिन अब सेंटोर भी काफ़ी ज़्यादा लाइफ स्टील दे देते हैं लाइफ स्टीलर को एंड देन कॉप बहुत लो एचपी पे उन्हें वहाँ से निकल के भागना पड़ेगा टीम ओह टस्कर गेमैक्स एक्चुअली चेस कर रहे हैं उनको पता नहीं है मेरे ख्याल से सेंटर ऑफ वार्नर को लाइफ स्टीलर भी एक मौजूद ओह एक्चुअली नहीं बहुत ही आला फोर्स स्टाफ करते हुए टस्कर के पास सेप्टर ब्लिंक डैगर तो मौजूद है हुडविंग भी चेस करने की कोशिश कर रहे हैं स्नोबॉल भी एक्टिव हो जाती है लेकिन आई डोंट थिंक वो किसी के ऊपर जाएगी एंड आई थिंक एटलीस्ट एट द वेरी लीस्ट एक डेड हुडविंग तो होगा लेकिन बहुत ही अच्छी काइटिंग नजर आ रही है टीम वोफर्स के तरफ से एंड टस्कर एक डाईबैक नजर आएगा लाइफ स्टीलर और मेरे ख्याल से द ओनली वन अलाइव उस पूरी टीम फाइट से लाइफ स्टीलर आई थिंक बहुत लेट आए थे लाइफ स्टीलर उस टीम फाइट में टीम वोफर्स ने अपना सारा कुछ इस्तेमाल कर लिया था एंड काफ़ी सक्सेसफुल वो रहे थे बिल्कुल तला एक बेहतरीन फाइट उनके लिए और इस वक्त काफ़ी थोड़ी सी लो एचपी के ऊपर ज़रूर मौजूद थे सेंटोर लेकिन फाइट को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने खेला गेमैक्स लाइफ स्टीलर को मारना तो काफ़ी मुश्किल है लेकिन यू नो वी स्टार्टिंग टू सी अ चिंक इन हिज आर्मर एज वेल तला दैट इनिशियल रेज के बाद जब एचपी गिर जाती है तो उधर बीच में सर्वाइव करना लाइफ स्टीलर के लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर साबित हो रहा है और साथ ही साथ वुफर्स के पास जब कंट्रोल यू नो दैट फर्स्ट हेक्स कम्स आउट और वो सब कुछ करके आगे तो फिर लाइफ स्टीलर के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है कुछ मौक़ों पे सर्वाइव करना यहाँ पे टीम वुफर्स 3K की गोल्ड लीड भी तला अब उनके पास आ गई है डेफिनेटली और रोशान के भी अटेम्प्ट कर रहे हैं वो टस्कर अभी ज़िंदा नहीं हुए हैं और ये रोशान बहुत जल्दी गिरेगा गॉड स्ट्रेंथ की वजह से और आई डोंट थिंक वो कुछ कर पाएंगे एक्चुअली उनके पास आरपी तो मौजूद है लेकिन वो आरपी तक पहुंच नहीं पाएंगे डेफिनेटली टीएन प्रोटेक्टर उनको रोक देगा यही बेनिफिट होता है टीएन प्रोटेक्टर का और लाइफ स्टीलर रेज करते हुए आगे तो जा रहे हैं लेकिन एजेस उन्होंने हासिल कर लिया स्वेन के पास एजेस है क्या वो ये फाइट लेना चाहेंगे पर वो जा रहे हैं स्वेन काफ़ी स्टक हुआ है क्वीन ऑफ पेन की अल्टीमेट भी खुल जाती है शैडो डीमन इंस्टेंट बायबैक करते हैं बट मीनवाइल मैग्नस बहुत ही फंसे हुए हैं आरपी भी इस्तेमाल हो जाती है क्वीन ऑफ पेन पे आरपी यूज हो रही है लेकिन क्वीन ऑफ पेन के पास बहुत ज़्यादा एचपी वो ब्लिंक आउट कर लेंगे एंड ओनली लाइफ स्टीलर इज अलाइव सेंटर ऑफ वार्नर की अल्टीमेट भी यूज हो जाती है सेंटर ऑफ वार्नर तो करना चाहिए लेकिन नहीं वो अभी तक जिंदा है लाइफ स्टीलर उनको फिनिश ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं मांटा साहब भी यूज कर लिया है लेकिन वो नहीं कर पाएंगे अभी सेंटर ऑफ वार्नर अभी तक जिंदा है उनको ब्लिंक डैगर भी अवेलेबल आ गया है तो सेंटर ऑफ वार्नर 50 HP से जिंदा रह जाएंगे और बहुत ही डिजास्टर्स टीम फाइट हमें नजर आई थी गैमैक्स की तरफ से स्वेन के पास एजेस भी मौजूद है बिल्कुल एजेस मेक्स एवरीथिंग अ लॉट ट्रिकियर फॉर गेमैक्स जहाँ पे वो काफ़ी करीब से compete कर रहे थे लेकिन अब वी सी द स्वेन he hits like a truck right now और साथ ही साथ जैसे डैगर अगर अपग्रेड करना चाहें लेकिन he is choosing to go for that assault curious as well that armor aura that attack speed all things that a Sven would enjoy a lot of benefit from the life stealer I think the basher आता है life stealer के पास अब when he'll get that basher so that will make things a little more difficult for the dire side आरपी हमें तला अच्छी नज़र आ रही है ज़रूर दिस मैग्नस यू नो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त के जस्ट गोइंग फॉर दैट वन हीरो आरपी चेंजेस एवरीथिंग लेकिन इस लास्ट फाइट के अंदर बॉटम पे जहाँ पे उनके पास थोड़ी देर पहले हुई थी वो फाइट लेकिन विजडम इनवेस्ट ड्रोन था सो ऑन दैट पॉइंट वी नीड द मैग्नस टू डू समथिंग मैसिव देयर राइट डेफिनेटली एंड आई थिंक उस फाइट पर फिर भी कमिट करना थोड़ा सा ओवर रीचिंग था क्योंकि यू नो उनके पास मोबिलिटी हीरो क्वीन ऑफ पेन को लॉकडाउन करना बहुत ही इंसेनली मुश्किल है क्योंकि वो उनके पास इतनी एचपी तो है इस पॉइंट पर शिवास गार्ड भी बना हुआ है कि वो आसानी से ब्लिंक आउट कर जाएंगे लाइफ स्टीलर का डैमेज आउटपुट इस फेज ऑफ द गेम में इतना ज़्यादा नहीं रहता उनके वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट तो ज़रूर चाहिए होती है किसी हीरो को मारने में एंड आई थिंक
एट दिस पॉइंट स्वेन जो उन्होंने इतनी ज़्यादा डायर साइड ने टीम वूफर्स ने गेम इतनी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया 36 मिनट तक, वो टीम गैमैक्स अभी तक हाई ग्राउंड नहीं जा पाए हैं, तो ये थोड़ा सा डेंजरस हो चुका है। क्वीन ऑफ पेन का ऑक्टरीन कोर भी मौजूद है, तो वो अपनी सिर्फ एबिलिटी स्पैम आउट करते ही रहेंगे। तो थोड़ी सी गेम कॉम्प्लिकेट हो चुकी है। लाइफ सीडर थोड़ा सा फॉल ऑफ करने का शुरू करेंगे, और कोई डिसेबल मैकेनिज्म, जैसे मैं बात करता हेक्स, जो कि गैमैक्स को बहुत सख्त ज़रूरत है एक हेक्स की, वो नज़र हमें नहीं आ रहा, और वॉलरस के कभी अभी तक मुजाहरा नहीं हुआ है। मेरे को तो लगा दैट वॉलेस किक जब अगर हाई ग्राउंड जाने की वो फर्स्ट कोशिश करेगी इवेंचुअली, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकती है। तो हीरो अगर वापस पुश होता है तो वही बात है, इतना लॉकडाउन मौजूद है गेमएक्स की साइड पे भी, और डैमेज आउटपुट काफ़ी हेल्दी है। ये तकरीबन किसी भी हीरो को वहाँ पे कर सकते हैं, स्पेशली अगर सपोर्ट्स को अंदर फेंका जाता है। सो हाई ग्राउंड जाने की आई गेस कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है यहाँ पे। वो फर्स्ट लुकिंग कि अगर उन्हें कोई पैक ऑफ मिल जाता है तो उसको लेवरेज करके कुछ किया जा सके, लेकिन लुक एट दैट टी वॉर्ड, और साथ ही साथ शैडो डीमन, ही वाज गेटिंग अ लिटिल क्यूरियस देयर, राइट? सो ग्रेट इंस्टिंक्ट कमिंग आउट फ्रॉम बोथ साइड्स देयर। डेफिनेटली आई थिंक हाई ग्राउंड जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा डायर के लिए, पर्टिकुलरली बिकॉज आपके पास एक स्क्यूअर का मैकेनिज्म एट ऑल टाइम्स मौजूद होता है, टस्कर का वॉलर्स किक मैकेनिज्म मौजूद होता है, एंड जो कमबैक मैकेनिक्स डोटा में इंट्रोड्यूस हुए हैं इतने पोटेंट, तो एक टीम ये 9,000 गोल्ड लीड, आई थिंक किसी ने फिगर्स पोस्ट किए थे कि एक टीम के पास अगर 7,000 8,000 गोल्ड लीड है और वो हाई ग्राउंड फाइट लूज़ करते हैं, तो वो सारी की सारी गोल्ड लीड नलिफाई हो जाती है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म डोटा में अभी इंट्रोड्यूस हुआ हुआ है इस पैच में, तो वो उनको देखना पड़ेगा कि वो कैसे डील करते हैं इसके साथ। बट चलो, सो जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट मैकेनिज्म, राइट? सो आपके पास जितनी भी अगर गोल्ड लीफ है तो दैट्स ऑल गोइंग टू गो अवे, और ऑन एवरेज डू यू थिंक आई मीन 8,000 वो 9,000 कैलकुलेशन, हाँ, ऑन एवरेज आई थिंक वो you have to wait, Talha. चेंज हो There's a जाता lot of action happening there, and where did that damage come from? Magnus and Shadow Demon, they get blown up, or Tusk B, he gets taken out, or साथ ही साथ this Lifestealer, we were talking about how tanky he is, but apparently not enough when 4 heroes are on him at the same time. Or the Swiper, he doesn't look like he might survive here. बिल्कुल यही नहीं होता, कॉप उनके ऊपर जंप इन करती है, डैमेज किया जा रहा है, स्टन किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, और टीम वूफर इसकी तरफ से कंप्लीट टीम वाइप आता है। तलहा, व्हाट वाज दैट डैमेज? डेफिनेटली, एंड आई थिंक यही जो इनिशिएशन बर्स्ट एबिलिटी है गैमैक्स के ऊपर डेफिनेटली सेव मैकेनिज्म से मौजूद है, लेकिन अगर वो पोजीशनिंग अपनी ऐसी रखेंगे तो डेफिनेटली वो नहीं जीत पाएंगे। मैग्नस को तो एक आरपी पोजीशन में रहना चाहिए, लेकिन उनको तो कोई मौका मिला ही नहीं, और लाइफ स्टीलर को कोई डैमेज आउटपुट रहा ही नहीं। लाइफ स्टीलर को काइट करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है इस स्टेज में, एंड कॉप को शट डाउन करना 40 मिनट्स पे जहाँ पर कॉप ने फार्म किया हुआ एक इंतहाई मुश्किल चीज़ है। नो बायबैक्स अवेलेबल गैमैक्स के लिए, एंड कॉप कैन ईजिली जस्ट ब्लिंक इन, और आप डैमेज आउटपुट उसका देखें 3000 HP टस्कार की, और कॉप सोलो किल बहुत ही आराम से उसको कर देंगे। विंड वेकर की तरफ वो जा रहे हैं, एडिशनल सर्वाइवल मैकेनिज्म वो बना रहे हैं, और उनको रोकने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। देखो चला, यहाँ पे अब मैं कहूँगा कि स्वैन हैज़ हिट क्रिटिकल मास एक तरीके से, जितना ज़्यादा डैमेज वो अब डील कर रहे हैं, और यहाँ पे टियर 2 टावर भी टेक आउट हो जाएगा, टॉप पे टियर 3 लेने में कामयाब, और जिस तरीके से हीरोज़ को कुछ टाइम है, टस्कर को एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम है, तो एक और बैरिक शायद टॉप पे ना फिनिश कर पाए, लेकिन टीम वूफर्स काफ़ी ज़्यादा लीड उनके पास मौजूद है। देयर इज़ नो रीज़न टू रिस्क एनीथिंग हियर, तो बहुत ही एक थोड़ा सा सदानी का मुजाहरा करते हुए वहाँ से पीछे हो जाते हैं। लेकिन गेम तलहा गेमैक्स के लिए अब काफ़ी हद तक बदल चुकी है, और मैं कहूँगा कि मुश्किल हो चुकी है यहाँ पे, जिस तरीके से they've given away the advantage. So एक सेकेंड, ये was that a new mechanic or is that a new thing in the patch? Bottom के ऊपर what was that flag that was taken out?
वो आई थिंक वो अली रोशान बैनर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि वो क्रीप्स को, जैसे अगर आपने लीग ऑफ लेजेंड्स कभी खेला हो तो उसमें अगर आप ड्रैगन को मारते हो तो उसमें वो लेन क्रीप्स जो होते हैं वो बफ हो जाते हैं, तो उसी तरह रोशान बैनर के जो आप जहाँ प्लेस करते हो तो वो वहाँ पर किसी भी लेन में आप उन क्रीप्स को बफ कर सकते हो और वो बैनर डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग मैकेनिक था यहाँ पे, लेकिन ड्यूरिंग दैट द ट्रिएंट कॉट कॉट इन द टॉप जंगल, लेकिन बॉटम पे सेंटर के ऊपर गो किया जा रहा है, लेकिन स्वेन अब मौजूद है और सेक्स का इस्तेमाल आता है, एंड दैट इज दैट हेक्स रिवील आल्सो कमिंग आउट। बाकी हीरोज मौजूद हैं, डैमेज के साथ फॉलो अप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी टीम वूफर्स वापस री-एंगेज करते हुए, दैट कॉप डज सो मच डैमेज, लेकिन साथ ही साथ स्वन को काइट किया जा रहा है यहाँ पे, ही इज डूइंग हिज डैमेज ब्रेक यहाँ पे अप्लाइड, लेकिन साथ ही साथ ओह दैट लाइफ स्टीलर गॉट ब्लोन अप राइट देयर, साथ ही साथ हैक्स का इस्तेमाल आ जाता है टस्ट सेव करने के लिए, वापस आ जाते हैं स्वन डूइंग सो मच डैमेज राइट नाउ विद हिज राइट क्लिक्स, एंड everyone gets taken out on Gamax. It's a complete team wipe, Tala, and I guess it's GG as well now. हाँ डेफिनेटली अली, आई थिंक इट शुड बी जी जी एटलीस्ट। आई मीन बाईबैक्स तो मौजूद हैं, लेकिन बाईबैक्स के साथ अब क्या ही करोगे। इट्स सरप्राइजिंग, आई मीन हैरानगी की Has the बात dust ये है disconnected as कि well? हाँ टस्ट डिसकनेक्ट हो चुका है, नीड्स रिकनेक्ट बट नो पॉज। शायद उसके पास बाईबैक तो नहीं है, तो वो रिकनेक्ट करके आई मीन 50 सेकेंड्स में तो वो आउट ही हैं। मेगा क्रीप्स तो डायर साइड कर लेंगे, लेकिन अली हैरानी की बात ये थी कि वो गैमैक्स वेट नहीं कर रहे थे कि टीम वुफर्स उनके अगेंस्ट हाई ग्राउंड आएंगे, बिकॉज हाई ग्राउंड डिफेंड करना टीम वुफर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। आप टीम वुफर्स के दो हीरोज़ को नलिफाई, मतलब एक तरह से उनके विजन गेम को नलिफाई कर रहे होते हो, बिकॉज ट्रेन प्रोटेक्टर और होडविंग हाई ग्राउंड के अगेंस्ट तो आपको इतना ज़्यादा विजन नहीं दे सकते। आप शैडो डीमन के पॉइजन से और टस्कर के शार्ट से आप अपनी ट्रीज को स्काउट आउट भी कर सकते हो, स्क्यूअर मैकेनिज्म में आप स्क्यूअर इन भी कर सकते हो, वॉलर्स किक भी कर सकते हो और तैयार रह सकते हो उस ऑन गोइंग पुश का। लेकिन ऐसी अधूरी टीम फाइट्स लेना जिसपे आपके पास पोजीशन भी अच्छी नहीं है, आपके पास आपके ऊपर 3 मैन होफ स्टॉम्प टीम ऑफर्स पुल ऑफ कर सकते हैं, इस सूरत हाल में हाई ग्राउंड इस सूरत हाल में गेम में कम बैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही रोशान बैनर एक और दफ़ा मिलेगा टीम वुफर्स को, जो कि आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा नेसेसरी है। मेगा क्रीप्स तो हो चुके हैं उनके, बिल्कुल मेगा हो गए, और लेकिन वही बात है जस्ट प्लेइंग डोटा वेरी क्लिनिकली, वेरी मेथोडिकली, मेकिंग श्योर कि हर किस्म की एडवांटेज उनके पास मौजूद है। और वुफर्स जस्ट 33,000 गोल्ड लीड हो गई है। वी आर सीइंग कि गेमैक्स के लिए अब काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है टू डील विद दिस लाइनअप एज वेल। वही बात स्वेन के पास तकरीबन 6 स्लॉटेड हैं इस वक्त टोटली, विद दैट एक और सेबर वो भी रिप्लेस आउट हो जाएगा कुछ देर तक। लेकिन द वे द गेम इज़ गोइंग, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। गेमैक्स ने एक दफ़ा भी अपनी जो उनका हाई ग्राउंड का स्ट्रॉन्ग वो था, हम उन्हें डिफेंस पे नहीं न देख सके, चूजिंग टू टेक दोस फाइट्स आउटसाइड ऑफ द बेस। तो वो एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कुछ डिसीजन मेकिंग उनकी तरफ से। एंड वी आर सीन दैट वाइपर की अटैक स्पीड इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है, सो व्हेन द बीकेबी वेयर्स ऑफ फ्रॉम द स्वेन तो काफ़ी ज़्यादा काइट करने का पोटेंशियल ज़रूर उनके पास आ जाता है। लेकिन अभी लाइफ स्टीलर स्वेन के पास नहीं, स्वेन के सामने नहीं खड़े हो पा रहे, एंड दैट इज़ अ ह्यूज कंसर्न। और वही बात है गेमैक्स की हीरोज़ की तरफ से हमें वो लेकिन इस वक्त मैग्नस कैच आउट हो जाते हैं। दैट हैक्स इज़ सो हार्ड टू डील विद राइट नाउ, बल्कि मैं तो कहूँगा कि कुछ उनके पास नहीं मौजूद उस हैक्स से डील करने के लिए अभी। हाँ आई मीन आई डोंट, उनके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लैकिंग हैं, नहीं नज़र आ रहा राइट। लोटस ऑर्ब भी नहीं है उनके पास अपना हेक्स नहीं है, और आई मीन 1-2 सेकंड का डिसेबल इज़ मोर देन इनफ टीम वुफर्स को निकालने। टीम वुफर्स को टाइम 1-2 सेकंड का ही चाहिए हीरो को निकालने में। इवन स्वेन के बगैर क्वीन ऑफ पेन भी 6 डॉटेड हो गए हैं। इनफैक्ट क्वीन ऑफ पेन अपीयर्स टू बी मोर फार्म्ड देन द स्वेन, एंड अब वो वाइपर के ऊपर जाएंगे। वाइपर बहुत आराम से फॉल करेगा, स्नोबॉल विल्स बाय देन सम टाइम। वाइपर इज स्टिल अलाइव, लेकिन सेंटर ऑफ वॉर रनर की अल्टीमेट एक्टिवेट होती है, ओवरग्रोथ भी एक्टिवेट हो जाती है, और वो बहुत क्विकली पूरी टीम फॉल कर रही है। मैग्नस का बायबैक आ रहा है, आरपी लेकिन नजर नहीं आ रही है। 3 मैन आरपी आईएस वन बहुत ज्यादा लो फॉल कर रहे हैं, उनका सेंटाना एक्टिवेट नहीं हुआ। एक्टिवेट करने के बाद फौरन मर गए। सेंटर ऑफ वॉर रनर भी अभी सन हुए हुए हैं, स्क्यूअर भी
भी इनसाइड वो हो जाते हैं अभी, लेकिन डायर साइड की पूरी टीम अभी तक जिंदा है। डस्कार मर चुके हैं और मल्टीपल बायबैक्स हमें नज़र आते हैं, और अब डायर टीम वुफर्स डिस्पर्स हो जाएंगे, फॉल बैक करने में मजबूर हो जाएंगे वो, लेकिन आई थिंक वो वापस अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्रीप्स मौजूद हैं थ्रोन के करीब अभी इस वक्त। मेरे को तलर उस चीज़ का एडवांटेज कहते हुए वाइपर को काफ़ी एग्रेसिवली जाकर इससे क्रीप वेव के साथ डील करना पड़ा है मिड पे, लेकिन साथ ही साथ टीम वुफर्स सारी की सारी यहाँ पे मौजूद है। आई थिंक आई सॉ दिस प्रेशर ऑन दिस वन एज वेल। हैक्स का इस्तेमाल हो जाता है, एक दफ़ा फिर से मैग्नस को कैच आउट कर लिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ लाइफ स्टीलर मुकाबला देने की कोशिश करते हैं, लेकिन लग नहीं रहा यहाँ पे कुछ कर पाएंगे। वुफर्स इस वक्त बिल्कुल बिल्डिंग्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, टावर्स गिरा चुके हैं। द एंशिएंट इज गोइंग टू फॉल एज वेल, जिस तरीके से यहाँ पे डैमेज किया जा रहा है। द ग्लिफ डज कम आउट, लेकिन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था कि टीम गेमैक्स कर क्या पाएगी इस ग्लिफ के साथ इस्तेमाल करके रोकने के लिए। एंड द आंसर इज नथिंग राइट नाउ, बिकॉज जिस तरीके से यहाँ पे एग्रेशन आई, जिस तरीके से टीम वुफर्स ने फाइनली गेम को क्लोज आउट करने में कामयाब हुए, तो काफ़ी मेथोडिकल गेम टीम वुफर्स की तरफ से देखने को मिली। जस्ट हिटिंग देयर टाइमिंग्स गेम को एलोंगेट कर पाए अगेंस्ट टीम गेमैक्स। और मैं कहूँगा कि तला गेमैक्स उस तरीके से अपनी टाइमिंग्स नहीं हिट कर पाई। टाइमिंग तो हिट की, डोमिनेट भी किया गेम को थोड़ा सा अर्ली ऑन, लेकिन couldn't translate that into a victory at the end of the day. couldn't translate that into a victory। अब मुझे वाकई में लग रहा था कि टीम गैमैक्स जो हैं वो जीतने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, जिस तरह वो अर्ली गेम में खेल रहे थे। श्योर उनके पास कभी एक शॉर्ट एडवांटेज नहीं था, लेकिन मैप कंट्रोल उनके पास ज़्यादा था। एक वक्त पे वो कोई भी टावर पुश कर सकते थे, कोई भी लेन दे सकते थे। लाइफ स्टीलर इतना ज़्यादा पावरफुल था, और वो लाइफ स्टीलर तो प्योर थ्रू इन थ्रू तो एक मिड गेम हीरो ही है। वो लेट गेम हीरो स्वेन के अगेंस्ट कम्पीट नहीं कर सकता, तो उनने अपनी टाइमिंग विंडो मिस कर दी। उन्होंने कभी हाई ग्राउंड का अटेम्प्ट किया ही नहीं, डिस्पाइट कि उनके पास सारे हीरोज़ मौजूद थे, डिस्पाइट द फैक्ट उन्होंने कॉप को शट डाउन किया। भाई कॉप के पास आइटम्स नहीं बने हुए, सिर्फ एक विच ब्लेड और एक सांजन काया बना हुआ है। श्योर शिवाज भी आ गया है उसके पास, लेकिन कंपेयर टू फाइटिंग अ कॉप जिसके पास 7 आइटम बने हुए, शार्ड भी मौजूद है, सेप्टर भी मौजूद है, एग्नेस ब्लेसिंग भी मौजूद है, तो उसके अगेंस्ट कम्पीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैग्नस के हमें स्क्यूअर्स फॉल ऑफ करते हुए दिखाई दिए थे, वो अपने विजन के साथ नहीं खेल रहे थे, इनफैक्ट वो विजन के अगेंस्ट खेल रहे थे, बार बार बेस के आउटसाइड टीम फाइट ले रहे थे। एंड इवन जैसे कि हम बात करें कि मेगा क्रीप्स के अगेंस्ट जो उन्होंने टीम फाइट ली थी, तो उन्होंने एक तरह से टीम वुफर्स को फोर्स आउट कर दिया था उस पॉइंट पे कि वो बेस से उनको रिट्रीट करना पड़ा, जैसे कि हमने देखा था। श्योर उन्होंने बायबैक्स किए थे, लेकिन वही चीज़ अगर आप 20 मिनट पहले करते, वही चीज़ अगर आप जब आपके पास सिर्फ एक 7,000 या 8,000 गोल्ड लीग का डेफिसिट होता, तो अगर आप वही चीज़ कर रहे होते तो शायद आप उस पर बहुत ही ज़्यादा कामयाब होते, शायद आप उनको टीम फाइट आप जीत रहे होते उस सिनेरियो में। लेकिन वो चीज़ अगर आप हाई ग्राउंड डिफेंस अगर आप कर रहे हो अगेंस्ट मेगा क्रीप्स और अगेंस्ट अ टीम जिसके पास 40,000 नेटवर्थ की लीड है, तो वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो थोड़े से टीम की तरफ से थोड़े से डिसीजंस में थोड़ा सा फ़र्क था। मेरे को तलाक में ज़रूर कहूँगा कि टीम गेमैक्स की तरफ से कुछ क्वेश्चनेबल डिसीजन देखने को नज़र आए, लेकिन खैर इस गेम के बारे में वापस बात करेंगे और सीरीज़ के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। Let's do this, Abu Dhabi!
just a joke, just a joke. Shivers my spine so bad. Swimming in the river takes too much. I'm trying to let go of us, but the truth is what's real and no one else. My darling, in fire. My darling, rose in fire. You're a liar. You say, my darling, rose in fire. In fire. You say, my darling, rose in fire. You're a liar. Shivers my spine so cold, so swimming in the rivers, swimming in the rivers. I'm trying to let go of us, but the what's real and no one Hello, it's been a long, long time. Can't get you off my tired mind. Shadow, let the tape rewind and finally ease my anxious eyes. Oh no, I feel you creeping in, my body bleeding sin. I'm drowning. Heaven, can you save me now from these thoughts inside my head? God, you are the devil, running through my mind. I can't get on your level. I swear to God I tried. I am not under your spell. Turn around and get ahead. You cannot be anymore. Oh my God, you are the devil. Shadow, will you hold my hand when my demons come to take me? Gallows, try to kill the soul that I fought so hard to save. Hallowed by my love for you, always stop me going under. Follow every step I take, 'cause our walls are coming down. God, you are the devil, running through my mind. I can't get on your level. I swear to God I tried. I am not under your spell. Turn around and get ahead. You cannot be anymore. Oh my God, you are the devil. अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। तला एक काफ़ी एक्साइटिंग पहली गेम हमें देखने को मिली टीम गेमैक्स और वूफर्स के बीच में, जहाँ पे वूफर्स इवेंचुअली गेम में लेटर डाउन द लाइन उन्होंने अपनी प्रॉपर टाइमिंग्स हिट की और गेमैक्स के ऊपर एडवांटेज लेने में कामयाब रोशान सिक्योर की और उसके साथ ही साथ मल्टीपल टीम वाइब्स एंड द रेस्ट एज वी नो इट्स हिस्ट्री। लेकिन गेमैक्स तला हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने एक अर्ली लीड उनके पास मौजूद थी, द लाइफ स्टीलर प्लस मैग्नस का डैमेज, दे वर
एबल टू कीप अप विद द स्वेन इन टर्म्स ऑफ फॉर्म, और बल्कि मैं कहूँगा कि शुरू में तो डोमिनेट करते हुए भी नजर आए थे, लेकिन मुख्तलिफ मौक़ों पे काफ़ी गलतियाँ, थोड़ी सी जब वुफर्स को एडवांटेज भी मिल गई, तो आपकी बात जिस तरह आप कह रहे थे कि हाई ग्राउंड आने देने का उनको इंतज़ार नहीं किया कि एक दफ़ा वो टीम अगर हाई ग्राउंड आए तो वहाँ पे उनको एक काफ़ी एडवांटेज हो सकती थी। लेकिन अब गेम नंबर 2 हमारे पास इन दोनों टीम्स के बीच में खेली जाएगी, और उसमें मेरे ख्याल से गेमएक्स अगर उस तरीके से एडजस्ट करने में कामयाब होती है तो शायद वुफर्स को एक और दफ़ा हार्ड टाइम दे सके, बिकॉज अभी एक गेम डाउन होना दैट्स नॉट गोइंग टू फील गुड। डेफिनेटली एक गेम डाउन होना इट्स नॉट गोइंग टू फील गुड, लेकिन अभी जहन में भी रखना होगा कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज कंपटीशन था इन दोनों के बीच में। डेफिनेटली बहुत ही, मैं बहुत तो नहीं, थोड़े से क्वेश्चनेबल डिसीजन लिए थे गैमैक्स ने, जो कि हमने डिस्कस किए थे। लेकिन फोकस इस बात पर होना चाहिए कि लाइनअप को भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। मिड गेम लाइनअप थी गैमैक्स की जो वो यूटिलाइज नहीं कर पाए, और फिर लेट गेम में तो ऑब्वियसली क्वीन ऑफ पेन और स्वेन जब फुली ऑनलाइन आते हैं, 6 स्लॉटेड जो होते हैं, तो उनके अगेंस्ट डील करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक लाइनअप्स का थोड़ा सा चेंजेस, एंड आई थिंक थोड़े से डिसीजन मेकिंग में चेंजेस प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। बट मीनवाइल हम स्कोरबोर्ड की तरफ अगर झांकें तो हम यही देख रहे हैं कि लाइफ स्टीलर कितनी बुरी तरह फॉल ऑफ किए थे मिड गेम के बाद। 24,000 नेटवर्थ, जो कि इवन सेंटोर वॉर रनर की नेटवर्थ से काफ़ी ज़्यादा कम है। लास्ट हिट्स में तो काफ़ी ज़्यादा वो आगे हैं, वो 426 लास्ट हिट्स लाइफ स्टीलर के पास मौजूद थी, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं उठा पाए। वाइपर, डिस्पाइट के द फैक्ट कि वाइपर ने एक माइडस भी बना लिया था, मैग्नस का भी फार्म मिल गया था, लेकिन वही बात लेट गेम में वो कितना ज़्यादा फॉल ऑफ करना शुरू हो गए थे। टस्कार ने सेप्टर बना लिया था, लेकिन आई डोंट थिंक मैंने एक भी दफ़ा उनकी वॉलरस किक हमें देखने को मिली। सिंपली वो बिल्कुल अनसक्सेसफुल तला, रहे वॉलरस किक करने में। विजन उनके पास था नहीं, फाइट्स वो थोड़ी सी अजीब सी गैमैक्स ले रहे थे, जिसकी वजह से टस्कार ने अपना ट्रू पोटेंशियल शो नहीं कर पाए थे। आई और गेस दूसरी तरफ इवेंचुअली एक हम अगर पॉइंट ऐसा आ देखेंगे, गया था कि टस्कार को तलहा he was always blinking in to snowball save, right? He didn't get the chance to blink in to initiate a fight, so वहाँ पे भी हमें वो वॉलरस किक it just never came into play, right? डेफिनेटली, और यही थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है जब आप मिड गेम में फॉल ऑफ करना शुरू हो जाते हो। जो आपके स्ट्रैटेजी होती हैं वो प्ले आउट नहीं हो रही होती। मीनवाइल अगर हम जैसे डायर साइड की बात करें तो हुडविंग के पास एक पूरा का पूरा हैक्स बना हुआ है। 16,000 नेटवर्थ, ऑलमोस्ट उतनी ही बराबर नेटवर्थ है जितनी टीम गैमैक्स के कोर्स के पास नेटवर्थ मौजूद थी, एंड ओनली 2 डेथ्स टू हिज नेम। हुडविंग ने काफ़ी अच्छा खेला था। सेंटोर वॉर्डन ने भी काफ़ी अच्छा कमबैक निकाला था, और अगर हम इन दोनों के असिस्ट देखें तो 32 34 असिस्ट हुडविंग के पास, 34 असिस्ट, 5 किल्स, तो टोटल ऑफ 39 किल्स में उनकी पार्टिसिपेशन रही थी। तो तकरीबन हर टीम फाइट में वो मौजूद तो थे, क्योंकि आप देखेंगे 45 टोटल किल्स हैं उनकी, और 39 किल्स पर हुडविंग मौजूद रहे थे, और एंड 40 किल्स पर सेंटोर वॉर्डन मौजूद रहे थे। तो ये टीम काफ़ी ज़्यादा टीम फाइट ओरिएंटेड थी। जैसे कि हमने एक्चुअली वुफर को पहले भी मैचेस में इस टूर्नामेंट के हमने देखा था कि टीम फाइट कोऑर्डिनेशन में टीम वुफर काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे थे। मीनवाइल उनके स्वेन भी 6 स्लॉटेड हो गए थे। क्वीन ऑफ पेन, वंस क्वीन ऑफ पेन का विंड वेकर बन गया था, तो क्वीन ऑफ पेन के अगेंस्ट लड़ना और इवन उसको निकालना इम्पॉसिबल जैसी चीज़ थी। ब्लिंक कूल डाउन उसका डिक्रीज़ हो गया था। ऑक्टेरिन कोर भी उनका बना 3 सेकंड ब्लिंक का कूल डाउन था, तो उनको निकालना तो बिल्कुल ही फजूल चीज़ थी, अनलेस आपके पास एक जैसे कि हम बार बार मैं मेंशन कर रहा था कि एक कोई हैक्स बना हुआ हो। हैक्स डेफिनेटली वाइपर को तो एक हैक्स बनाना चाहिए था, मिड गेम में उनके पास एक हैक्स तैयार होना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने प्रायोरिटाइज नहीं किया। इंस्टेड वो पूरी की पूरी टीम आई थिंक वो मांटा की तरफ गई थी। लाइफ स्टीलर के पास ही मांटा था, वाइपर के पास ही मांटा था, एंड आई थिंक मैग्नस के पास भी एक मांटा था। तो इतने ज़्यादा मांटा, स्पेशली जब आपके पास एक सेफ मैकेनिज्म ऑलरेडी मौजूद है, थोड़ा सा भरोसा होना चाहिए टीम के ऊपर। मेरे ख्याल से शैडो डीमन ने काफ़ी अच्छा खेला था, तो उस पर रिलाई किया जा सकता था, लेकिन गैमैक्स उस पर नहीं गए थे। एंड अगेन अली, हम वही बात कर रहे हैं, लायन जो आज तक हमें बैन होते हुए नज़र नहीं आए, अब वो बैन होते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल तला, बैन किया जा रहा है ऐसे हीरो।
वही बात है कि लाइन यूजुअली एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट पब्स में ज़रूर हो जाता है, लेकिन विद द इशू ऑन दिस हाईएस्ट लेवल इसके काफ़ी वो ग्लास कैनन एंड इज नॉट इवन अ कैनन, राइट, लाइक इज अ सपोर्ट जो कि कंट्रोल ऑफर कर देता है, बट उसके अलावा हालात थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। द लाइन इज डन विद द स्पेल्स, लेकिन गेम एक्स अब शैडो डीमन को पिक करते हुए नज़र आते हैं यहाँ पे। और इट वाज अ गुड शैडो डीमन गेम, राइट, पिछली गेम में भी हमें शैडो डीमन काफ़ी अच्छे नज़र आए, सेव्स किए गए, इनिशिएशंस के लिए भी कैच आउट करते हुए। तो लेकिन अब एक दफ़ा फिर से और दूसरी साइड पे फिनिक्स का इंतखाब किया जाता है टीम वुफर फैंस की तरफ से। सो दैट्स फिनिक्स डेफिनेटली, आई थिंक हमने वूफर को फिनिक्स पहले भी खेलते हुए देखा है, काफ़ी अच्छा फिनिक्स खेलते हैं वो। लेकिन किस तरह फिनिक्स को तो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया लास्ट पैच में। शैडो डीमन, जैसे कि आपने बोला, शैडो डीमन काफ़ी अच्छा खेला था उन्होंने लास्ट गेम पे। डेफिनेटली एक बहुत ही हाई इम्पैक्ट हीरो होता है, पर्टिकुलरली अगर आप फिजिकल डैमेज हीरोज़ की बात करें उसके अगेंस्ट खेलने में, जैसे कि स्वेन हो गया लास्ट गेम में था। सेव मैकेनिज्म भी उनके पास मौजूद है, बट उसको किस तरह यूटिलाइज़ करना है आगे जाके, उसको गैमैक्स को थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली शैडो डीमन की जो पोजीशनिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा ऑफ थी, इतनी अच्छी पोजीशनिंग उन्होंने मेंटेन नहीं की थी। तकरीबन हर टीम फाइट में वो विजन के अंदर से कॉट आउट होते थे। एंड श्योर ट्री एंड प्रोटेक्टर था दूसरी टीम में, हुडविंग था दूसरी टीम में, तो इतना ज़्यादा उनको शैडो डीमन को कह नहीं सकते क्योंकि विजन तो ऑलवेज़ उनके ऊपर होगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मज़ीद केयरफुल होने की ज़रूरत है। एंड हुडविंक वापस वुफर फैंस पिक करते हैं। हुडविंक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हीरो साबित तो हुआ था, तो गैमैक्स डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि वो भी क्या सेम स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। अगर वो सेम स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो डेफिनेटली उनको अपना हाई ग्राउंड लेने का डिसीजन जल्दी करना पड़ेगा, एंड हाई ग्राउंड मिड गेम डिसीजन बेहतर करना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली हाई ग्राउंड पे लड़ने का डिसीजन लेना पड़ेगा। बिकॉज शैडो डीमन अगेन हाई ग्राउंड डिफेंस उनके पास पांचों के पांचों हीरोज़, और लाइफ सीडर को हटा के चार हीरोज़ उनके पास थे जो हाई ग्राउंड पे बहुत अच्छे लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने उसका कोई इस्तेमाल नहीं निकाला। बिल्कुल सारे जो ओवरऑल डिसीजंस गेम एक्स को थोड़ी सी बेहतर करनी पड़ेंगी, वरना I'd say कि इवन कि फ्रॉम अ मैकेनिकल लेवल, राइट, आई थिंक दोनों टीम्स बहुत ही क्लोजली मैच थी, ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी नहीं थी। ऑल ऑफ द कोर्स वर गेटिंग फार्म इन द बिगिनिंग, और मैं तो कहूँगा गेम एक्स इवन एज आउट भी कर रही थी, लेकिन द ओवरऑल डिसीजन मेकिंग नीड्स टू बी बेटर। यहाँ पे गेम एक्स की तरफ से वी एक्सपेक्टिंग देम टू मेक बेटर मूव्स वहाँ पे। बट लेट्स सी गेम नंबर 2 क्या पिक करते हुए यहाँ पे नज़र आते हैं। बैन्स में मैग्नस को इस वक्त बैन किया गया है गेम एक्स की तरफ से। आरपी वही बात है, बीकेबी के थ्रू चली जाती है, लाइक इट्स वेरी, इट कैन बी वेरी हार्ड टू डील विद। ऑल्दो गेम एक्स मैं कहूँगा कि लेटर ऑन वो 3-man 4-man आरपीज भी इवन दे डिडंट हैव द फॉलो अप डैमेज, लेकिन तला स्टॉर्म स्पिरिट आई नो आपको एक काफ़ी पसंदीदा हीरोज़ में से हैं। और इफ़ यू I think Remnant इनका आप बता रहे थे कि buff किया गया within this patch. Are there any other buffs that the Storm has received? Yeah, with the No, overall it's just magical damages just being better is also. एग्जैक्टली, ओवरऑल मैजिक डैमेज भी इंक्रीज हुआ है। विच ब्लेड के अब एक्सटेंशन आइटम्स और मजीद एक और आइटम बन चुका है, तो स्टॉर्म स्पिरिट के ओवरऑल आप क्राफ्टिंग आप देखें तो वो इम्प्रूव हो चुका है। रून्स जो उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है उससे भी इम्प्रूव हो चुके हैं, तो स्टॉर्म स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल बफ है। एंड आई थिंक स्टॉर्म स्पिरिट और मार्सी ये कॉम्बिनेशन हम ऑब्वियसली स्टॉर्म स्पिरिट हम इतना ज़्यादा देखा ही नहीं है काफ़ी टाइम से मेटा के अंदर, लेकिन स्टॉर्म स्पिरिट का जो शार्ड एबिलिटी है वो मार्सी की अल्टीमेट्स भी ज़्यादा कॉम्बिनेशन में काम करती है। स्टॉर्म स्पिरिट के जो ओवरलोड चार्जेस हैं वो भी मार्सी को मिल सकते हैं अगर मार्सी अपनी अल्टीमेट खोले, तो वो डेफिनेटली यूज़फुल है। एंड अगेन मार्सी फिनिक्स के अगेंस्ट अपनी अल्टीमेट खोल के एग को निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। एंड एक नीश एबिलिटी अगर मैं कहूँ स्टॉर्म स्पिरिट के पास जो मौजूद है वो है कि हुडविंक को अपनी जब लेवल 2 स्टॉर्म स्पिरिट की अल्टीमेट हो जाए तो वो हुडविंक की भी एबिलिटीज़ डॉज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो वुफर फैंस को आई थिंक शटडाउन मैकेनिक का कोई हीरो पिक करना चाहिए जो एक रिलायबल डिसेबलर हो, जैसे कि लास्ट गेम
सेंटोर वॉर रनर वो रोल प्ले कर रहा था। ऑब्वियसली सेंटोर वॉर रनर इतना रिलायबल रनर तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वो हीरो खेला था कंसिस्टेंटली, 3 हीरो हूफ स्टॉम्प्स वो मार रहे थे कंसिस्टेंटली अपनी टीम के लिए, वो टीम फाइट्स की स्पेस बना रहे थे, एंड 40 आउट ऑफ 45 किल्स में उनकी पार्टिसिपेशन रही थी, मेरे से 90% किल पार्टिसिपेशन थी उनकी, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा था। एंड मीनवाइल आउटवर्ड डिस्ट्रॉयर उन्होंने पिक किया है डेफिनेटली टू काउंटर दैट स्टॉर्म स्पिरिट मिड लेन के ऊपर। मैना आप उसका बस कम रखो, और स्टॉर्म स्पिरिट लेन काफ़ी बुरी तरीके से हार जाता है अगेंस्ट दी आउटवर्ड डिस्ट्रॉयर। लेकिन मार्स के अगेंस्ट तो काफ़ी अच्छा होता है स्टॉर्म स्पिरिट, बट देखना पड़ेगा कि किस तरह गेम प्रोग्रेस करती है। आई थिंक ये वाली गेम लेनिंग फेज पे काफ़ी हेवीली डिपेंडेंट है, बिकॉज गैमैक्स के हीरोज़ अगर आप देखें, अगर वो लेनिंग फेज में शट डाउन हो गए तो फिर उनका कमबैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मीनवाइल वूफर फैंस की लाइनअप के मुताबिक अगर वो लेनिंग फेज में थोड़ा बहुत हार भी जाते हैं तो उनकी एबिलिटीज़ के थ्रू ही वो मिड गेम में लड़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल, तो लाइक थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट इन स्टाइल्स नज़र आ रहा है दोनों टीम्स की लाइनअप्स के बीच में, जहाँ पे गेमैक्स के हीरोज दे नीड टू बी गुड थ्रू आउट, स्टार्टिंग हो मिडल हो, टू बी एबल टू कैरी ओवर एंड बी इफेक्टिव। लेकिन वूफर वही आपकी बात की, अगर लेनिंग भी उतनी अच्छे तरीके से नहीं जाती तो अल्टीमेट्स के ऊपर से एक कम बैक पोटेंशियल ज़रूर मौजूद है। साथ ही साथ गेमैक्स अपनी, मैं कहूँगा कि अर्ली गेम डोमिनेशन हैवी जाते हुए एक दफ़ा फिर से गोइंग फॉर दैट अर्ली टाइमिंग। हालांकि यू नो पीपल वुड कॉल मी क्रेजी अगर मैं कुछ पैचेस पहले एक स्पेक्टर के पिक होने पे ऐसी बात करूं, लेकिन स्पेक्टर भी अब इवॉल्व होकर चला वो एक अर्ली गेम हीरो आ गया जहाँ पे आप ऑफ ऑफ कूल डाउन अपनी अल्टीमेट को इस्तेमाल करते हैं, यू हैव एंड अप हैविंग दैट ग्लोबल पोटेंशियल। सो मार्सी के साथ कंबाइन करना, शैडो डीमन, स्टॉर्म स्पिरिट अगर किसी हीरो के ऊपर जा रहे हैं तो दैट स्पेक्टर, दे कैन ऑलवेज काउंट ऑन दैट स्पेक्टर टू बी दैट +1 टू दोज एंगेजमेंट्स। सो एक काफ़ी डेफिनेटली आई थिंक स्टॉर्म स्पिरिट की रोटेशन के साथ अगर स्पेक्टर का हॉन्ट आ रहा है तो वो एक एडेड किल पोटेंशियल बन जाता है पर्टिकुलरली, एंड डेफिनेटली वो हुडविंक को निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं, बिकॉज हुडविंक हो गया या ट्री एंड प्रोटेक्टर हो गया, वो ट्रीज़ के अंदर छुपे हुए हैं, तो स्टॉर्म स्पिरिट आसानी से ट्रीज़ को क्लियर आउट कर सकते हैं और स्पेक्टर हॉन्टिंग करके उनको भी मार सकते हैं। सो डेफिनेटली गैमैक्स का इस पिक के साथ टीम फाइट पोटेंशियल या पिक ऑफ पोटेंशियल मैं बोलूँगा वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। लेकिन अभी तक अली आई थिंक टीम फाइट वाइज वूफर फैंस पर्टिकुलरली जब वो बीकेबी बना लेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्गर हैं गैमैक्स के अगेंस्ट। बिल्कुल तला, आई गेस बीकेबीज के ऊपर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि वो डिफरेंस आ सकता है, वूफर फैंस को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू टर्न द टाइड अराउंड। लेकिन अभी जैसे कि इसमें देख रहे हैं स्टॉर्म स्पिरिट जंपिंग ऑन होडविंग के पास कुछ खास मैकेनिक नहीं है कि वो स्टॉर्म स्पिरिट से बच पाए वहाँ पे, अगर रूट कर नहीं पाते तो द स्टॉर्म कैन बी अ लिटिल डेडली हियर। जिस तरीके से इनिशिएशन, इवन द मार्सी कैन जंप इन, शैडो डीमन, कैच, स्पेक्टर कंबाइन करते हुए ट्रोल वॉरलॉर्ड बैन किया जाता है फाइनल बैन, और गेमैक्स गोइंग फॉर दैट स्लारडार, so that negative armor is definitely going to be a factor in this part. डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग अली टू सी कि वूफर फैंस कौन से कैरी की तरफ जाते हैं। आई थिंक उनको एक कोई Medusa time, Tala. Could be. could I be don't know. could Ali could Yeah, be it's not that bad, right? मेड्यूसा एज वेल। स्पेक्टर के अगेंस्ट भी डील करने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है मेड्यूसा। मार्सी के अगेंस्ट थोड़ा सा वीक हो जाती है मेड्यूसा, बिकॉज वो हिट स्टैक इतनी जल्दी क्विकली होते हैं, लेकिन देन अगेंस्ट स्टोन गेज एक तरह से काउंटर कर देती है सारी टीम को। लेकिन मेड्यूसा का एक ड्रॉबैक होता है अली के ये स्टॉर्म स्पिरिट के अगेंस्ट ना वो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि आपकी स्टोन गेज वो काफ़ी आराम से बेट आउट कर सकते हैं अगर वो चाहें। गैमैक्स ई स्पोर्ट्स पर्टिकुलरली उनके पास स्पेक्टर भी है, स्टॉर्म स्पिरिट भी है, स्लाइडर भी है, तो एक पोजीशन बन जाती है कि आप अपनी स्टोन गेज प्रीएम्प्टिवली एक्टिवेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है और फिर वो डिसंगेजमेंट करने के बाद वो टीम फाइट में वापस रीइंफोर्स हो जाते हैं। लेकिन आई थिंक कि वूफर फैंस जो भी कैरी पिक करेंगे उसको उस कैरी के लिए गेम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। बिल्कुल, और वूफर फैंस अपना लाइनअप कंप्लीट करने के लिए लूना का इंतखाब करते हैं। मैं कहूँगा कि एक
इंटरेस्टिंग पिक ज़रूर नज़र आ रही है गेमएक्स के अगेंस्ट। यूजुअली आप स्टॉर्म स्पिरिट के खिलाफ मैं कहूँगा कि वो लो एचपी कैरीज नहीं पिक करते, जो कि प्राइमरली जिस तरीके से लूना एक एजिलिटी हीरो है ज़रूर मौजूद है, तो उनकी एचपी इज़ इन द बेस्ट अगेंस्ट स्टॉर्म स्पिरिट। लेकिन जस्ट जनरली आई गेस दोनों साइड्स पे एक इट्स अ वेल राउंडेड लाइनअप, जहाँ पे गेमएक्स थोड़ा सा अर्ली गेम लो कूल डाउन अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करेंगी, but on the other hand, Woofer fans going for those bigger ultimates, longer cooldowns, team fight, आपके पास फिनिक्स एग मार्स के अरीना मौजूद है, और साथ साथ इवन लूना की अल्टीमेट इज़ हाई कूल डाउन अल्टीमेट वहाँ पे अल्टीमेटली। लेकिन दोनों टीम्स के पास एक मैं कहूँगा कि क्लियर टाइमिंग्स हैं एंड दिल बी एबल टू डोमिनेट द गेम, और उस मोमेंटम को लेकर चलना पड़ेगा। आई थिंक गेम एक्स की टाइमिंग पहले आती है एज़ कम्पेयर टू वुफर फैंस, लेकिन देयर इज़ अ मैकेनिक फॉर बोथ ऑफ देम टू डोमिनेट द गेम। डेफिनेटली एंड आई थिंक लूना को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा बिकॉज इतना ज़्यादा बर्स्ट पोटेंशियल है। टीम वुफर्स उसको बचा पाएंगे या नहीं, और ऑल रियली डिपेंड्स ऑन दैट। आउटवर्ड डिस्ट्रॉयर का जो इम्प्रिजन एस्ट्रल इम्प्रिजनमेंट है, तो वही उनके पास एक आइडियल सेव मैकेनिज्म है उनको बचाने के लिए। परहैप्स जो भी वॉर्टेक्स होता है या जिसके ऊपर भी जंप ऑन होता है वो उसको बचा सकते हैं। स्टॉर्म स्पिरिट अभी स्मोक ब्रेक कर देंगे सबकी, वो शॉक उनके ऊपर अटैच हो जाएगा। एस्ट्रल भी उनके पास आता है, स्पीड भी सबको लग जाता है, एंड दिस विल बी अ He's वेरी dead. डेड स्टॉर्म स्पिरिट। लूना के फर्स्ट ब्लड मिल जाता है। आई डू नॉट थिंक स्टॉर्म स्पिरिट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इतनी जल्दी मारेंगे, लेकिन स्टार्टर भी सितरीन क्रश मारते हैं। लूना फॉलिंग वेरी लो ओवर है, बुशवॉक भी कनेक्ट हो जाता है, लेकिन दिस लूना विल बी फॉलिंग ओवर। इन फैक्ट लूना बच जाती है लेकिन मर that's जाएगी। fine. टुवर्ड्स द लास्ट हिट स्पेक्टर के अंदर मौजूद है। मार्स भी है, सितरीन क्रश वापस मेरे पास एक्टिव आने वाला है, लेकिन मार्स पे कनेक्ट नहीं करेगा वो। मीनवाइल स्पेक्टर मर जाएंगे एंड स्टार्टर विल आल्सो बी फॉलिंग ओवर है। तो 3 हीरोज मरते हुए नजर आ रहे हैं। टीम वुफर्स ने 3 किल हासिल कर ली हैं। लूना के ऊपर एक रिटर्न किल तो हो जाती है, लेकिन नॉट वर्थ इट एट ऑल। लेकिन अच्छी बात यह है कि आई थिंक ज़्यादा बाउंटी रोन गैमेक्स को मिलने चाहिए। यहाँ पे 3 बाउंटी रोन तो वो सिक्योर कर ही लेंगे। Because Talawar, नहीं, Team इनफैक्ट Woofers, this game is starting off on a very big high, right? दोनों teams middle के ऊपर compete करते हुए एक दूसरे से नजर आई, लेकिन Woofer fans being able to edge out from there, 3 kills लेने में कामयाब होते हैं, and that gold is going to give them an advantage in that early laning phase, especially Gamax के लिए that's bad news, because उनके heroes उस early lane dominance के ऊपर, या lane dominance नहीं भी तो एक they need a good start, they definitely need a good start on the side of Gamax, और वो मैं कहूँगा कि उनको अभी नहीं मिलते हुए नजर आया। साथ ही साथ हमारे पास गेम अभी पॉज कर ली जाती है। Love to see it. Go when ready. लेकिन लेंस की अगर तरह बात की जाए, स्पेक्टर प्लस शैडो डीमन वर्सेस द मार्स एंड द फरी हीरो एज आई लाइक टू कॉल इट, तो यहाँ आई पे थिंक सिमिलर सिचुएशन है अली कंपेयर टू लास्ट गेम के। अगर आउट ऑफ पोजीशन शैडो डीमन नज़र आ गया तो वो एक मार्स और सेंटर ऑफ वॉरनर की तरह ही प्ले हो रहा होगा। इस गेम में भी किल पोटेंशियल डेफिनेटली मौजूद है। मीनवाइल जो स्पेक्टर का किल पोटेंशियल है ऑपोजिट टीम में वो थोड़ा सा ज़्यादा लैकिंग मेरे ख्याल से है, बिकॉज आई डोंट थिंक शैडो डीमन प्लस स्पेक्टर इतनी ज़्यादा किल्स या कोई भी किल निकाल पाएंगे अनलेस काफ़ी ज़्यादा मिसप्ले हो टीम वुफर्स के तरफ से। मीनवाइल मिड लेन पे ये लाइनअप थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट है स्टॉर्म स्पिरिट के लिए, क्योंकि यहाँ पर ओडी विल स्टार्ट टू डोमिनेट उसमें एस्ट्रल इम्प्रिजनमेंट या फिर उसके आर्केन ऑर्ब में जब लेवल्स आना शुरू हो जाएं। लेकिन ऑब्वियसली स्टॉर्म स्पिरिट का कमबैक मैकेनिक अगर उसकी लेन बुरी भी जाती है तो लेवल 6 के बाद तो उसका कमबैक मैकेनिक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, पर्टिकुलरली क्योंकि आपको लेन में इस गेम में एटलीस्ट लेन में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टॉर्म स्पिरिट के पास बहुत सारी अदर लेन्स हैं रोटेट करने के लिए। वो टॉप लेन की तरफ पर्टिकुलरली जा सकते हैं जहाँ पे स्लाडर मौजूद है। लूना के ऊपर एक किल ऑलरेडी हो चुकी है टॉप लेन पे, तो देखते हैं कि ये मिड लेन कैसे चलती है। बिल्कुल तलवार, आई गेस वही बात है कि द बेस्ट द स्टॉर्म कैन डू इज के मेक श्योर कि वो फार्म पे कीप अप करें विद दैट ओडी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ओडी लोअर कूल डाउन ऑन दैट एस्ट्रल इम्प्रिजनमेंट एंड just playing the lane against an OD gets very annoying very quickly, लेकिन स्लार्टर इसका काफ़ी लो वो एचपी के स्लाडर्स ऊपर गोइंग टू मौजूद डाई। है,
or yeah, he gets taken out. So Luna getting that kill on the top lane. I think the Phoenix combining with the Luna to take out that Slardar. Uh, so that's good for Team Woofers, but not the best for Gamax right now. Spectre भी डेफिनेटली में farm अपना लेते टॉप हुए. लेन पे तो टॉप लेन पे तो देखना पड़ेगा अली कि क्या सूरत हाल है अभी तक वहाँ पर दाना नहीं हुआ लेकिन आई थिंक थोड़ी बहुत इवन गेम चल रही है लूना का जो उनको उसको फर्स्ट बैट का एडवांटेज मिला था वो मेरे ख्याल से जा चुका है स्टार्टर की एक अच्छी लेन फिनिक्स काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो दोनों मीली हीरो हैं पर्टिकुलरली अटैक पे डिपेंडेंट है अपने और फिनिक्स के अगेंस्ट वो अटैक्स निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाता है इतना ज़्यादा पोटेंट अटैक्स लो मौजूद है फिनिक्स के पास एंड मीनवाइल मिड लेन पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई की तरफ फोकस है आई डोंट थिंक स्टॉर्म स्पिरिट को अटैक्स कंटेस्ट या हिट स्ट्रेट करने की ज़रूरत है बिकॉज देर इज़ नो वे स्टॉर्म स्पिरिट इस वे अहेड आएंगे HP आउटवर्ड डिस्ट्रॉयर की बहुत ज़्यादा है वो प्योर डैमेज आर्केन ऑर्ब्स जो उसके हैं उसके अगेंस्ट डील करना बहुत मुश्किल बन जाता है एंड स्टॉर्म स्पिरिट जैसे कि हमने बोला फुल मैना लेकिन कोई HP नहीं मुझे तो HP उनकी काफ़ी कम हो चुकी है. रोटेट कर रहे हैं उस वाटर रून या उस बाउंटी रून के लिए. So should get that bounty rune और उसके साथ वापस रोटेट करते हुए. लेकिन if the OD wants, he saw him going for that rune, so water rune के ऊपर को कंटेस्ट करने की कोशिश की जा सकती है लेकिन एक दफ़ा फिर से टॉप लेन के ऊपर एक किल मिल जाती है. स्लार्डर गोज डाउन और साथ ही साथ मार्सी को भी टेक आउट करने में कामयाब होंगे तला. तो ये टॉप रूम तो बिल्कुल ही डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल है गेमैक्स के लिए. आपकी बात बिल्कुल ठीक. दोनों हीरोज अपनी राइट क्लिक पे डिपेंड करते हैं और देयर प्लेइंग अगेंस्ट दैट हीरो Phoenix जो कि has one of the most powerful right click slows in the entire game arguably, right? So काफ़ी मुश्किल लग रही है. साथ ही साथ लूना अर्ली ग्लेव डैमेज काफ़ी ज़्यादा होता है और उसके साथ साथ ओरा अगर आप बिल्ड कर रहे हो लूसेंट बीम के अंदर एक लेवल हो तो लूना कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट मिड लेन में. स्टॉर्म स्पिरिट ने पूरी की पूरी वेव खो दी इसका स्टॉर्म स्पिरिट का रेमनेंट का रेडियस नहीं हिट किया था वो दो लास्ट हिट उनकी हो जाती हैं छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कर जाती हैं मिड लेन में पर्टिकुलरली जब आप एक हीरो खेल रहे हो जो ऑलरेडी एक एक्सपेक्टेड बिहाइंड पोजीशन पे होगा बट आई वुड से स्टॉर्म स्पिरिट इतना ज़्यादा बुरी कंडीशन में नहीं है 20 लास्ट हिट तो उन्होंने हासिल की हुई है एंड हुडविंग थोड़ी सी आउट ऑफ पोजीशन लेकिन ही विल बी सेफ और अभी शैडो डीमन को काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत पड़ेगी परहैप्स वो एक ऑन शॉट एक दफ़ा बाउंस कर जाता तो वो एक किल हो जाती लेकिन मीनवाइल बॉटम लेन काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक दोनों टीम्स के लिए कोई ऐसा किल पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा हमें Because then that's what you want if you're the Spectre, right? You don't want to be aggressed upon. You just want to sit there, अपनी XP up करें, अपने levels up करें, going for that first item blade mail. So that contest when they're going to jump on that hero, so Spectre के लिए एक थोड़ा सा defensive item ज़रूर हो जाएगा. लेकिन not sure कि how does the game look like for the Spectre in terms of the item build that she needs to go. किन आइटम्स के साथ इन हीरोज के साथ अगेंस्ट डील करने में कामयाब होंगे. फोकस ऑन दैट फिजिकल डैमेज लेकिन यहाँ पे आई थिंक रून कंटेस्ट करने की कोशिश की जा रही है और रून डिनाई कर दिया जाएगा लेकिन एट व्हाट कॉस्ट शैडो डीमन नॉट द आइडियल आउट कर लेंगे और एस्ट्रल प्रिजन में थोड़ी सी दोनों डिसेबल उन्होंने इस्तेमाल कर लिए थे परहैप्स वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो TP आउट कर लेंगे लेकिन थोड़ा सा मिसप्ले आई थिंक टीम वुफर्स के अगेंस्ट रून तो डिनाई हो गया लेकिन रून आई डोंट थिंक आउटवर्ड डिस्ट्रॉयर को वो एक इल्यूजन रून की इतनी ज़्यादा कोई ख़ास ज़रूरत थी इन द फर्स्ट प्लेस तो चलो जस्ट एक रैंडम सी चीज़ हुई Yeah, in the top lane Thala level 4 is on everyone right now. लेकिन Storm Spirit jump करके आते हैं Phoenix की stun कर दिया जाता है during mid flight and so Storm Spirit ends up getting that kill. और वही बात है मिडिल लेन में OD के अगेंस्ट इस वक्त खड़ा होना तो Storm के लिए वैसे ही काफ़ी नामुमकिन हो चुका है. So that's a great thing to hit onto those side lanes, create that early impact and make sure कि आप फॉर्म में भी कुछ करीब ही रहें. And the best next thing would be to kill that OD mid. लेकिन इस वक्त rotation Slardar doesn't really have that ability. Marcy अगर साथ combine करके Slardar I think Spectre के level 6 का इंतज़ार करना पड़ेगा because that
और OD फिनिक्स is a chonky वापस boy स्टॉर्म right now. स्पिरिट की तरफ जाते हुए आई थिंक वार्ड प्लेस करने की कोशिश कर रहे थे वो, और वार्ड प्लेस करने में वो कामयाब तो हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा उनको। वार्ड डिवॉर्ड भी हो जाती है, नाइस डिवॉर्ड कमिंग आउट, तो वो विजन तो थोड़ा सा चले जाएगा। मीनवाइल स्टॉर्म स्पिरिट अब फार्म भी कर रहे हैं, लेवल 6 हिट कर लिया है उनने, और तो उस स्टॉर्म स्पिरिट को अभी मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर्टिकुलरली बिकॉज उनके पास कोई ऐसा डिसेबल मौजूद नहीं है। मार्स का ही अभी तक डिसेबल है, और हुडविंक का डिसेबल लैच करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, अनलेस स्टॉर्म स्पिरिट की नज़रें उसके ऊपर बिल्कुल भी ना हों, जो कि एक चीज़ नहीं इतनी देखी जाती। मीनवाइल स्पेक्टर भी अपना फार्म कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा लास्ट हिट तो नहीं, उनके पास 26 लास्ट हिट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। मीनवाइल लूना की काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगा फ्री फार्म गेम चल रही है, 57 लास्ट हिट्स उनके पास हैं। Because Luna off to she was off to a great start just to begin with, right? First blood मिला, फिर Slaughter के ऊपर I think 2 kills लेने में कामयाब हुए, so and that's what the Luna needs, right? That early domination, और उसके साथ साथ OD भी अपनी मिडिल लेन के ऊपर डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। शैडो डीमन आ जाते हैं वहाँ पे XP रीच करने के लिए, लेकिन स्पेक्टर just a little away from that blade mail, और थोड़ा सा उस आइटम को सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद लेवल 6 भी साथ ही आ जाएगा कुछ ही देर तक स्पेक्टर के लिए, तो ही कैन स्टार्ट टू बी मोबाइल ऑन द मैप। स्लॉटर अंटिल ही गेट्स दैट ब्लिंक, तो मैं कहूँगा कि उनका फुल पोटेंशियल नहीं हिट होगा इस लाइनअप का इन टर्म्स ऑफ देयर इंडिविजुअल पिक ऑफ एबिलिटी, लेकिन कुछ देर तक मेरे ख्याल से वो, लेकिन ज़रा वो स्लॉटर की ब्लिंक टाइमिंग तो काफ़ी डिलेड होगी, स्पेशली जिस तरीके से उनकी अर्ली गेम चलते हुए नजर आई है। काफ़ी ज़्यादा डिले तो होगी, एंड आई ओहो, थिंक मार्स की ब्लिंक टैगर those टाइमिंग काफ़ी stacks. ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगी, एंड काफ़ी ज़्यादा स्टैक्स बनाए हुए हैं फॉर दैट स्टॉर्म स्पिरिट, जो कि वो अभी आई थिंक लेने जा रहे होंगे। लेवल 7 हैं, तो लेवल 4 रेमनेंट उनके पास मौजूद होगा, शैडो डीमन स्ट्राइक्स भी मौजूद हैं, और आई थिंक वो हुडविंग की तरफ ब्लिंक इन करेंगे, एंड आई थिंक हॉर्न भी आ जाएगा, एंड दैट विल बी अ डेड हुडविंग। तो थोड़े से स्टैक्स लेने में देर तो हो जाएगी, आई डोंट थिंक 3 रेमनेंट तो वो कर सकते हैं अभी, एंड इनफैक्ट लेवल 3 रेमनेंट है, उनको 4th लेवल उन्होंने रेमनेंट पे नहीं लिया, एंड उनके पास इतना मैना तो होगा कि वो ये स्टैक्स निकाल लें। क्लैरिटी का भी इस्तेमाल होता है, तो दैट विल गिव हिम इनफ मैना टू गो फॉर दोज एडिशनल स्टैक्स। मैंगो भी उनके पास मौजूद है, जो कि वो जिसके इस्तेमाल से वो स्टैक्स ले रहे होंगे। तो आई थिंक डेफिनेटली इस स्टैक्स के साथ तो स्टॉर्म स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है। विच ब्लेड उन्होंने क्यू अप किया हुआ है, तो वो विच ब्लेड की तरफ जा रहे हैं, पर आई वुड सजेस्ट कि यू नो दोज ओल्ड डेज ऑर्किड ज़्यादा बेहतर रहता इस गेम में। यू नो आप ओडी को ऑर्किड कर दो और उसको निकाल लो, विच ब्लेड से इतना ज़्यादा डेफिनेटली डैमेज तो आ जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा डैमेज नहीं। आपको एक साइलेंस की तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, पर्टिकुलरली अगर आप एक हीरो के अगेंस्ट फेस कर रहे हो जो कि एक मास्क ऑफ मैडनेस बनाने वाला हीरो है, जैसे कि लूना या फिर एक फिनिक्स भी है, तो आप ऑर्किड इस गेम में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आइटम। आप फिनिक्स का एग रोक सकते हो, आप मार्स को रोक सकते हो, आप लूना की अल्टीमेट को रोक सकते हो, आप ओडी के एस्टर को रोक सकते हो, तो सारे के सारे हीरोज़ को आप रोक सकते हो विद दैट। स्पेक्टर बॉट लेन पे इंगेजमेंट होती है, स्पेक्टर हॉर्न करने की निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहीं जा नहीं पाएंगे क्योंकि चारों के चारों हीरो मौजूद हैं वहाँ पर। एंड मीनवाइल शैडो डीमन भी अब कहीं नहीं जा सकते, ब्लड ग्रेनेड का इस्तेमाल हो चुका है, शैडो डीमन बहुत ही लो है, कहीं जा नहीं सकते। मार्स का स्पीयर भी उनको कनेक्ट हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छी रोटेशन आते हुए हमें नज़र आई। मीनवाइल मिड लेन और टॉप लेन पर कंटिन्यूसली स्टॉर्म स्पिरिट फार्म कर रहे हैं, मार्सी भी आई थिंक सपोर्ट होते हुए होने के बावजूद फार्म कर रहे हैं। बिल्कुल चला, और थोड़ा सा वही बात है कि अनलेस द स्पेक्टर इज गोइंग टू बी द एग्रेसर, अनलेस गेमैक्स खुद एग्रेस करेंगे तो दे विल बी एग्रेस्ड अपॉन। टीम वूफर्स इज मेकिंग दैट वेरी क्लियर। उनके लाइनअप भी अपनी टाइमिंग यहाँ पे हिट कर रहे हैं, मार्स की अल्टीमेट उनके पास मौजूद थी, सो एवरी टाइम दे आर गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी दे विल जंप ऑन देम। सो आई गेस गेमैक्स के लिए है कि दे शुड बी द एग्रेसर्स इंस्टेड, राइट। आपके पास अल्टीमेट्स मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए, और the Slardar, Tala is not even going for that blink right now. So थोड़ी सी initiation के लिए of course they do have a strong spirit. Mars does not, आपके पास Slardar does not have to be the exclusive initiator, लेकिन यहाँ पे strong spirit हम initiation की ही बात कर रहे थे। The Spectre is able to join in and they end up taking out
that Mars. And this lineup Talab, they're very deadly. Marcy का follow up अभी मौजूद है, लेकिन दूसरी साइड पे अगर फार्म की बात की जाए तो that Luna is getting big. और वो काफ़ी यहाँ पे लूना याशा को उनके पास नज़र नहीं complete आ है. रहा है एंड इट्स इट्स काफ़ी हैरानी की बात है कि उन्होंने लूना के स्टैक्स को प्रिडिक्ट नहीं किया और कोई ऑब्जर्वर वार्ड कोई स्टैक को प्रिवेंट करने के लिए सेंट्री वार्ड उन्होंने नहीं लगाई क्योंकि अभी इस वक्त स्टॉर्म स्पीड अब वहीं से गुजर रहे थे तो वो लूना को आराम से मार सकते थे लेकिन देखने की ज़रूरत पड़ेगी. मेरे को तलवर आई गेस पिछली गेम की तरफ भी गेमैक्स की तरफ से कुछ यही चीज़ नज़र आई कि जहाँ पे वो स्वेन आई थिंक पूरी गेम फ्री फार्म करते रहे थे. लाइक एट नो पॉइंट वर देयर पर्टिकुलर अटेम्प्ट्स टू स्टॉप हिम, लेकिन यहाँ पे टेक आउट कर रहे हैं मार्स. शैडो डीमन को अपनी अल्टीमेट का इस्तेमाल कर लेते हैं. हुडविंग की अल्टीमेट भी आ जाती है. शैडो डीमन काफ़ी लो एचपी के ऊपर मौजूद है. ही डज गेट टेकन आउट, लेकिन साथ ही साथ स्पेक्टर ऑन करके शी कम्स इन, ब्लेडमैन ओपन एंड देन देयर्स द स्टॉर्म स्पिरिट. ही इज हियर टू क्लीन अप ही मार्स. साथ ही साथ अल्टीमेट यहाँ पे आ सकती थी फीनिक्स की तरफ से, लेकिन चूजिंग नॉट टू यूज दैट एग. द ओडी इज हियर, लेकिन थोड़ी सी देर कर गई आने में. हाँ थोड़ी सी देर एंड आई थिंक आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा वर्थ इट था टीम वोफर्स के लिए वो 2 किल लूज़ करने में. स्टॉर्म स्पीड अनकंटेस्टेड अभी जा रहे हैं. 6000 नेटवर्थ है उनके पास, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है टीम वोफर्स के पास, वो है जो कि उनका लूना कंप्लीट फ्री फार्म की पोजीशन में है. उनको कोई भी कोई भी अटेम्प्ट नहीं हुआ है उनको रोकने का भी. कोई भी विजन नहीं उनको मिले. स्टार्टर भी फ्री फार्म अभी कर रहे हैं, तो आई थिंक इंतज़ार ब्लिंक ड्रैगर का हो रहा है जो कि स्टार्टर का अभी हो सकता है आने वाला हो और उसके बाद शायद वो लूना की तरफ जाएंगे. मीनवाइल ऑब्जर्वर वार्ड्स उन्होंने प्लेस कर दी हैं वोफर्स के जंगल में, तो देखा जाएगा कि अभी क्या होता है. स्टार्टर अभी काफ़ी एक्चुअली 2000 गोल्ड दूर हैं अपने ब्लिंक डैगर से, तो अभी तो नहीं आने वाला उनका. तो एटलीस्ट 4 से 5 मिनट तो हैं वोफर्स के पास बिफोर दैट आइटम कम्स ऑनलाइन. आई थिंक गैमैक्स जो हैं वो अभी काफ़ी खुश हैं अपने स्टॉर्म स्पिरिट को इनिशिएटर रखने में, जो कि नॉट अ बैड स्ट्रेटजी. लेकिन वो कब तक वो रोल अडॉप्ट कर पाएंगे, क्योंकि कीपिंग इन माइंड स्टॉर्म स्पिरिट सिर्फ चंद हीरोज़ पे जैपिन कर सकता है. वो एक लूना के अंदर जैपिन नहीं कर सकता, वो ओडी के अगेंस्ट जैपिन नहीं कर सकता. बिल्कुल तला, लेकिन बॉटम पे द हुडविंग मसिंग अराउंड विद द शैडो डीमन. साथ ही साथ स्पेक्टर अल्टीमेट करके ज्वाइन इन कर लेती हैं, लेकिन यहाँ पे मौजूद है मार्स. ही डज नॉट वांट टू हिट इनटू दैट ब्लेड में, लेकिन ही इज जस्ट गोइंग टू किल द अदर हीरो इन द मीनवाइल. हुडविंग वहाँ पे बच के चले जाते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्पिरिट ही गोज इन ऑन दैट मार्स, और द मार्स शुड नॉट बी सर्वाइविंग हियर, स्पेशली विद द स्पेक्टर बीइंग अराउंड. एबिलिटीज का इस्तेमाल हो जाता है, दोनों साइडों पे स्पेल्स आते हैं एंड द मार्स गेट्स टेकन आउट एज वेल. तो एक दफ़ा फिर से स्टॉर्म स्पिरिट मार्स को पनिश करते हुए हम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. और दूसरी साइड पे कोर्स दोनों साइडों पे मैं कहूँगा कि फार्म अपना अप करने में कामयाब हो रहे हैं. लेकिन एक इशू ज़रूर है, स्पेक्टर आई डोंट थिंक शी इज़ गॉटन अ किल विद हर अल्टीमेट अभी तक, एज इन द किल हैजंट गॉन टू हर. सो जो स्पेक्टर के लिए मैकेनिक तो इज़ द फार्मिंग, एंड वी नो कि लूना के अगेंस्ट यू कांट कीप अप विद दैट फार्म. बिल्कुल अली, एंड आई थिंक कि ये चीज़ उनको बाद में जाके कॉस्ट करेगी, बिकॉज श्योर वो किल्स तो निकाल रहे हैं मार्स को बार बार, जैसे हम देख रहे हैं वो उसके ऊपर किल्स निकाल रहे हैं, बट इट्स एट द कॉस्ट कि वो लूना के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे, ओडी के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे. एंड ओडी राइट नाउ इज मैसिव, विच प्लेट भी बना हुआ है, ड्रैगन नाम से बना हुआ है. एंड मीनवाइल एक्चुअली वो हुडविंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हुडविंग आई थिंक इंस्टेंटली फॉल करेगा. ओडी भी बहुत ही ज़्यादा लो है, ओडी विल ऑल्सो फॉल ओवर है. लूना भी आ जाती है, लूना की अल्टीमेट भी एक्टिवेट हो जाती है, एंड रेडिएंट हैव टू गेट आउट ऑफ देयर, लेकिन उनके पास कोई अभी एबिलिटी मौजूद नहीं है. स्टॉर्म स्पिरिट बिल्कुल चंद एचपी से निकलेंगे, 2 सपोर्ट्स उनके फॉल कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने गैमैक्स ने कोर के ऊपर किल निकाल ली है और अल्टीमेट भी लूना की यूज़ हो चुकी है. थोड़ा सा अनलकी रहे थे टीम वोफर्स. परहैप्स ओडी को अपना प्रिजन यूज़ एस्ट्रल इम्प्रिजनमेंट हुडविंग के ऊपर यूज़ नहीं करना चाहिए था. परहैप्स उनको चाहिए था कि वो अपने एलाई को जाने दें, ताकि एटलीस्ट वो एस्ट्रल अपने आप के ऊपर इस्तेमाल कर सकें. थोड़ा सा टाइम बाई कर लें अपने आप के लिए, ताकि जब लूना उनके पास आती तो फिर शायद ओडी के साथ वो टीम फाइट को एक तरह से बेहतर टर्न अराउंड कर सकते थे. Because a interesting usage of spells there, थोड़ा सा बेहतर जिस तरीके से आपने बताया वहाँ पे ज़रूर किया जा सकता था.
लेकिन इस वक्त स्पेक्टर 3K गोल्ड लीड है, 231 लास्ट हिट्स लूना की इस वक्त मौजूद है अगेंस्ट द सेकंड पर्सन जो कि उन्हीं की टीम में है। एंड देन उसके बाद हमारे पास आते हैं स्लारडार, क्योंकि हैविंग वन ऑफ द वर्स्ट गेम्स, नॉट वर्स्ट बट लाइक वन ऑफ द better games on the side of the Radiant, लेकिन he gets taken out। साथ ही साथ स्पेक्टर भी यहाँ पे रोटेट करके आई थी। ओडी will get that kill, स्टॉर्म स्पिरिट he has gone in, फीनिक्स को मारने में कामयाब होते हैं, हुडविंग को भी मार पाएंगे यहाँ पे, लेकिन साथ ही साथ gets nailed down to the trees। रोटेशन आ रही है, look at that damage the Marcy does right now, and that's the support Marcy, he jumped in और ओडी को काफ़ी हद तक ओडी और साथ ही साथ मार्स को मेल्ट करने में वहाँ पे कामयाब हुए हैं। It's that Marcy that's looking really massive right now on the side of Gamax. Although she doesn't Definitely have the Marcy farmer. is particularly because सपोर्ट हीरो that's मार्सी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि सपोर्ट डिस्पाइट कि वो सपोर्ट होती है उसके अल्टीमेट से उसको एक एसेंशियली एक बहुत ही हाई डैमेज और हाई अटैक स्पीड हीरो बन जाते हैं। तो वो बिल्कुल कोई आइटम बने हुए नहीं भी बने हुए हों तो वो अपनी अल्टीमेट से अर्ली गेम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीरो होती है। एंड स्टॉर्म स्पिरिट जी काफ़ी आला गेम खेल रहे हैं, कॉन्स्टेंट जैप इन जैप आउट करके वो टीम फाइट्स में पहुंच रहे हैं। वो एक हेड ऑन अग्रेशन नहीं डिस्प्ले कर रहे किसी भी हीरो के अगेंस्ट, वो डिसेबल नहीं हो पा रहे बाय टीम वुफर्स, और ये चीज़ शायद टीम वुफर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो, बिकॉज स्टॉर्म स्पिरिट एक दफ़ा अगर स्नोबॉल कर गया, उसने अपने आइटम्स बना लिए, तो वो इनफैक्ट एक हैक्स की तरफ भी जाएगा, लिंकन स्फीयर हो सकता है बनाए, एंड देन वो इवेंचुअली सेप्टर की तरफ भी जाएगा, और वो जो AOE वॉर्टेक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा सब पूरी टीम के लिए। तो टीम वुफर्स को काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। ओडी की पोजीशनिंग मुझे थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, बिकॉज वो हर फाइट में इस तरह एक कॉट आउट हो जाते हैं कि वो मल्टीपल डिसेबल्स के अंदर आ जाते हैं, वो किसी हीरो को पिन डाउन नहीं कर पा रहे, उनकी अल्टीमेट्स भी इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं नज़र आ रही हमें। Because Tala and the Spectre, she went blade mail into a Midas right now. So I guess that Spectre, she's depending on the team that everyone makes some space for her. I'm not sure, right, what the thought process is there. जिस तरीके से गेम चल रही है, जिस तरीके से लूना एक किस्म का बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मैच एक्यूमुलेट कर रही है, so I think that it's going to be a while before the Spectre catches up, right? The game goes to that 40-minute mark. जिस टाइम पे वैसे ही Spectre आजकल के मेटा में, या just with how the hero is now generally, right, इतना late game strong नहीं रहते हैं. So it looks like that Spectre is going to take a secondary position, and Gamax is probably going to depend on some other heroes जो कि शुरू में उनको कैरी ऑन करें, लेकिन इस वक्त मिडिल टावर के ऊपर थोड़ा सा एग्रेशन का मुजाहिरा हो रहा है। हीरो जहाँ पे मौजूद है, so he gets used at the right time, लेकिन he has a shield balloon going on। साथ ही साथ अल्टीमेट का इस्तेमाल लूना की तरफ से ज़्यादा डैमेज लैंड नहीं हो पाता किसी से, लेकिन फीनिक्स अपनी सनरे का इस्तेमाल करने स्टॉर्म ही वेंट बैक इन, लेकिन मार्सी शी कैचेस आउट अ हीरो, एंड देन दूसरी साइड पे स्टॉर्म ही बीन स्टन्ड एंड ही गॉट टेकन आउट एज वेल। एग का इस्तेमाल आ जाता है अ लिटिल लेट इनटू द फाइट, लेकिन मार्सी को यहाँ से भागना पड़ेगा। ऑल्दो शी हैज हर अल्टीमेट गोइंग ऑन, यूज एक दफ़ा फिर से उसको कैच आउट करने में कामयाब इनटू दैट स्पीयर, और दूसरी साइड पे स्पेक्टर गेट्स टेकन आउट एज वेल, एंड टीम वुफर्स, what a great team fight coming out from them। हाँ, स्टॉर्म स्पिरिट को फाइनली उन्होंने डिसेबल कर दिया था, ओडी पीछे से आते हुए उन्होंने उसको निकाल दिया। एंड ऑनेस्टली एक वक्त मुझे लग रहा था कि गैमैक्स ने कम्प्लीटली सराउंड कर दिया है एक टीम वुफर्स को, क्योंकि लूना की अल्टीमेट भी किसी को नहीं लगी, हुडविंग की अल्टीमेट भी किसी को नहीं लगी, एंड हुडविंग मार्सी के नीचे कॉट आउट हो गए थे। लेकिन ओडी की पोजिशनिंग इस दफ़ा बहुत ही आला पोजिशनिंग उसने अपनाई, एबल टू टेक आउट द स्टॉर्म स्पिरिट, एबल टू टेक आउट द स्पेक्टर एज वेल, एंड लूना ने फिर बाकी हीरोज़ को क्लीन अप कर दिया। एंड स्लाडर भी मर जाते लेकिन उन्होंने फाइट से निकल गए, एंड स्लाडर की स्टन जो आया था वो काफ़ी आला टाइमिंग पे भी आया था। तो डेफिनेटली दोनों टीम्स के लिए पोजीशन और स्टेज काफ़ी अच्छा सेट हुआ था दोनों टीम्स के लिए, लेकिन आई थिंक जो ओडी की एंट्रेंस थी उस फाइट में, उसने पूरी टीम फाइट को टर्न अराउंड कर दिया। एंड अब टीम गैमैक्स थोड़ी सी डेंजरस है। स्लाडर का ब्लिंक डैगर भी रिवील हो गया है, तो आई थिंक टीम वुफर्स को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए
कि वो अभी 2 इनिशिएटर्स के अगेंस्ट डील कर रहे हैं, जो कि स्लाइडर और फिर एक इंस्टेंट स्टॉर्म स्पिरिट। एंड अगेन मार्स के ऊपर ब्लिंकन होगा, मार्स विल अपनी अल्टीमेट एक्टिवेट कर देंगे, लेकिन वो इंस्टेंटली फॉल कर जाते हैं। स्लाइडर बहुत लो अभी हो रहे हैं, स्लाइडर विल फॉल एज वेल। स्पेक्टर भी बहुत लो है, स्पेक्टर विल ऑल्सो फॉल। ओडी अभी फुल एचपी में मौजूद है, एस्ट्रल कर देते हैं स्टॉर्म स्पिरिट को, लेकिन स्टॉर्म स्पिरिट अभी नो मैना अवेलेबल फॉर हिम एंड ही विल ऑल्सो फॉल। मार्सी आई थिंक इल्यूजन से मर जाएंगे, इल्यूजन से मरेंगे एंड शैडो डीमन विल आल्सो फॉल। ट्रिपल किल आउटवर्ल्ड डिस्ट्रॉयर के लिए एंड अगेन एक वेस्टेड टीम फाइट। वो मार्स ने मरते दम पे अली एक अपना अरीना निकाला और 3 हीरो को अंदर उन्होंने ट्रैप कर दिया। एंड स्टॉर्म स्पिरिट ने आई थिंक आउटपोस्ट पे टीपी किया था और फिर पूरा का पूरा उन्होंने जैप किया है। लेवल 2 जैप तो चले है उनका, लेकिन इतने ज़्यादा आइटम नहीं है। सांजिन काया ही है जिसकी वजह से उन्होंने अपना पूरा मैना एक्सपेंड कर दिया है। और अब लूना के पास आई थिंक एक बटरफ्लाई ऑलमोस्ट तैयार है, जिसके बाद उनको मारना काफ़ी ज़्यादा नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल। चलो, और गेमैक्स की तरफ से एक दफ़ा फिर से पिछली गेम की तरह आई वुडंट से कि दे हैव द बेस्ट हाई ग्राउंड डिफेंस लाइनअप राइट नाउ, स्पेशली टियर 2 टावर्स तो अप हैं, लेकिन एट 22 मिनट्स इनटू द गेम, एट 20 मिनट्स इनटू द गेम अभी भी वो टीम फाइट्स को फोर्स कर रहे हैं, और उस तरीके से ऐसी टीम फाइट्स को फोर्स कर रहे हैं जो कि उनके मैं कहूँगा कि ज़्यादा फेवर में नहीं है। लेकिन यहाँ पे मार्स एक दफ़ा फिर यूज इस्तेमाल करते हुए मार्सी को कैच आउट कर लेते हैं, दीवार के साथ लगाने में कामयाब, एंड देन द फॉलो अप डैमेज इज जस्ट a lot from them. So Gamax Talha, when they start bleeding a hero, तो मैं कहूँगा कि they're not able to adjust, they're not able to stop that bleeding, बल्कि उसके अलावा मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली कैस्केडिंग इफेक्ट आ जाता है जिस वजह से वो और हीरोज़ को लूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रीप्स टावर को डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है, ग्लिफ का इस्तेमाल आ जाता है, लेकिन दैट टियर 2 इज़ गोइंग टू फॉल अनलेस गेमैक्स यहाँ पे कुछ हीरोज़ का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। लेकिन मिडल के ऊपर भी साथ ही साथ प्रेशर किया जा रहा है, और एक एडवांटेज मैं कहूँगा तो नहीं, बल्कि एक अच्छी चीज़ जो कि गेमैक्स के पास ज़रूर मौजूद है, स्टार्ट शैडो डीमन का इस्तेमाल करके लूना की इल्यूजन्स बनाकर उन इल्यूजन्स को वूफर्स के खिलाफ ज़रूर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए गेमैक्स नीड्स टू टेक अ फेयर फाइट। इस वक्त हाई ग्राउंड जाने की कोशिश की जा रही है वूफर्स की तरफ से, गेमैक्स से हैव द एबिलिटी टू डिफेंड, इल्यूजन्स बना ली जाती हैं, and they're going to become a little annoying to deal with, जिस तरीके से अभी काफ़ी ज़्यादा डैमेज डील कर रही हैं, साथ साथ ओवर टाइम स्केल करते हुए नजर आएंगी। लेकिन इस वक्त एजेस मौजूद है, 3 मिनट का टाइम है। 24 मिनट्स पे अगर लूना हाई ग्राउंड जा रही है एंड आई डोंट थिंक कोई मैकेनिज्म अवेलेबल है जिसकी वजह से बचाएंगे, बट मीनवाइल मार्स इज गोइंग टू गो इन, होडविंग ही मर जाएंगे एंड आई थिंक मार्सी मर जाएंगे। बाकी रेडिएंट की टीम नोवेयर टू बी फाउंड, हाई ग्राउंड कम्प्लीटली नेकेड खुला हुआ है यहाँ पर। और लूना वंस ये टावर गिरता है अली, तो लूना जिस तरह से वो उनका बेस निकालेगी, आई थिंक ये रैक्स तो कम्प्लीटली फॉल करेंगे, कोई बचाने का मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है गैमैक्स के पास। एंड आई थिंक ये नेटवर्क लीड काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सटेंड कर गई है, ग्लेव्स बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं फाइट में लेने में, एंड आई डोंट थिंक कोई रिस्पॉन्स है रेडिएंट के पास। आई थिंक ये हो सकता है डायरेक्ट थ्रोन के ऊपर जा रहे हो। बिल्कुल तला, और वही बात है जैसे टावर गिरता है फिर उसके बाद लूना के क्लेव्स काफ़ी डैमेज रहते हैं। लेकिन हेलो, इज गेमैक्स अराउंड आपकी बेस इस वक्त गिरती भी नज़र आ रही थी, ग्लिफ फोर्स आउट किया जाता है, जिसके बाद टीम वूफर्स डिसाइडिंग टू गो फॉर दैट मिड लेन इंस्टेड। लेकिन बेहतरीन किस्म की मैं कहूँगा कि गेम प्ले नज़र आ रहा है वूफर्स की तरफ से, गेटिंग अ लॉट आउट ऑफ दोज एजेस राइट। गेमैक्स के वूफर्स के ऊपर जब भी हमने एजेस देखा है उनके कैरी या उनके कोर के ऊपर, तो दे जस्ट डेमोलिशन क्रू बन कर पहुँच जाते हैं दूसरी टीम के बेस के ऊपर, और अभी भी ये डेमोलिशन का सिलसिला जारी है मिडल लेन के ऊपर, वहाँ पे टावर गिराने में कामयाब होते हैं। एंड वही बात है, वूफर्स डज नॉट नीड टू स्टॉप, 1 minute 30 on the edges, bottom lane is open right now, वहाँ से enter हो सकते हैं। And if that Luna is going to be hitting the middle tower, I don't know what they do। और यहाँ पे Shadow Demon करीब आते हैं इसको डिफेंड करने के लिए, लेकिन he gets taken out for buyback का इस्तेमाल, लेकिन अब ग्लिफ भी मौजूद नहीं है। So the ancient it's starting to go down, यहाँ पे किसी को आना पड़ेगा डिफेंस के लिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी यहाँ पे आकर डिफेंड कर पाएगा। फ्लॉड और ब्लैंकन करके जाते हैं, मार्सी जंप्स ऑन द बैक लाइन और इधर पहली दफ़ा तो उसको मारने में कामयाब होंगे।
थोड़े से मार्स की अल्टीमेट फिनिक्स के एग को भी टेक आउट कर लेते हैं, दैट्स बीके भी, लेकिन उसके बाद फॉलो अप में हील गेट कॉट, स्लार्डर को भी खत्म कर दिया जाएगा। स्टॉर्म स्पिरिट अंडर छलांग मार के आते हैं 3 हीरोज के, लेकिन देयर इज नो फॉलो अप एंड दिस लुक्स लाइक वूफर्स के लिए दिस इज गोइंग टू बी द गेम। स्टॉर्म स्पिरिट एक दफा फिर से अंदर रेमिनेंट और उसके साथ साथ लिंक करके कोशिश की जाती है, लेकिन 3 हीरोज अभी भी डाउन है। वूफर्स इफ दे वांट दे कैन कंटिन्यू दिस सीज, यूज का इस्तेमाल करके मार्स की टीपी को रोका जाता है, लेकिन लूना उनके पास अब तो यहाँ पे अपनी एचपी अप करने के लिए भी आइटम मौजूद है। शी इज नॉट गोइंग एनीवेयर। यहाँ पे 20 seconds on both of Gamax's hero right now, and the middle And I tower think is going to Gamax fall. थोड़ा सा prepared है, उनके 10 सेकंड में उनके दोनों हीरो रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। एक्लिप्स मौजूद नहीं है, मार्स का अरीना आई डोंट थिंक मौजूद है, तो वो लेकिन क्या ही करेंगे अगेंस्ट सेटानिक जो कि वापस आ चुका है। लूना को मारना भी इम्पॉसिबल है एंड आई थिंक वूफर सेफ प्ले की तरफ जा रहे हैं। प्रॉबेबली गोइंग वो टियर 1 और टियर 2 टावर लेंगे टॉप का एंड देन वो गेम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं है टीम गैमैक्स के पास, ऐसा वो क्या ही बना सकते हैं जिससे वो गेम को मज़ीद रोक पाएँ। मेरे तो ख्याल में ऐसा कोई आइटम नहीं आ रहा अनलेस वो लूना को किसी तरह वो कैच आउट कर लें, क्योंकि बाय द टाइम लूना और उनके हीरोज़ हाई ग्राउंड आएंगे तो लूना की वापस एक्लिप्स भी आ जाएगी। शायद फिनिक्स का एग ना हो, लेकिन उसकी क्या ही ज़रूरत है अभी फ़िलहाल। तो गैमैक्स बहुत ही मुश्किल पोजीशन में 21,000 डेफिसिट, एक्चुअली 23,000 डेफिसिट के अगेंस्ट वो खेल रहे हैं और अब आखिरी फाइट शायद हमें नज़र आएगी अली। बिल्कुल तला, इट कुड बी पोटेंशियली द फाइनल फाइट ऑफ द सीरीज। स्टॉर्म स्पिरिट अंदर जंप करते हुए जाते हैं, थोड़ा सा क्रीप वेव को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से, लेकिन ही हैज़ टू बी केयरफुल क्योंकि वूफर्स के पास बहुत ज़्यादा कैच पोटेंशियल है। एस्ट्रल मौजूद है और दैट यूज आफ्टर इंटरफियर, साथ ही साथ आपके पास रूट भी मौजूद है मल्टीपल हीरोज़ के ऊपर, लेकिन द बेस इज एक्सपोज राइट नाउ। स्टॉर्म बीके बी करके अंदर छलांग तो मार देते हैं, ओडी काफ़ी ज़्यादा एचपी गवा बैठते हैं। ग्रेट फॉलो अप, गुड कॉम्बो टू टेक देम आउट, लेकिन यहाँ पे बाकी हीरोज अब मार्स वापस से इनिशिएट करते हैं, 2 हीरोज को कैच आउट कर लेते हैं। स्टार्टर इज गोइंग टू गो डाउन राइट नाउ और साथ ही साथ दो बैरक्स आर गोइंग टू फॉल एज वेल। टीम वूफर्स आर एबल टू सिक्योर those megas और साथ ही साथ स्टार्टर जीजी कॉल कर देते हैं टीम गेमैक्स के लिए। द गेम इज डेफिनेटली गुड गेम राइट नाउ बिकॉज जिस तरीके से टीम वूफर्स यहाँ पे खेलते हुए नजर आई हैं और जिस तरह कैलकुलेटेड अंदाज से उन्होंने गेम को कट ऑफ किया और ख़त्म किया था, दैट वाज अ ग्रेट एंड वेल डिजर्व्ड विक्ट्री फॉर टीम वूफर्स। जस्ट द बेटर टीम टुडे मेरे ख्याल से, जिस तरीके से उनकी गेम की अंडरस्टैंडिंग, जिस तरीके से उनकी एग्जीक्यूशन थी, all of those things they were so on point coming out from them, so securing a well deserved victory in that best of 3, qualifying for those monthly finals. डेफिनेटली अली एंड आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आई है वूफर की तरफ कंपेयर टू द लास्ट टाइम जब हमने उनको पिछली बार जब हमने उनको देखा था। ज़्यादा बेहतर कोऑर्डिनेटर और ज़्यादा बेहतर डिसीजंस हाई ग्राउंड कब जाना है एंड ऑल्सो कि कैरी को पता है कि उसका रोल क्या है। हर किसी को मुझे लग रहा था कि पता है उसका रोल क्या है और वो घबराए नहीं कभी पर्टिकुलरली, क्योंकि उनके पास एक स्टॉर्म स्पिरिट था जो उस टाइम पर स्नोबॉल कर रहा था, लेकिन उसको भी काबू में वो काफ़ी आसानी से ले आए थे। एंड आई थिंक गैमैक्स की तरफ से ये एक अगेन क्वेश्चनेबल डिसीजन था कि वो एक लूना को कंप्लीट फ्री फार्म अनअटेंडेड छोड़ रहे थे। उनको कोई तवज्जो लूना की तरफ नहीं थी, ना ही स्टैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश की, ना ही स्टैक्स को कंटेस्ट करने की कोशिश की, स्पेशली एक वक्त पे जब वो वूफर्स के अहेड थे। स्टॉर्म स्पिरिट एक वक्त में तो वूफर्स के अहेड था, स्पेक्टर भी अवेलेबल था और उनको सिर्फ यही चाहिए था कि वो जाके कंटेस्ट कर लें, लूना के स्टैक्स को किसी तरह रोक दें या फिर कुछ दफ़ा लूना को गैंक भी कर लें, लेकिन उन्होंने लूना को कम्प्लीटली अकेले छोड़ दिया। सैडर ने अपना एक ब्लिंक डैगर को प्रायोरिटाइज नहीं किया, परहैप्स उनको एक अर्ली ब्लिंक डैगर चाहिए था। एंड अगेन अली मैं यही बोलूँगा कि स्टॉर्म स्पिरिट का विच ब्लेड बनाना थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। आई नो कि बहुत ही मेटा चीज़ है पब्स के अंदर विच ब्लेड बनाना, लेकिन इस स्टेज पर
पर्टिकुलरली जस्ट जो आप देख रहे हो कि स्पेल्स के अगेंस्ट वो डील कर रहे हैं, तो आई थिंक ऑर्किड काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता। टाइम एंड टाइम अगेन हमने हर वक्त यही देखा कि एस्ट्रल इम्प्रिजनमेंट काफ़ी सारे हीरोज़ को बचा रहे। हम ये देख रहे थे कि फीनिक्स का एग निकल रहा है, लूना की एक्लिप्स निकल रही है, जिसकी वजह से टीम गैमेक्स कुछ भी नहीं कर पा रही टीम फाइट्स में। तो अगर उन एबिलिटीज़ को रोका जा सकता था तो आई थिंक गैमेक्स के पास एक बेहतर टीम फाइट पोटेंशियल मौजूद रहता। लेकिन जिन चीज़ों पर उन्होंने तवज्जो नहीं दी, वही चीज़ें ने उनको आखिर में गेम हरवा दी। Because Tala, I think you're absolutely right. You summed it up very nicely. GameX not playing to what their मैं कहूँगा कि strong suit would have been in this game. I guess Storm Spirit को double down करना चाहिए था उस pick off potential पे, जो कि एक मैं कहूँगा कि यानी कि आप अगर वो ऑर्किड बनाते तो वो डेफिनेटली एम्पलीफाई होता। आपके पास स्लार्डर मौजूद था, स्लार्डर डिड नॉट गो फॉर दैट ब्लिंक, राइट। हम तो आई वाज ऑनेस्टली एक्सपेक्टिंग कि 12-13 मिनट पे स्लार्डर के पास ब्लिंक होगा। अल्टीमेट आपके पास स्पेक्टर से के पास ऑलरेडी मौजूद है। स्ट्रॉन्ग स्पिरिट इंडिविजुअल पिक ऑफ पोटेंशियल इज क्रेजी, और उसके साथ साथ फिर मार्सी है। मार्सी स्टॉर्म के साथ एक बहुत अच्छी फॉलो अप इनिशिएटर जो कि आके स्टन लैंड कर सकती है अगर अल्टीमेट के साथ आती है। तो दे हैड कंट्रोल फॉर डेज, दे हैड एग्रेशन फॉर डेज। लेकिन एक दफ़ा फिर से जो एक कॉमन थीम नज़र आई गेम एक्स की तरफ से कि मे बी दे डिडंट अंडरस्टैंड उतने अच्छे लेवल पे कि व्हाट देयर लाइनअप वाज गुड एट एंड व्हाट दे नीडेड इन द आइटम्स दैट दे नीडेड टू एग्जीक्यूट दैट लाइनअप। और साथ ही साथ एक और चीज़ जो कि हमें नज़र आई कि आई थिंक दिस वाज वन ऑफ दोज लाइनअप्स जो कि थोड़ा सा हाईलाइट्स की तरफ भी हम नज़र दोहराते हैं व्हाइल आई कंटिन्यू माय थॉट कि दिस वाज वन ऑफ दोज लाइनअप्स जो कि जिसका इंडिविजुअल पिक ऑफ पोटेंशियल वाज इनसेन, बट दे डिसाइडेड नॉट टू इन्वेस्ट इनटू दैट। अपनी स्ट्रेंथ्स की तरफ थोड़ा सा नहीं खेला, और उसके साथ साथ वही बात है कुछ क्वेश्चनेबल डिसीजंस हमें ज़रूर देखने को मिली गेम एक्स की तरफ से, द वे दैट दे वर अप्रोचिंग दैट गेम कोर्स की तरफ से on different point. So team Woofers एक दफ़ा फिर से undoubtedly in this game number 2 just a team who understood right what they needed to do, who understood what was their win condition. हम बात कर रहे थे बीच में भी कि Spectre although kills में तो involve हो रही थी, लेकिन it was that Storm Spirit who kept getting those kills, and undoubtedly एक ऐसा lineup Storm is a farm dependent hero as well, right? He wants to get that farm as well. लेकिन वही बात है कि आई गेस एक पॉइंट तक स्पेक्टर अपना इम्पैक्ट नहीं शो कर पाई अर्ली गेम में, जो कि उसकी तरफ से ज़रूरत था। आई गेस 17-18 मिनट में स्पेक्टर एक ब्लेड मेल और एक माइडस के साथ मैप के ऊपर घूम रही थी, एंड वी सॉ कि दिस वाजंट अ गेम दैट वाज गोइंग टू गो 50 मिनट्स एंड अबव, स्पेशली जिस तरीके से लूना स्केल कर रही थी। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स थे, और जैसे कि हम देख रहे थे टीम फाइट्स लेने में उनको गैमैक्स को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो रही थी शुरू में, लेकिन आई थिंक दिस वाज द ओनली टीम फाइट, सिर्फ यही एक टीम फाइट जिसमें वो सक्सेसफुल रहे थे। इस पॉइंट के बाद 20 मिनट के बाद उन्होंने तकरीबन हर टीम फाइट हारी थी, इवन दिस वन जिसमें हम देखेंगे वो 4 हीरोज़ खोते हैं और स्टार्टर जिंदा रहते हैं। दे चूज टू गो वापस अंदर जाने में वो कामयाब हुए। मार्सी ने हुडविंग को कैच आउट कर तो लिया, हुडविंग को मार तो दिया, लेकिन अब उनके पास सारा कुछ खत्म हो गया। ओडी की पोजीशनिंग देखें आप, स्टॉर्म स्पिरिट के बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं, मैना स्टॉर्म स्पिरिट को खत्म हुआ हुआ है, मार्सी भी फॉल कर जाएगी, स्पेक्टर भी कॉट आउट आखिर में उस वक्त हो गए थे, फुल एचपी का स्पेक्टर कॉट आउट हुआ है, वो भी एक मिस्टेक थी, वो डिसंगेज नहीं कर पाए, एंड इस पॉइंट के बाद सब कुछ डाउनहिल जा रहा था। इस पॉइंट पे भी वो रिकवर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज़ किया नहीं करने का। ये भी एक मिस्टेक थी आउटपोस्ट पे जैप इन करने की। 3 हीरोज़ मार्स के अरीना के अंदर कॉट आउट हो गए। स्टॉर्म स्पिरिट एक हुडविंग को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई मैना बाकी नहीं है, और अब वो इम्प्रिजनमेंट से वापस आते हैं। 3 हिट्स के अंदर वो फॉल कर जाते हैं, मार्सी इल्यूजन्स के अगेंस्ट फॉल कर जाती है। तो ये इतने सारे क्वेश्चनेबल डिसीजन, क्वेश्चनेबल फाइट्स, पिक ऑफ, जैसे कि हमने शुरू में ही बात की थी अदी के पिकिंग फेज़ में ही हमें क्लियरली पता था कि टीम फाइट में कौन बेहतर है, राइट। टीम फाइट टीम वुफर्स की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और टीम गैमैक्स का पिक ऑफ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इन दी एंड टीम वुफर्स कामयाब हुए टीम गैमैक्स को बेट करने में इनटू दोस टीम फाइट्स, एंड टीम गैमैक्स शुरू में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल कामयाब रहे पिक ऑफ्स लेने में, लेकिन फिर वो लोअर इनटू हो गए ये सारी टीम फाइट्स लेने में, एंड बिफोर यू नो इट 26-24 मिनट पे टीम वुफर्स की नज़रें
टीम गैमैक्स के हाई ग्राउंड पर थी एंड टीम गैमैक्स के पास कुछ भी नहीं था करने को, क्योंकि आइटम्स ही उनके पास वैसे बने हुए ही नहीं थे। स्टॉर्म स्पिरिट के पास एक विज ब्लेड था, स्टार्टर के पास एक ब्लिंक डैगर तो बहुत लेट बना है, 20 मिनट में जाके ब्लिंक डैगर बना है। स्पेक्टर के पास कोई आइटम नहीं है सिवाय ब्लेड मिल के, तो इस पॉइंट पर वो कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल, चलो वही बात है कि गेम थोड़े से बाद में उनके हाथों से जाते हुए नजर आई। और एक और चीज़ जो कि एटलीस्ट गेमैक्स के बारे में मैंने देखी थी कि आई मीन शायद मे बी वो सोच रहे हो शायद द गेम वेंट अवे फ्रॉम देम, बट उस तरीके से हमें गेमैक्स के हीरोज़ और प्लेयर्स आइटमाइज करते हुए नहीं नज़र आई टू डील विद द कोर्स ऑन दी साइड ऑफ ऑफ वूफर्स के आपके पास अगर एक ओडी मौजूद है तो देयर इज़ नो वे टू साइलेंस हिम ताकि वो एस्ट्रल करके अपने आप को बचा ना सके ड्यूरिंग एंगेजमेंट्स, या फॉर एग्जांपल मार्स वाज गोइंग फॉर दैट ह्यूज सेप्टर सेटअप, राइट। सो वहाँ पे कुछ सेटअप या कोई आइटम्स वगैरह नहीं नज़र आए किसी भी हीरो की तरफ से कि सपोर्ट कर पाए अपने आप को टू सेव देमसेल्व्स, या मे बी एऑन डिस्क वगैरह की ज़रूरत शायद पड़ सकती थी वहाँ पे। तो वो एक थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आइटमाइजेशन वाज़न्ट रियली द बेस्ट ईदर गेमएक्स की तरफ से। सो a well deserved victory coming out for Woofers। just थोड़ा सा उनको ना गेम का मैं कहूँगा कि बेहतर अंडरस्टैंडिंग फ्लो अपने हीरोज़ का और अपनी विन कंडीशंस के बारे में वो थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर थे वहाँ पे। लेकिन अगर स्कोर बोर्ड की तरफ नज़र हम दोहराएं इस गेम के लिए तो नज़र आता चला लुक एट दैट स्पेक्टर, राइट। 13 असिस्ट स्पेक्टर के पास थे। तो अगर आप टीम फाइट्स की भी असिस्ट डिस्कार्ड कर लें तो आई थिंक अपने हर हॉर्न के ऊपर द स्पेक्टर डिड नॉट एंड अप गेटिंग अ किल। So maybe अगर that Spectre gets those initial kills, 3-4 kills मिलती हैं extra 300-400 gold per that kill, so that puts her on her way on the trajectory to be doing much better in the game, right? So the Spectre isn't getting that 17 or 18 minute blade mail Midas, right? ये चीज़ थोड़ी सी missing थी। Storm Spirit, we saw that witch blade, we're seeing those different blades coming in, लेकिन वही बात है कि Storm का pick potential, Storm wasn't complementing his own pick potential। स्लार्डार 2 for 7 गए हैं यहाँ पे इस गेम के अंदर, गोज फॉर दैट इको सेबर पहले और उसके बाद गेटिंग दैट ब्लिंक डैगर, वही बात। लेकिन जब ब्लिंक डैगर आया तो आई थिंक गेम काफ़ी हद तक उनके हाथों से जा ही चुकी थी। क्योंकि दूसरी साइड पे देखा जाए तो गोल्ड के अंदर 26,000 गोल्ड लूना के पास शी वाज एबल टू एक्यूमुलेट दैट, और दूसरी साइड पे स्टॉर्म प्लस स्पेक्टर की नेटवर्थ मिला के भी लूनाज नेटवर्थ वाज जस्ट दैट मच मोर, राइट। तो वो चीज़ एक नज़र आई कि पिछली बार इट वाज स्वेन, दिस टाइम इट वाज लूना। गेमएक्स ने might be a little harsh words, but they put in no effort to shut down the enemy carry, right? And I think it's just a very fundamental mistake in Dota कि अगर आप एनिमी के कैरी को शट डाउन करने की कोशिश नहीं कर रहे या उसके अगेंस्ट आइटमाइज नहीं कर रहे हैं तो फिर तो गेम में पीछे मेरे ख्याल से ज़्यादा चांसेस नहीं बचते आपके जीतने के। डेफिनेटली अली, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपने पॉइंट आउट की, पर्टिकुलरली जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि वो पिक ऑफ लूना को नहीं कर रहे तो फिर हम देखें कि उनके पास है क्या ऐसा जिसके ज़रिए वो पिक ऑफ करेंगे। जैसे कि हमने देखा स्पेक्टर चोज ने एक माइडस बनाने की तरफ किया, वो मार्सी भी एक माइडस बनाने की तरफ गया, जो 2 माइडस अगेंस्ट लाइनअप जिसको आपको पता है वो मिड गेम में एक्टिवेट हो जाएंगे। और चलें आप माइडस बना भी रहे हैं तो मतलब आप माइडस बना के आप अपने ऊपर एडेड प्रेशर बना रहे हैं कि दूसरे एनिमी के कैरी को शट डाउन करना है, क्योंकि माइडस का वो गोल्ड आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा और आपको कैरी को स्पेस देनी पड़ेगी कि वो माइडस को रिकूपरेट करे, आगे जाके एक्सपीरियंस हासिल करे और गोल्ड हासिल करे। लेकिन उन्होंने उस चीज़ की कोशिश की ही नहीं। नॉट ओनली दैट, उन्होंने आउटवर्ड डिस्ट्रॉयर को भी छोड़ दिया। पिक ऑफ तो डेफिनेटली उन्होंने किए थे, लेकिन पिक ऑफ ज़्यादातर अगर आप नोटिस करें तो पिक ऑफ मार्स के ऊपर किए थे उन्होंने, और फिर उन्होंने हुडविंग के ऊपर किए थे, लेकिन उसके अलावा उन्होंने बाकी सारे हीरोज़ को छोड़ दिया था कम्प्लीटली। बट खैर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हुई थी एंड आई थिंक कि उनके पास एक और मौका है, चौथा क्वालिफायर भी है। मेरे को तो चौथा क्वालिफायर शायद अब खेलना पड़े उन्हें, लेकिन अगर प्राइस पूल की बात कर रहे हैं हम तो नाजरीन वही बात, $1,200 के टोटल प्राइस पूल है, जिससे फर्स्ट प्लेस पे 650, 300, 150 एंड देन $100 रिस्पेक्टफुली
पोजीशन पे आते हैं। टूर्नामेंट रोड मैप की बात की जाए तो तला दिस वाज द थर्ड मंथली क्वालिफायर टीम वुफर्स यहाँ से क्वालिफाई करके आगे निकली हैं। एंड मैं अभी से तला काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ प्लेऑफ्स के लिए, राइट। 3 काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स प्लेऑफ्स में मौजूद हैं। शाइनिंग क्राउन हमने देखा था कि किस तरीके से कितने अच्छे तरीके से खेलते हुए नजर आए। वुफर्स भी मुझे इनके गेम प्ले से लग रहा है कि देर अ टीम जो कि कम्पीट कर सकती हैं उस लेवल पे। और थर्ड टीम अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है प्लेऑफ्स में। हमारे पास इसके बाद सिर्फ एक और मंथली क्वालिफायर रह जाएगा जो कि क्वालिफायर नंबर 4 है, जहाँ से हमें अपनी फोर्थ क्वालिफाइंग टीम ज़रूर मिलेगी। और उसके बाद हम ग्रैंड फाइनल्स में जाएंगे जहाँ पे 2 टीम्स आपस में कम्पीट करते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो तला द कंपटीशन इज़ गेटिंग टफर एंड टफर। मैं तो प्लेऑफ्स के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। आई थिंक शायद प्लेऑफ्स में हमें पहली दफ़ा एक एक्चुअल बेस्ट ऑफ 3 यानी कि एक थर्ड मैप प्लेयर्स के आपस में खेलने को नज़र आएगा। तो उस चीज़ के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। मंथली क्वालिफायर नंबर 4 से देखते हैं कि कौन सी टीम बढ़ के आगे निकलेगी और इन बाकी टीम्स को कंपटीशन देते हुए नजर आएगी। लेकिन द टूर्नामेंट वही बात है, इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर अ वाइल और अब हम थोड़ा सा उसके क्लोजिंग मरहले की तरफ बढ़ना शुरू हो रहे हैं। डेफिनेटली अली, जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया लेटर स्टेजेस पे प्लेऑफ्स के जब हम आएंगे तो 4 टॉप टीम हमारे पास होंगी। अगला एक क्वालिफायर बाकी है। आई होप कि मेरी उम्मीद यही है कि टीम गैमैक्स वापस आएँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो मिस्टेक्स अली हम देख रहे थे टीम गैमैक्स में वो काफ़ी मेरे ओपिनियन में फिक्सेबल हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर काम किया जा सकता है। सिर्फ डिसीजन मेकिंग की बात थी। इट्स नॉट एज इफ़ हम अगर बोलें कि कोई बहुत ज़्यादा स्किल डेफिसिट था किसी भी प्लेयर में या किसी भी हीरो में। स्टॉर्म स्पिरिट ने भी काफ़ी अच्छा खेला था, उनके सारे हीरोज़ ने काफ़ी अच्छा खेला था, बस वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा लैकिंग थी। उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है एंड आई थिंक उस चीज़ के ऊपर काम किया जा सकता है। आई थिंक अगर वो उस चीज़ के ऊपर काम कर लें तो फिर चौथे क्वालिफायर में वो डेफिनेटली आ सकते हैं। एंड इनफैक्ट आई थिंक फोर्थ क्वालिफायर के अंदर एक पाकिस्तानी टीम भी मौजूद है जो कि आई एम एक्साइटेड, क्योंकि मैंने उनको उरीडू टूर्नामेंट भी देखा था, अभी हम यहाँ पर भी उनको देखेंगे। तो काफ़ी सारे टॉप टीम्स मौजूद हैं। मेज की टीम जो कि मेरे ख्याल से अभी जो टॉप 1 पे इस टूर्नामेंट में है शाइनिंग क्राउन के साथ जो वो खेल रहे हैं, आई थिंक वो टॉप पे चल रहे हैं। बट डेफिनेटली नन ऑफ दीज टीम्स कि मैं ये नहीं कह सकता कि प्लेऑफ से कोई क्लियर कंपेरेटर है कि जो आगे ही जाएगा फाइनल्स में। एनीथिंग कुछ भी हो सकता है एंड आई थिंक यही सबसे एक्साइटिंग चीज़ है अरीना ई स्पोर्ट्स के डोटा टूर्नामेंट के बारे में। बिल्कुल तला, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है देखने को। और लेकिन आज हमारे पास काफ़ी अच्छी सीरीज़ खेली गई। वही वाली बात है कि गेमैक्स कुछ डिसीजन मेकिंग इश्यूज थे वहाँ पे, लेकिन एवरीथिंग एल्स वाज ऑन पार एंड काफ़ी क्लोज कंपटीशन। तला कुड बी योर अपॉर्चुनिटी टू मे बी कोच अ टीम. It would be a nice thing to see them come on to the fourth qualifier and then finally make it to the playoffs with Talha's coaching. But guys, ये चीज़ें तो हमें देखनी पड़ेंगी कि तल्हा क्या एक टीम को कोच करके यहाँ पे लाते हैं प्लेऑफ्स के अंदर। लेकिन आज के लिए I think that was it from our side. This was the Arena Esports tournament powered by Etisalat and and strategic partners were AD Gaming और साथ साथ broadcast partners are Platonia. मैं था आपका होस्ट एंड कास्टर अजूस और मेरे साथ मौजूद थे द ऑलवेज अमेजिंग तला और टटलस। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हम अगले क्वालिफायर के लिए आपकी पेश खिदमत ज़रूर फिर से मौजूद होंगे। ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Will you hold my hand when my demons come to take me? Gallows tried to kill the soul that I fought so hard to save. Hallowed by my love for you, always stop me going under. Follow every step I take, 'cause our walls are coming down. God, you are the devil, running from my mind. I can't get on your level, I swear to God I tried. I am not at this spell. Turn around and turn ahead. You can't help me anymore. Oh my God, you are the devil.
beside me and everything that seems red. Vision's blurry, I'm in a hurry, my skin is starting to shed quick. Call up the doctor, swallow some pills, maybe I'll wake up in bed. I'm a disaster, can I move faster? Honey, I'm over the edge. No fun is stopping me, I'm not your property, gotta take care of that ledge. My friends are dead, I'm losing my head, I gotta get off of these meds. I am unstable, willing and able, give you this body to pledge. Oh my God, you are the devil. Oh my God, you are the devil. Best to give me your loyalty. Best to give me your loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty.